in at the last moment just to create a sense of unpreparedness within them. I am also told by someone close to the Congress President, Mallikarjun Kharge, that his advice to Rahul Gandhi was you should speak as late as possible and preferably just before the Prime Minister so that you have enough chance to respond to the other BJP speakers, the likes of Amit Shah, and also set the narrative ahead of the Prime Minister's speech. Now, you can look at that as strategy, you can look at that as confusion. When I told this to a Congress leader that this sounds like utter confusion, they said, we are not confused, you in the media are confused. So, what does one say? This seems to be a googly rolled into a bouncer that the Congress itself doesn't seem to know what, as I said, its left hand doesn't seem to know what the left hand is doing. There has been so much focus on Rahul Gandhi that the other aspects of this no confidence motion sadly are getting lost. Rajdeep, it's not that we weren't listening to you. The fact is we're taking everything with a pinch of salt. And all of this gets a bit more strange when senior leadership confirms on camera that Rahul Gandhi will be speaking, and Adhir Ranjan Chaudhary just did that to us for the second time over 10 minutes ago. So a lot of confusion. Is it strategy to keep the Treasury benches guessing? Well, yesterday it could have been, but today it just sounds all a tad bit immature. But having said that, let's listen into all the reactions. We cut across back to Rahul Srivastava, who has now confirmed with a very senior Congress leader who says he's cleared all his appointments to hear Rahul speak. So much for that. But coming back to you, Rahul. Almost every spokesperson. But coming back to you with that thought, let's listen into Adhir Ranjan Chaudhary and other political reactions, and then Rahul Srivastava and Rajdeep. आज बोलेंगे राहुल, शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल। ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। आज बोलेंगे राहुल, शुरू करेंगे हमारी तरफ से 12 बजे बिल्कुल। ये आज शुरू करेंगे राहुल गांधी जी हमारी तरफ, पार्टी की तरफ से। All right, let's cut across to Rahul Srivastava, who was who's just spoken with some very senior congressmen. I have spoken to 4 senior spokespersons of the party, 3 senior leaders of the party, who told me who were actually calling me up to find out what's really happening. They are telling me that they want to sit and listen because they will be part of the evening debates on what Rahul Gandhi is going to say, and they have cancelled all their appointments. See, this is where lies the crisis, that even the party does not know which way the whole thing is going. And I think to build a cohesive picture, the Congress needed to be very clear from the very first day. I think the dilemma has come in because they are strategizing who from the BJP or the government side is speaking when. And they are shifting the order of speakers according to that. And I think that's where they are failing to set the agenda. That they have to decide whether he speaks first and then forces the BJP for answers, or he speaks last and then makes the Prime Minister answer them. It's a tad bit bizarre is what one can say. But Rajdeep, I'll pull you in on this because what is, once again, what was given to... All right, we don't have Rajdeep. We're gonna try and get to him. But Rahul, till yesterday was given to clever, smart, cohesive strategy by the Congress. Even today, if the excuse is to keep trying to get the Treasury benches to second guess your move, that's not smart strategy. See, the problem is not that if they want to, Rahul Gandhi wants to speak last, it can be listed that he's going to speak last. The confusion happens because they put Rahul Gandhi's name as one of the speakers in the day, and that leads to a certain amount of speculation. If Rahul wants to speak at the end of the day, how does it really impact the BJP? The BJP strategy will be reworked as per Rahul Gandhi's speech, because the Prime Minister's bulk of Prime Minister's answer is going to what Rahul Gandhi is going to say. So it is to keep people guessing, to put a name and then remove it, and then he is not speaking, leak. Your own Adhir Ranjan Chaudhary is not an ordinary member of parliament. He's the leader of the Congress party. Had the Congress had another 5 members, he would have been the leader of opposition. The leader of opposition does not know that when his party member of parliament is going to speak is a bizarre state of affairs. And it's even worse if he's being fielded to confuse the Treasury benches. You don't conduct parliament like this. There's a fair bit of decorum which goes into it. It may confuse the opposition, the Treasury benches, that they don't know when Rahul Gandhi is going to speak. So their order of speakers might go a bit awry. But
The fact is that in that also what is happening, that since you put the name, it is beamed live by television channels and 24-hour channels which are beaming live, that is likely to speak today. Adhir Ranjan Chaudhary goes on record to say that he is likely to speak today, and then if he does not, it means that there is confusion. True. Clearly. So what was been given to a very cool, calculated strategy, been given to confusion this morning. But what we can confirm right now is Rahul Gandhi will not be speaking this afternoon. He will not be speaking for the motion where the opposition is concerned when it comes down to the no trust motion. Let's listen into other political reactions coming in and we'll get you more analysis. आज राहुल गांधी भी लोकसभा में ऐसी बात करें कि राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे तो क्या इतने बहुत बड़ी बात क्या है। सब एमपी है, बोलना चाहते हैं, जो जिसको समय मिलता है उनके पार्टी के तरफ से वो बोल सकते हैं। अखिलेश जी, आपको पता है कि राहुल गांधी आज 12 बजे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, इतना पता है कि राहुल जी बोलेंगे खूब ठीक से बोलेंगे और बीजेपी के लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पानी होने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जब वो बोलेंगे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि सदन चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव आया है, नेता सदन कहाँ है? राहुल गांधी के जो लोग चिंता कर रहे हैं जरूर बोलेंगे, लेकिन नेता सदन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो नेता सदन है। वो कहाँ है? सदन में क्यों नहीं आते हैं? दिन भर वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लेकिन सदन में इस तरह से लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के विपरीत सदन का ये सम्मान नहीं है। आप अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र के मंदिर में आप उपस्थित नहीं रहते हैं, जो महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा हो रही है उस समय प्रधानमंत्री नदारत, कल भी नहीं आए। और कल आपने देखा कि किस स्तर की भाषा का प्रयोग करने वाले नेताओं को बीजेपी ने अपना ओरेटर बना के रखा था। ये सदन की गरिमा है, ये सदन की मर्यादा है। राहुल गांधी तो आएंगे क्योंकि वो साधारण सदस्य हैं। प्रधानमंत्री जी कहाँ है? क्यों सदन से भाग रहे हैं? ढूंढ के लाओ भाई, कहाँ गए? एक बात तो चलिए, आपने माना कि राहुल गांधी बोलेंगे, पर कब बोलेंगे सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं कि कब बोलेंगे। नहीं, हमारी संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी पार्टी जो है वो तय करती है। अब वो ऐसा थोड़ी कि मालूम नहीं है, वही लोग तय करते हैं, क्योंकि टाइम पार्टी को अलॉट होता है और वो लोग अपने रणनीति बनाते हैं सदन के अंदर, किस तरह से कब बोलना है वो तय करते हैं, वो तो बोलेंगे ही। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है, लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए। कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। All right, fair amount of confusion all through the day. In just about 20 minutes from now, you will hear the first speaker. But what we can now confirm that it will not be Rahul Gandhi is what we are being given to understand. Rahul Gandhi will not speak in Parliament today. He has a Sabha in Rajasthan. He is going to go for that. Nevertheless, he is still in attendance in Parliament where that comes into question. But Rahul Gandhi will not speak. Now, the Congress is once again suggesting that it is to keep the Treasury benches guessing, especially where floor strategy is concerned. Is it a clever floor strategy by the Congress party where it comes down to not confirming as when Rahul Gandhi will speak? Well, we leave it for our viewers to decide. Till yesterday did seem it was smart. Today it seems a tad bit confused. But with that, a quick break. Do stay with us. Top focus, second day of the no confidence motion. You are watching India Today. India Today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield, and I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Quality today. In Delhi, 87. In Mumbai, 62. In Kolkata, 113. In Bangalore, 115. In Chennai, 82. In Hyderabad, 114. Warm welcome, viewers. What a rather confusing but a strange second day of the no confidence motion. Early this morning, there was an indication, at least a confirmation coming in, who would be the BJP heavyweight who would be speaking today. That confirmation still sticks. It would be Amit Shah, Smriti Irani, Nirmala Sitharaman for sure. But then suddenly, if there was a googly thrown yesterday by the Congress on Rahul Gandhi being not fielded first where the no confidence motion is concerned, this morning there was an indication that he very well could be speaking first at 12 noon for the motion. But now confirmation coming in, Rahul Gandhi will not speak today, though he is in Parliament. He has an event or a Sabha that he needs to address in Rajasthan. Is this once again to be given to clever strategy of the Congress to keep the Treasury benches guessing? Well, right now it looks a tad bit confusing, but having said that, what we don't know is how things will proceed today, but what happened on day one? Take a look. आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। His prelude to a Hindutva statement. के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा। बाला साहब के विचार क्या होते हैं, हिंदुत्व के विचार क्या होते हैं, उसको कौन पूछता है? तो आज जो है गठबंधन की सरकार जो है एमवीए वहां पर प्रस्तापित की। हिंदुत्व के विचार जो है उसको बेचने का काम, बाला साहब के विचारों से दूर जाने का काम जो है इन्होंने किया। जो सावरकर के विचारों पर हमारी शिवसेना पार्टी बनी। That is how the son of Maharashtra Chief Minister, Lok Sabha member Shrikant Eknath Shinde targeted rival Uddhav Thackeray on political ideology. मणिपुर एक तरफ म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ नागालैंड, असम, मिजोरम के राज्य लगते हैं। तो इसलिए जब भी
Congress MP Manish Tiwari did not restrict his speech to the subject of Tuesday's debate either. 2020 में अप्रैल में नियंत्रण रेखा के पार भारत की सरहद में घुसपैठ हुई और घुसपैठ एक जगह पे नहीं हुई, घुसपैठ 8 जगह पर हुई। He brought in the India-China issue. चाहता हूं, आज 37 महीने हो गए उस घुसपैठ को जारी हुए और मैं सरकार and the hold-up in the electoral process in Jammu and Kashmir since abrogation of its special status 4 years ago. धारा 370 को धाराशाही किया गया था और आज 4 वर्ष हो गए आपने एक प्रदेश को अवैध तरीके से तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए और उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रास्ता तय किया। Union Minister Kiren Rijiju's speech was equally broader. जब प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लॉन्च किया तो he spoke about India's Olympic and Chandrayaan feats under the Modi rule. 7 ओलंपिक मेडल जीत करके लाए हैं। अभी हमारा चंद्रयान 3 मिशन फाइनल स्टेज में है, अब वो मून के ऑर्बिट में चले गए हैं। हम पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं इसरो के साइंटिस्ट को। सुप्रिया सुले जी। Arguments over the opposition's no confidence motion against the BJP government on Manipur extended well beyond the crisis in the northeastern state. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. बहुत हो गई महंगाई की मार। प्याज के बारे में और दूध का मैं छोटा उदाहरण दूं। प्याज के बारे में मैंने जब The NCP Supriya Sule accused the BJP government of being anti-farmer. पीयूष जी गोयल को मैंने ट्वीट भी किया था, उनका जवाब भी आया था कि आप ये प्याज जो महाराष्ट्र में पड़ा है कोई नहीं ले रहा है, उसको प्लीज आप एक बाहर भेज दीजिए। Because globally there were less onions, there was no production, but India had a surplus. Why did you do this? This is why we have no confidence in this government, because it's anti-farmer. यदि हमने CPM के साथ लड़ाई की आइडियोलॉजिकल, तो आज तक हमने CPM के साथ समझौता नहीं किया। The BJP's Nishikant Dubey called the opposition alliance opportunistic. लेकिन आपको जिस कांग्रेस पार्टी ने रोज जलील किया, उसके साथ आप किस आधार पर जो है शासन में हो? Sir, the Prime Minister will not win the 2024. Saugata Roy of the TMC charged the BJP government with misusing central agencies against political opponents. The central agencies, ED and CBI, they are used to target opponents and bring down opposition state government as it happened in Maharashtra. ये आप गरीबों पे विश्वासघात करिए, हम राजस्थान की तरह। What began as a focused discussion on Manipur transformed into an all-encompassing debate. India, that is a union of states, we will protect and we will win. जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। गौरव गोगोई जी का भाषण लाइव होगा। Echoing the fervor of campaign speeches when general elections are due in barely 200 days. कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में Bureau Report, India Today. कुछ पता नहीं। All right, so these were the proceedings on day 1. Day 2 promises to be a blockbuster day as well, especially where big heavyweight speakers from the Bharatiya Janata Party, the Treasury benches are concerned. We're expected the Home Minister to talk in detail on Manipur. We're expecting Smriti Irani in all probability launching an attack on the Gandhi family. Visuals coming in of Rahul Gandhi in Parliament. In fact, we have some news just coming in. I'm just going to put out these details of what we are picking up. In fact, Rahul Gandhi was just leaving his residence is what we've been given to understand. And it does look like, and we'll just try and get a confirmation on that, possibly a security breach when somebody just came in front of him is what we know. We'll get a sense of what really happened there. But Rahul Gandhi, in fact, was leaving his house to head to Parliament, even as the confusion persists on whether he is going to speak or not. A man on your screens right now. In fact,
Okay, we'll just try and see if you can hear what that man on your screens is saying. हेलो, अरे आराम से एक मिनट रुक। भाई भाई अपना नाम तो बता दो एक बार लगाना। अरे नाम तो पता। Okay, there is in fact some confusion as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned on whether he is going to be speaking in the House or not. Now, what we know is that he has a rally in Rajasthan today, and we've also picked up that around 1:30 p.m. he is expected to leave for Rajasthan is what we know. But outside his house, in fact, there was a man who just in fact okay, we have these pictures. In fact, it appears to be of someone two-wheeler. In fact, भाई थोड़ा सा गैप दे देना। whose two-wheeler seems to have fallen. In fact, we'll just try and get more details as to what really happened there. राहुल जी, in a moment from now. But राहुल जी, सर, राहुल जी। Okay, Mr. Gandhi stepped out of the car is what we know after his car hit someone on the road. Okay, that's the information that we can confirm for our viewers. Rahul Gandhi stepped out of the car after his car hit someone on the road. In fact, the reporters tried to get in a word from the person as well, and we'll try to put that visual out also. But the man did not comment and just... Okay, all right. Apologize for this, but in fact there appears to be a bit of a confusion, but there was a little commotion right outside Das Janpath, where Rahul Gandhi is staying at his mother's house, where a man in fact fell down. It does not look like that his car hit a scooter. It was probably someone else, is what is evident in these pictures. But what's clear is that Rahul Gandhi stepped out of his car. So this isn't a security breach. As we said earlier, we apologize for that. But Rahul Gandhi stepped out of his car to speak with the man whose scooter fell down is what we know. माइक लगा बेटा। Okay, now reporters caught this entire commotion on camera, given that Rahul Gandhi is all eyes. In fact, interestingly, are on Rahul Gandhi today, given that he is headed to Parliament, and there is in fact just so much speculation on whether he is indeed going to speak or not. But we have a confirmation that that man had fallen down on the road, and Rahul Gandhi simply stepped out to check on him. And it is a full-blown war between Team India and the NDA on the 81st anniversary of Quit India movement. Prime Minister Modi's scathing attack at the opposition bloc at the India bloc, recalling the movement by Mahatma Gandhi and launching a new war cry. Modi asserted that whole of India wants, in asking opposition to quit India. In a jibe, he said, and I quote, corruption, quit India, dynasty, quit India, appeasement, quit India. His salvo comes at a time when the opposition has been showcasing a strong united front against the NDA. Hitting back at the Prime Minister-led Centre, India Alliance released a video with the tagline, Jeetega Bharat. They staged a protest in Parliament and yet again questioned Modi's silence on Manipur, asking why is he not attending Parliament sessions in spite of having full majority in the House. क्विट इंडिया का एक सेलिब्रेशन है। क्विट इंडिया में आज जो देश से जो हमारे हिरासत में आए बहुत जो बुरी चीज़ है, करप्शन हो या ये सबको क्विट इंडिया का एक हमारे एमपीज़ ने एक क्विट इंडिया का रिमेंबरिंग करते हुए एक कार्यक्रम किया, इतना ही। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 इयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। रैम्पेंट फैमिली रूल इन पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। स्टिंकिंग करप्शन, क्विट इंडिया। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। ये क्विट इंडिया का बारे में बात करने के लिए आरएसएस और जनसंघ, हिंदू महासभा और बीजेपी, ये तीनों का एक ही नाम है और इनका कोई अधिकार नहीं है।
ये पहले माफी मांगना चाहिए। ये लोग क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किए। महात्मा गांधी का क्विट इंडिया में ये लोग ब्रिटिशर्स का साथ, गोरों का साथ ये लोग ताली बजा के घूम रहे थे, चेयर लीडर्स बन रहे थे। अभी ये लोगों का ये क्विट इंडिया का बारे में ओनरशिप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोदी जी क्विट इंडिया में आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए मोदी जी माफी मांगना चाहिए। What is the relation between Quit India and BJP? बीजेपी इनका लोग आज़ादी के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं हो गया। दे आर अगेंस्ट द freedom movement. BJP is totally against the freedom movement. Then what is the point of they are saying something on Quit India Day? All right, that story and much more going up on our website too. That's indiatoday.in. In just 6 minutes from now, the Lok Sabha is going to convene once again, and hopefully there is going to be some clarity on whether Mr. Rahul Gandhi is in fact speaking or not. That continues to be our top focus story. At the moment, it's time for a quick commercial break here. You are watching India Today. Employee addition has dropped a combined 135% at TCS, Wipro and HCL Tech. This means where the companies had added 31,000 employees this quarter last year, this year they've seen a fall of nearly 11,000 employees. This is in line with the muted financial numbers shared by these companies. Akanksha Chaturvedi gets us a deep dive into this trend. A closer look. Akanksha? That is right, Abha. Hiring across major Indian IT companies has dampened in Q1 FY24 as compared to the year-ago quarter. If we take a close look at the numbers, we see that TCS only added around 500 people to the company in Q1 FY24, while this number was over 28 times bigger last year. TCS added over 14,000 employees in Q1 FY23. At Wipro, this trend seems to have worsened. In Q1 FY24, Wipro's headcount actually reduced by around 8,000 employees, while in Q1 FY23, they had added over 15,000 people to the organization. HCL Tech was also in line with this trend. The company's headcount went down by over 2,500 people in Q1 FY24, whereas they had added around 2,100 people in the year-ago quarter. This low During the riots that have taken place, not just in Nuh, but across this country over the years, Hindus and Muslims have both suffered over the years. India Today had reported on the plight of Kallu Mia, whose shop in Gurugram was set on fire during the violence that followed Nuh. Kallu had nothing to do with what had happened. Nuh, he was totally innocent. Today we have some good news. After we showcased that story, a few activists in Gurugram came together and have helped Kallu Mia set up his shop again. It's our good news today story. This is a story which is across all religions. It shows that the future of this great country lies in tolerance, in reaching out to each other, in building bridges, not constructing walls. Whether it's Hindu or Muslim, anyone who suffers, anyone who's a victim deserves our support. Kallu Mia's mattress shop was targeted in the retaliatory attacks in Gurugram after riots broke out in Nuh. The video of Kallu Mia trying to douse the fire had gone viral then. सारा सामान मेरे कपड़े लत्ते सारे कुछ सब कुछ जल गया मेरा। कितना रुपए का सामान होगा? अरे बहुत रुपए का सामान था। मैं तो रात दिन यहीं रहता था, मेरे तो घर भी कुछ ना, मेरा तो इसमें ही जो कुछ था। अरे इसमें तो 3 लाख का नुकसान है, क्या करूं बताओ। चलो चलो जी, नारियल फोड़ो। Now help has reached Kallu Mia. A few social activists led by Yogita Bhayana have raised funds to help the senior citizen get
viewers, warm welcome. Let's take you now directly on a rolling coverage coming in day 2 of the no confidence motion. Breaking news coming in. Rahul Gandhi has reached the parliament. What's all the more interesting is that a bit of ambiguity on whether Rahul Gandhi will speak today or not. At least the last confirmation was that he's not going to speak. He will be in Parliament, and from here on he will leave for Rajasthan, where he has a Sabha to attend. He's going to be addressing a Sabha at 3 p.m. in the afternoon. However, having said that, everything needs to be taken with a pinch of salt. The Congress would call it strategy. They've given it to strategy. They do not want to disclose when will Rahul Gandhi speak to keep the Treasury benches guessing. But these visuals coming in of Rahul Gandhi leaving his residence, making his way to the Parliament. On the other hand, what we can confirm for sure is that the heavyweights of the Bharatiya Janata Party, the lights speaking today. Ambiguity still remains on Rahul Gandhi, but having said that, the last confirmation that we have got, Rahul Gandhi would not speak on the floor of the House today. In all probability, it will be tomorrow. That's the latest news that we are getting in right now, viewers. Breaking news coming in. Rahul Gandhi has reached Parliament in midst of heavy speculation whether Rahul Gandhi will speak or not. That's the latest that is coming in right now. We are also getting in word that Rahul Gandhi will speak today. Confirmation coming in. Things can't keep getting more weirder, can they? Rahul Gandhi will speak today at 12:10 p.m. It's a confirmation coming in with a massive suspense that had been built up. Had to be possibly the doing of the Congress. They wanted to keep the Treasury benches guessing. How much will it impact? Because there'll be enough time now for the Treasury benches to prepare. Rahul Gandhi will speak. I want to quickly bring in Rahul Srivastava, our National Affairs editor. The latest news coming in, Rahul Gandhi will speak at 12:10 p.m. Let's listen in to all that is coming in through the Lok Sabha. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in the list of business for today. Item number 7, Sri Som Prakash ji. Director sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 7 in the list of business for today. Thank you. Item number 8, Sri B.L. Verma ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री देबू सिंह चौहान। सर, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10 श्री महासचिव। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha, Shri Derek O'Brien, with the Committee on Public Accounts. I have also to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the Inter-Services Organization, Command, Control and Discipline Bill 2023 and the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Item number 11, Sri Arish Dwivedi. अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 49वां, 50वां, 51वां, 52वां एवं 53वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण
सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Item number 12, Shri Balashuri ji. I raise to present the 30th and 31st reports of the Committee on Subordinated Legislation, Hindi and English version, as listed against my name in today's list of business. Sir, I support him wholly. Item number 13, Shri PC Gaddi Godar. With your kind permission, I rise to present a copy of each Hindi and English versions of the 59th report of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 on the subject Mission for Integration Development of the Horticulture. And Item number 14, Srimati Laket Chatterjee. Dhanyavad Adhyaksh Mohoday. Sir, I beg to present the 32nd report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Item number 15, Srimati Laket Chatterjee. Dhanyavad Adhyaksh Mohoday. Sir, I rise to lay on the table a copy each of the final action taken statements on the 21st, 22nd, 23rd and 26th action taken reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Item number 16, Shri Parvat Singh Patel. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 16 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। Item number 18. All right, so what we are expecting is that Rahul Gandhi will be speaking at 12:10 p.m. I just want to quickly bring in Rahul Srivastav into this conversation. You know, Rahul, by the end of it, it does seem one's wasting too much time on whether Rahul Gandhi is going to speak or not speak, but the Parliament has begun. What we are expecting is that the first speaker from the opposition will be Rahul Gandhi, who will be speaking for the motion. Says primarily because I think though one day late, eventually what the Congress expects as a political strategy, as the mandate of the debate vis-a-vis Manipur and Rahul Gandhi's positioning. You see, remember that he may be speaking about the agenda could be Manipur, but the fact that he was targeted, he lost his membership of the House, it has been restored. I think that element definitely will figure. So how he is going to utilize the post-defamation case, expulsion from the House, I think going to form a very critical component, because if there is a sense of sympathy for Rahul Gandhi, one, I think he will try to use that. If there have been certain gains to the Congress party vis-a-vis a united opposition and what the united opposition plans to do, I think that will also form some part of his speech. And I think that will be very important, because what he says from here on, the BJP will be dissecting it. Because if he poses some very strong questions, Manipur or otherwise, and the BJP does not answer them properly, maybe hopefully Amit Shah may answer, and you have got speakers like Nirmala Sitharaman, Smriti Irani and others, who might be speaking, but I have been told that they might be speaking largely about what the government has achieved and target opposition vis-a-vis dynasty and other corruption and other issues, means there may be no firm answers barring on Manipur, barring when Amit Shah speaks. So the Congress can actually build that entire thing till tomorrow afternoon, when Prime Minister Narendra Modi is going to speak. All right, so, you know, at least that's what we can confirm, that Rahul Gandhi will be the first speaker from the opposition, would be taking to the floor of the Parliament, Lok Sabha, to speak for the motion. After that, what we are expecting is heavyweights from the Bharatiya Janata Party. You have Amit Shah, you have Smriti Irani, you have Nirmala Sitharaman. Rahul Gandhi's speech, in a lot of it, would be focused on Manipur. He has visited Manipur, he stayed there for days, and that is possibly also, not possibly, that is the bulwark of what has been the main moot point of the no confidence motion moved by the Congress. Amit Shah
will be replying to that. He's one of the very few who will be making speeches concerning Manipur from the Treasury benches. The other leaders have been told to keep their speeches focused on other issues and not quite Manipur. Manipur is a raw nerve where the Treasury benches or the BJP is concerned, but Amit Shah would be taking it head on, is what we are being given to understand from our sources within the Bharatiya Janata Party. I'll once again bring in Rahul Srivastav into this conversation. Rahul, do you see, yesterday, yes, it was a wasted opportunity. Now, in hindsight, if Rahul Gandhi is going to speak today, he might as well have spoken yesterday. But for him to speak today, how much traction will he get when you have somebody like an Amit Shah coming up next and answering point by point where Manipur is concerned? See, I think definitely what Rahul Gandhi says will get it. स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी ज़ोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठा ब्रदर। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा,
मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। डरिए मत, डरिए मत। अरे रक्षा मंत्री जी आज संभाल लेंगे हम लोग। पिछले साल 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया। अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। सर ये हमारा टाइम खत्म करने का साजिश है। समुद्र अधीर समुद्र के तट से माननीय सदस्य प्लीज ऐसे धमकाने का वाक्य मत बोलो यहाँ पे बोलिए। हाँ प्लीज। मैं समुद्र के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा यात्रा के दौरान, यात्रा के बाद कि राहुल तुम क्यों चल रहे हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों जा रहे हो। और जब वो मुझसे पूछते थे, शुरुआत में मेरे मुंह से जवाब नहीं निकलता। शायद मुझे ही नहीं मालूम था कि मैंने ये यात्रा क्यों शुरू की। जब मैं कन्याकुमारी से शुरू हुआ, मैं सोच रहा था मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लोगों के बीच में जाना चाहता हूं, मगर गहराई से मुझे मालूम नहीं था। थोड़ी देर में मुझे बात समझ आने लगी। जिस चीज से मुझे प्यार था, जिस चीज के लिए मैं मरने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैं मोदी जी की जेलों में जाने को तैयार हूं, जिस चीज के लिए मैंने 10 साल हर रोज गाली खाई, उस चीज को मैं समझना चाहता था। ये है क्या जिसने मेरे दिल को इतनी। भाई आप रनिंग कमेंट्री बंद करो, नहीं तो हम भी चालू करेंगे। सुनने का जिस चीज ने मेरे दिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, उसको मैं समझना चाहता। शुरुआत में जैसे मैंने शुरू किया, सालों से मैं हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं
तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। मगर भारत अहंकार को एकदम मिटा देता है, 1 सेकंड में मिटा देता है। तो हुआ क्या? 2-3 दिन में मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया। पुरानी इंजरी थी और जबरदस्त दर्द। हर रोज मैं उठूं और मेरे घुटने में दर्द, हर कदम में दर्द। तो पहले 2-3 दिनों में जो अहंकार था, जो मतलब भेड़िया जो निकला था, वो चींटी बन गई एकदम। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, वो पूरा का पूरा अहंकार गायब हो गया। और रोज मैं डर के चलूं कि क्या मैं कल चल पाऊंगा। ये मेरे दिल में डर था। और जब भी ये डर बढ़ता था, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद कर देती थी। एक दिन मैं सह नहीं पा रहा था, एक छोटी सी लड़की आती है, मुझे चिट्ठी दे देती। मैंने चिट्ठी खोली, 8 साल की थी, उसमें लिखा था, राहुल, आई एम वॉकिंग विद यू, डोंट वरी। उसने मेरे पैर में चोट देखी और उसने अपनी शक्ति मुझे दे दी। सिर्फ उसने नहीं, लाखों लोग ने। और शुरुआत में जब मैं चल रहा था, कोई किसान आता था, मैं एकदम पहले उसको अपनी बात बताता था कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस प्रकार से काम करना चाहिए। मगर इतने लोग आए, हजारों लोग आए कि थोड़ी देर में मैं बोल नहीं पाया। जो मेरे दिल में बोलने का डिजायर था, वो बंद हो गया। बोल ही नहीं पाया क्योंकि इतने लोगों से बोलना था। और एक सन्नाटा सा छा गया। भीड़ की आवाज थी, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। और जो मेरे से बात करता था, उसकी आवाज में सुनता गया। हर रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक आम आदमी, गरीब, अमीर, बिजनेसमैन, किसान, मजदूर, सबकी आवाज। आ रहा हूं। आप कल से रुके, अब थोड़ा और रुक लो, 5-10 मिनट रुक जाओ। तो ये चलता गया, मैं बात सुनता गया। और फिर मेरे पास एक किसान आया और किसान ने हाथ में रुई पकड़ी हुई थी और उसने मुझे कहा, अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे कहा,
मेरी आंख में देखकर उसने मुझे अपना वो रुई का बंडल दिया और उसने कहा, राहुल जी यही बचा है मेरे खेत का, यही बचा है और कुछ बचा नहीं है। मैंने उससे जो मैं नॉर्मली सवाल पूछता था, भैया आपको बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, बीमा का पैसा मिला, वो पूछा, और किसान ने मेरा हाथ पकड़ा। किसान मुझे कहता है कि नहीं राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, हिंदुस्तान के बड़े उद्योगपतियों ने वो मुझसे छीन लिया। मगर इस बार बड़ी अजीब सी चीज हुई। जब मैंने किसान को देखा और वो मुझसे बोल रहा था, तो जो उसके दिल में दर्द था वो मेरे दिल में आया। जो उसके आंखों में शर्म थी जब वो अपनी बीवी से बात करता था, वो शर्म मेरी आंखों में आई। जब उसकी जो भूख थी वो मुझे समझ आई। और उसके बाद यात्रा बिल्कुल बदल गई। मुझे भीड़ की आवाज नहीं सुनाई देती थी, मुझे सिर्फ उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती थी जो मेरे साथ बात कर रहा था। उसका दर्द, उसकी चोट, उसका दुख, मेरा दुख, मेरी चोट, मेरा दर्द बन गया। समझने की कोशिश करो। भाइयों और बहनों, लोग कहते हैं कि ये देश है, कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है, मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है, ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है, इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। और अगर हमें इस आवाज को सुनना है तो हमारे दिल में जो अहंकार है, हमारे जो डिजायर्स हैं, हमारे जो सपने हैं, उनको हमें परे करना पड़ेगा। जब हम अपने सपनों को परे करते हैं तब हमें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देती है, तब तक हिंदुस्तान की आवाज हमें नहीं सुनाई देती। अब आप कहोगे ये बात मैंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में क्यों रखी? इसका क्या मतलब है कि भारत एक आवाज है, भारत लोगों का दुख है, भारत लोगों का कष्ट है, मुश्किलें हैं। क्योंकि भाइयों और बहनों, अध्यक्ष महोदय, अब पूरा सूद समेत जवाब तुमको मिलेगा, फिर पूरा सूद समेत देंगे सर। फिर आप हमें मत रोकेगा सर। अध्यक्ष महोदय, फिर आप हमें मत रोकेगा सर, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमें मत रोकेगा, आप हमें मत रोकेगा, फिर आप हमको मत रोकेगा सर। हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप हमको फिर मत रोकेगा। तो स्पीकर सर, भारत एक आवाज है, भारत
इस देश के सब लोगों की आवाज़ है, और अगर हम उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हमें अहंकार को, नफरत को मिटाना पड़ेगा। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। बात नहीं करेंगे सर, प्रधानमंत्री की बात नहीं करेंगे सर। ऐसे मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे हैं, एक मंत्री खड़े होके बोल रहे हैं, एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं। एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे, पूरे सांसद खड़े होंगे यहाँ पे। बैठे नहीं है, चुपचाप करिए। पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा,
जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे सर प्लीज सर, शर्म करिए, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। अरे 2 भाग के हैं, शर्म करिए। माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें, प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। अरे भाई क्या बात है? राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई। बैठो सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, वो भी बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में क्या हुए हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं प्रॉब्लम, अपना बात करते हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। बैक रेवंत, सबको पीछे ले आओ। बैक हाईवे हो गया प्रतापन हो गया। आप भाषण नहीं सुनना चाहते? आप भाषण नहीं सुनना चाहते? प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, चलिए थैंक यू सबसे बड़ा थैंक यू प्लीज थैंक यू। एक मिनट बैठिए, एक मिनट प्लीज बैठिए, बालू जी प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए।
माननीय सदस्यगण, नहीं सकते। जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं, इस तरीके से सदन नहीं चलेगा। ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा है, ऐसे सदन नहीं चलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, अलग बात है। अब अपनी बात कहिए, गलत तरीका ये। नो, ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए, 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 आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज बैठिए। भारत सदन है, प्लीज बैठिए। भारत माता, प्लीज बैठिए। प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं। इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर, प्लीज, जैसे मैंने, प्लीज ब्रदर, प्लीज, भैया पानी ले, पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज, प्लीज, एक मिनट, प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज, प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते, नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते, नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए। आप एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजे, आप भी विराजे, आप भी विराजो, आप भी विराजो। आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो। आप चलो, आप बैठिए, बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज। आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 प्लीज। देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज, प्लीज, माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है। हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी
हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, और इसलिए सुनते हैं। नो, ये गलत तरीका माननीय सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आप क्वेश्चन लेने आए, गलत तरीका आपका। माननीय सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। आप सदन में किस तरीके का बोलना चाहते हैं? ये सदन है माननीय सदस्य, संसद है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India, merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र
अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। एक मिनट माननीय सदस्य, ये तरीका ठीक नहीं है। सदन में नारेबाजी करना तरीका ठीक नहीं है। प्लीज माननीय सदस्य बैठिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही है, यह तरीका ठीक नहीं है। नो गलत तरीका है आपका। नो गलत तरीका है आपका। स्मृति जी, पुनः कहती हूँ अध्यक्ष महोदय, शायद अपने ही कोलाहल में सुन न पाए हो। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था, न है, न कभी होगा। इनके यूपीए के अलायंस के एक नेता ने तमिलनाडु में एक वक्तव्य दिया है। पुनः कहती हूं कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की, ये चेहरा धूमिल है, ये चेहरा धूमिल है। मैं बताऊं किसका चेहरा है, मैं बताऊं किसका चेहरा है अध्यक्ष महोदय। ये चेहरा है गिरिजा टिक्कू का। सुन लीजिए पंडितों की दास्तान आप भी। गिरिजा टिक्कू का यह चित्र है। 90 के दशक में एक महिला यूनिवर्सिटी में अपना पेचेक लेने जाती है। सारी बातें करूंगी। अपना पेचेक लेने जाती है, बस से घर लौटने का प्रयास करती है। उसको 5 मर्द बस से खींचकर टैक्सी में ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं और फिर आरी से उसका बदन काट देते हैं। जब गिरिजा टिक्कू के जीवन पर एक फिल्म में एक प्रति आया, मैं आज कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने उसको प्रोपेगेंडा कहा। सरला भट्ट, आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी। 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए
बताइए गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? हर गली हर मोहल्ले में एक स्लोगन गूंजता था पंडितों के बीच, रलियू सलियू गलियू। पुनः कहती हूं, रलियू सलियू गलियू। आप चिल्लाना बंद करें, समझे पहले। रलियू सलियू गलियू। या तो अपना धर्म बदलो, या कश्मीर छोड़ो, या यहीं मरो। उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है। उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में। मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। आज बोलती हूं, त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज ये भारत की बात करते हैं। कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं, आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलियू सलियू गलियू का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। आज कई यहाँ पर बहनें उपस्थित हैं जो वहां से अपनी आक्रोश को और राहुल जी के प्रति समर्थन को व्यक्त कर रही हैं। 84 के दंगों का विवरण सुनकर, गिरिजा टिक्कू का विवरण सुनकर, और मैंने स्वयं अध्यक्ष जी मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात कर त्वरित रूप से वहां पर लोग पकड़े जाएं, ना सिर्फ इसका वहां पर
निवेदन किया, बल्कि वो लोग पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी जारी है। लेकिन जो आज यहाँ बैठे हैं, मैंने उनसे पूछना चाहती हूँ, जो चले गए, उन्होंने कहा वो राजस्थान गए हैं। और राजस्थान में क्या हुआ महोदय? गिरिजा टिक्कू को तो 90 के दशक में आरी से काट दिया गया था। भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। इस सदन से 2 महिला एमपीज उस परिवार से मिलती हैं। बच्ची जब जिंदा थी गैंगरेप के बाद महोदय, उसे काटा जाता है, फिर उसे भट्टी में डाल दिया जाता है। ये इन महिला सांसदों का वक्तव्य है कि जिस बच्ची को 14 साल की उम्र में जब जीवित थी, गैंगरेप के बाद भीलवाड़ा राजस्थान में काटा गया, जलाने के लिए फेंका गया, उसका मात्र एक हाथ भट्टी के बाहर छूट गया था। मैं आज पूछना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, ये आज जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, न्याय की गुहार इन्होंने तब नहीं लगाई जब 60 साल की एक महिला का पश्चिम बंगाल में उसकी नाती के सामने गैंगरेप हुआ। कोर्ट में केस लंबित है, इनका दिल नहीं दहला और पूछ रहे थे कि मणिपुर के बारे में, आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते। जिन्होंने प्रस्तावना की उनसे कहती हूँ, नल्ली का मैसेकर हुआ, 5 मिनट के लिए कांग्रेस की एक नेत्री गई, लेकिन इनका क्या रुख था तब? 2012 में तरुण गोगोई जी ने स्वयं वक्तव्य दिया है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की केंद्र की सरकार ना ट्रूप्स दे रही है, ना इंटेलिजेंस दे रही है। कोकराझार की बात करते हैं, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का वक्तव्य है। कोकराझार में हिंसा होती है, धुबड़ी में 3-3 महीने कर्फ्यू रहता है। आज महोदय जो लोकतंत्र की दुहाई दे चुके हैं, हम बार बार इस सदन में बार बार इमरजेंसी की गाथा को याद करते हैं। इस सदन में हम लोग बार बार उन नेताओं को, उन सामाजिक संस्थाओं को, उन मीडिया के बंधुओं को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसे जबरन बंद कर गई, उसको, इस पर विस्तृत चर्चा होती है। लेकिन इमरजेंसी के कालखंड में साधारण महिला का इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने क्या हश्र किया। स्नेहलता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलुरु की जेल में बंद किया गया, और इसलिए बंद किया गया क्योंकि वो सोशलिस्ट थी, भाजपाई नहीं थी, सोशलिस्ट थी। और जब बंद किया 2 मई 1976 को, तब उन्होंने अपनी प्रिजनर्स डायरी में लिखा, और मैं कोट कर रही हूं, जो पब्लिकली अवेलेबल है। As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. When a human being is sentenced, is the punishment not enough? Must the human body be degraded and humiliated? ये स्नेहलता रेड्डी के शब्द है, जो उन्होंने इमरजेंसी के कालखंड में जेल में लिखे, अपनी अचीवमेंट्स को बताते हुए। जून 6, 1974 में स्नेहलता रेड्डी लिखती है that at least I have achieved something here. I have stopped the horrible beatings the women prisoners used to get. ये कांग्रेस का इतिहास है, और ये भारत की बात करते हैं। अस्थमा की पेशेंट थी ये महिला,
जेपी जी को तो डायलिसिस ना करने दिया, एस्थमा की इस पेशेंट को दवा नहीं लेने दी, वो 2 बार एस्थमेटिक कोमा में गई और एस्थमेटिक कोमा में जाते जाते जब उनकी हालत बिगड़ी तो पैरोल पर उनको 15 जनवरी 77 में छोड़ा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है और जिनकी हत्या हुई आज वो इनको कटघरे में नहीं ला सकते, इसलिए आज इस सदन में मैं उनका नाम ले रही हूं, उनके बारे में बोल रही हूं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में KPMG की एक रिपोर्ट है जो इनके कार्यकाल से संबंधित है, जो कहता है कि करप्शन की वजह से यूपीए की कार्यकाल में हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को 9% का नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज बोल रही थी, लेकिन ये चुप थे, आज भी चुप हैं। जो लोग जीरो लॉस थ्योरी सिखाते थे, आज उसी कांग्रेस के एक नेता को कोयला घोटाले के लिए सजा हुई है और वो चुप है। लेकिन चुप और बहुत सारी चीजों में रहे महोदय। 2005-06 में यूपीए की सरकार को यह ज्ञात हो गया था कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। 2005-06 में इनको पता था, ये सरकारी सर्वे में ज्ञात हुआ है, लेकिन ये चुप थे। 2010 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा, इनकी तब सरकार थी, कि स्वच्छता न होने की वजह से देश की जीडीपी पर 6.4 का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये चुप रहे। महिला का बलात्कार में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। 2014 तक देश में केवल 39% आबादी को इन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित करके दी। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट। ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष जी, शायद इनको पता नहीं है कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना या सूर्यास्त का इंतजार करना, शौच के लिए बाहर जाना और वहाँ उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है, इस बात से इनको कोई सरोकार नहीं, इसलिए उपहास का विषय बनाते हैं। आज मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी है कि मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि खुले में शौच करने वक्त औरत का बलात्कार होता है, ये उपहास उड़ा रहे हैं और महिला उपहास उड़ा रही है। शायद यही लक्षण है कांग्रेस मिथ अलायंस के कि औरत का बलात्कार हो तो ये हंसे, भारत माँ की हत्या की बात हो तो ये यहाँ पर तालियां पीटे, ये कांग्रेस का लक्षण है। इनकी प्रस्तावना के वक्त ये कहा गया
कि हम बात करेंगे मात्र एक व्यक्ति से, हम किसी मंत्री से बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्रियों की कार्यशैली पर इनको चर्चा नहीं करनी। और शायद सच भी है, इनका अपना अनुभव है कि इनके यहाँ पावर का केंद्र बिंदु एक था। यहाँ पर फर्क ये है कि हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागीदार हैं। इसलिए आज जब गजेंद्र शेखावत जी के मंत्रालय की ओर से टॉयलेट की व्यवस्था होती है, तो मैं एक महिला सांसद और नागरिक के नाते इनका भी उतना ही अभिनंदन करती हूं जितना कि प्रधानमंत्री जी का। जल जीवन मिशन महोदय, हमारे देश में जब इनकी सरकार थी तो मात्र 3 करोड़ परिवारों तक नलके से पानी पहुंचता था। अब 2019 का आंकड़ा कहता है कि आपने तब तक 9.5 करोड़ तक पानी पहुंचाया और अब लगभग 19 करोड़ 40 लाख और 12 करोड़ 40 लाख तक आपका पानी नलके से पहुंच चुका है। लेकिन इनको इससे भी सरोकार नहीं कि अगर टॉयलेट बना, महिलाओं का शोषण कम हुआ, देश की साधारण महिला का सम्मान बढ़ा, तो इनसे इनका कोई सरोकार नहीं। स्पष्ट है, गरीब के घर में नल से जल पहुंचा तो कांग्रेस का उसका कोई सरोकार नहीं। ये स्पष्ट है और सही है। हमारा सरोकार है, देश हमारा है, सेवा हमारी है। आज ये उत्तेजित है कि मैं इस सदन में मंत्रिमंडल के अपने कई सहयोगी साथियों का वर्णन करती हूं। एक ऐसी महिला मंत्री का वर्णन कर रही हूं जो वर्तमान में नहीं है। जनधन के माध्यम से 23 करोड़ महिलाओं का बैंक का खाता खुला। ये इनके लिए कोई मान्यता नहीं रखता, ये मुझे स्वीकार है, ये हमारे लिए अहम है। मुद्रा के माध्यम से 40 करोड़ लोगों को जो जीवन में कभी व्यवसाय नहीं कर पाते थे, जिनके पास कांग्रेस की पर्सनल डायलिंग मशीन नहीं थी, उनको मुद्रा का लोन मिला। 27 करोड़ लोन महिलाओं को दिए गए। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 23 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया मुद्रा के माध्यम से। इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 8 करोड़ नौजवान हमारे राष्ट्र के इतिहास में फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स बने। इनका उससे कोई सरोकार नहीं। 1,80,000 अकाउंट्स में स्टैंड अप इंडिया का 40,000 करोड़ का पैसा दिया गया। 80% महिलाएं। एक मिनट प्लीज, क्या तरीका है? वह अपनी बात कह रही है, तथ्यों के आधार पर कह रही है। आपको खंडन करना है तो आप बोलना, जब तथ्यों के आधार पर करना गलत बात ये। नो गलत। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपकी अनुमति से सर मैं पुनः बोलूं तो जैसा कि मैंने कहा, महिला का अगर आर्थिक सामाजिक उत्थान होता है तो इससे इनको कोई सरोकार नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी तब मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्होंने 80,000 करोड़ का लोन दिया। हमने 9 करोड़ महिलाओं को 5 लाख करोड़ की आर्थिक व्यवस्था करके दी देश के सेल्फ हेल्प ग्रुप में। यह हमारा अभिमान है। जो आज महिला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, टोका-टोकी बंद करो सर। जब इन्होंने महिला संबंधित बजट की व्यवस्था की तब इनके कार्यकाल से 130% ज्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं को समर्पित किया। ये हमारा अभिमान है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में
महिलाओं को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला। आज तक 2,60,00,000 महिलाओं ने हॉस्पिटल वेलनेस सेंटर में सुविधाएं ली। ब्रेस्ट कैंसर में 12 करोड़, सर्विकल कैंसर में 8 करोड़ महिलाओं ने स्क्रीनिंग कराई। इनका उससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि इनका उनसे सरोकार है दिल्ली में, जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं की। इनका उनसे सरोकार है। देश में मोदी सरकार में 3,84,00,000 घर बने, जिनमें से 2,86,00,000 महिलाओं को मिले। इनका उनसे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि गरीब महिला लखपति दीदी बन गई, वो हमारा अभिमान है, इनका नहीं। हमारे देश में 8,50,00,000 बेटियों ने समग्र शिक्षा के माध्यम से स्कूल में सेवा ली, मुफ्त टेक्स्ट बुक की सेवा ली। बेटियां का ये उपलब्धि हमारा अभिमान है, इनका नहीं। 5 लाख से ज़्यादा बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हुई, ये इनका अभिमान नहीं, हमारा अभिमान है। हमें अपनी बेटियों पे गर्व है। 5 लाख दिव्यांग बेटियों को मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ये सेवा हम देश की बेटियों को दे सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रभु का उपकार है। 1,28,000 बेटियों को मेरिटोरियस स्कॉलरशिप दी जाती है, 12,000 रुपए की हर साल। ये सेवा का मौका परिवारों ने हमको दिया। 2 लाख से ज़्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज एलिमेंट्री एजुकेशन में बेटियों की एनरोलमेंट 100% है इस देश में। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आज पहली बार फीमेल एनरोलमेंट उच्च शिक्षा में महोदय 2 करोड़ से ज़्यादा हुआ है महिलाओं का। ये देश के लिए गौरव की बात है। आज दलित बेटियों का एनरोलमेंट बढ़ा है 38%। दलित बेटियों का उल्लेख करती हूँ, ये चिल्लाते हैं, इनको दलित बेटियों से सरोकार नहीं, हमको है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आदिवासी बच्चे, लड़कियाँ 63% उनका एनरोलमेंट बढ़ा महोदय। आदिवासी बच्चों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं। आदिवासी बेटियों ने हमारे प्रधानमंत्री को सेवा का मौका दिया। ये हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो महिला ने नॉर्थ ईस्ट में 34% की इंक्रीज हुई है एनरोलमेंट में। नॉर्थ ईस्ट के मेरे सभी साथियों को, चाहे वो सदन में कहीं भी बैठे हों, महिलाओं की दृष्टि से मैं अभिनंदन देती हूँ। आज हमारे देश में महिला जो PhD करती है, 99.2% की वृद्धि हुई है एनरोलमेंट में PhD करने वाली महिलाओं में। ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के नाते गौरव की बात है। आज जो महिला शैक्षिक संस्थानों में सेवा दे रही, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में 66%, 66% उनकी वृद्धि हुई है। आप हो करते जाएं, हम तो उनके लिए बल्ले बल्ले ही करेंगे। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि EPF में 28,70,000 महिलाओं ने अब अपने आप को सब्सक्राइबर बनाया है। आज 2017 से लेकर 22 तक लगभग 1400 महिला साइंटिस्ट को भारत सरकार की विविध स्कीम्स के अंतर्गत सहयोग मिला है। आज महिलाओं को मैटरनिटी लीव में 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है। आज महिलाओं ने 3 करोड़ बेटियों ने, महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 13,700 करोड़ रुपया अपने बैंक के खाते में पाया है। इस सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी को आभार और बेटियों का अभिनंदन। आज हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूल में
पढ़ सकती है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को आभार। आज हमारी देश की बेटियां आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन पा चुकी हैं। हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी बेटियों का आभार। आज जो महिला और महिला हक के लिए यहाँ बोल रहे हैं, आप विषय पे बोल रही हैं और अविश्वास प्रस्ताव पे सब विषय पर बोल सकते हैं। ये तरीका अच्छा है क्या? बोलिए माननीय। महोदय, वो भी शायद मजबूर हैं, उनको भी रिमोट से डायरेक्शन आया है। इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक तरफ हमारी बेटियों ने सैनिक स्कूल में, आर्म्ड फोर्सेस में अपने प्रतिभा के आधार पर देश का गौरव बढ़ाया है। दूसरी ओर बिना किसी पुरुष सहयोगी के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 4,313 मुस्लिम बहनें अकेली हज के लिए गईं और सुरक्षित हिंदुस्तान लौटी। जो महिला हक की बात करते हैं महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, महिला हक को संरक्षित करने के लिए जब हमारी सरकार ट्रिपल तलाक के कलंक को मिटाना चाहती थी, तब महिला के हक में नहीं बल्कि वोट बैंक के लालच में इन्होंने सदन की कार्रवाई को त्याग दिया था। आज जब ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं महोदय, तो ये कहना उचित होगा कि एक तरफ निर्भया फंड की रचना की घोषणा करते हैं 13 में, एक काम निर्भया फंड में नहीं करते, लेकिन जो निर्भया के बलात्कारी हैं उनको कांग्रेस नित अलायंस के लोग बलात्कारी के हाथ में 10,000 रुपए और एक सिलाई की मशीन देते हैं। आज हमें इस बात का गौरव है कि देश में 42 प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ की लगभग लागत से भारत सरकार के सौजन्य से बन रहे हैं। जो महिला सुरक्षा के लिए ये ना कर पाए, वो आज प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत देश के 983 रेलवे स्टेशन पर महिला पैसेंजर्स के लिए 24 घंटे सुरक्षा का प्रावधान किया गया। आज कोंकण में वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम की विशेष व्यवस्था महिला संरक्षण और महिला सुरक्षा के लिए की गई। आज चूंकि रेल मंत्री बैठे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब भारत सरकार के सौजन्य से महिला सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं अध्यक्ष महोदय? गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है।
13 से 20 महीने का घरभाषे दिखाया जा रहा है राजस्थान में और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। लेकिन इन्हें सरोकार इनके नेता को किससे है? चीन से है। तो चूंकि सब चीन में इतनी रुचि लेते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, इसलिए आज एक सुखद समाचार भी सुनाती हूं। चीन में 31st यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ। 1959 से लेकर आज तक भारत को मात्र 18 पदक मिले। इस बार 26 मेडल का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के बच्चों ने स्थापित किया। भारत माँ के टुकड़े के लिए तालियां बजाते थे, भारत माँ के बच्चों के लिए तो बजा दो। 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। आज देश के यूनिवर्सिटी के छात्र देखें कि 31st यूनिवर्सिटी गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले छात्रों के लिए मैं गुहार लगा रही हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां अभिनंदन कर दे, लेकिन वो अभिनंदन से भारत के बच्चों को वंचित रखते हैं। बात अभिनंदन की निकली तो एक वो भी थे जिन्होंने आसमान चीरा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज जो व्यक्ति यहाँ पर भारत की आवाज का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने भारत की आवाज में आवाज मिलाकर तब नहीं बोला जब आतंकी हमला करते हैं। उन्होंने भारत के आवाज से अपनी आवाज को भिन्न करते हुए इस सदन में भारत के रक्षा बलों से प्रमाण मांगा इस सदन में। लेकिन प्रमाण क्यों मांगा? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा होगा। और प्रमाण मांगने का क्या सलीका है, ये मीडिया के मित्रों के माध्यम से आया है ध्यान में देश के। न्यूज क्लिक की आज बात करना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूं। न्यूज क्लिक, नेवल सिंघम कुछ पत्रकारों को हिंदुस्तान में लिखते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ न्यूज सर्कुलेट होनी चाहिए, कैसे चाइना के समर्थन में अलग अलग आर्टिकल लिखने चाहिए और इसे एक बार छपवा दो तो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन इसको इकट्ठा करके फिर काम आगे बढ़ाएगा। मेरे एक पार्लियामेंट्री सहयोगी निशिकांत जी ने इस पर जब विषय उठाया तो मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस पार्टी ने डिमांड नहीं की कि अगर कोई बाहरी ताकत का पैसा लेकर हिंदुस्तान में व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है, हिंदुस्तान को कलंकित करना चाहता है तो उस पर कार्रवाई करो। ऐसा कांग्रेस का पक्ष नहीं था। कांग्रेस ने पक्ष ये लिया कि जो निशिकांत दुबे के मुंह से शब्द निकले हैं उनको एक्सपंज कर दीजिए। लेकिन ये जो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन है महोदय जी, जिसके बारे में ना आप ईडी को माने, न्यूयॉर्क टाइम्स को माने, वो ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन के जो मुख्य रिसर्चर हैं उनके वक्तव्य को कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पर क्यों डालती है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। जो जानबूझकर भारत के किसानों के हितों के खिलाफ बोलते हैं, उनका वक्तव्य ट्राई कॉन्टिनेंटल पब्लिकेशन वालों का जो सीनियर फेलो या रिसर्चर है उसका वक्तव्य कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के फेसबुक पर 19 अप्रैल 2019 को क्यों पब्लिश होता है, ये थोड़ा बहुत शोध का विषय है, ये थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है जी। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब प्रस्तावना हुई, मैं तो प्रस्तावना के विरुद्ध खड़ी हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर
राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ पुनः विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्तव्य देती हूं। लेकिन राहुल जी ने किस पर विश्वास जताया? राहुल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर। कहा सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने ना पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग राहुल जी को बताना पड़ेगा सेक्युलर कैसे हुई। राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? राहुल गांधी को आज जवाब देना होगा, है तो नहीं? उनको आज जवाब देना होगा। जिस अफजल गुरु ने इस संसद पर हमला किया उस अफजल गुरु के संरक्षक समर्थक को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया, जिसने कहा यह राहुल गांधी की देशभक्ति है। राहुल गांधी की देशभक्ति आज बताती हूं। इन्होंने, घबराइए मत, आप ही के नेता बोलकर गए हैं, घबरा क्यों रहे हैं? बैठिए, आराम से बोल रही हूँ। जरा संक्षेप कीजिए। मैं पुनः बोलना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे व्यवधान आए। अब राहुल जी की बात चली है तो कृपया थोड़ी सी कर दीजिए। दोबारा कहती हूँ, क्या बोले हैं और क्या बाहर बोले हैं। देश के बाहर गए तो कहा आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्क्लेव में that there is going to be a Mars upsurge. India has massive amount of polarization. ये राहुल गांधी के शब्द हैं। इसका मतलब राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा हिंदुस्तानी सौहार्द की भूमिका में नहीं रहते। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी भाईचारे में इतना विश्वास नहीं करते because there is a massive amount of polarization. और राहुल गांधी ने कहा there is going to be a mass upsurge. Now the question is, how can the opposition effectively use the upsurge to change politics? मतलब उन्होंने कहा कि देश में उथल-पुथल होगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विपक्ष इस उथल-पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये मैं सोच रहा हूं। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूं, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहां गए? अमेरिका गए? तंजीम अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावेद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने
अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज हम क्या जाने। आज अरे दामाद का मामला है, बैठ जाओ भाई। दामाद का मामला, दामाद आपका नहीं है, जिनका है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठ जाइए भाई, जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे? बैठिए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे, बैठ जाइए प्लीज प्लीज। आप बताइए, इस पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अजीत दा ने भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है, फिर एक बार मोदी की बारी। ओके नाउ प्लीज कंक्लूड। तो मैं लिसन प्लीज, ये आज यहाँ पर उल्लेख कर रहे थे किसान की। आप भी बैठिए, आप किस लिए खड़े? ये बात आज कर रहे थे किसान की, तो किसान का क्या हश्र करते हैं वो मैं बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दें। ये मैं कहना चाहती हूँ उस क्षेत्र की बात, जिसकी मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ पर बैठिए प्लीज, बैठिए दलित प्लीज मांग कर रहे थे विद्यालय की। 1982 में किसानों ने 4 बीघा 2 बिस्वा जमीन इंटर कॉलेज के लिए दी और अमेठी में धोखे से किसानों की ये जमीन हड़पने वाले फाउंडेशन का नाम गांधी खानदान है। 2016 में राहुल जी दौरे में गए तिलोई, वहाँ पर लोगों ने कहा 200 छात्रों ने सुनिए कि जमीन वापस कर दो, हमारे लिए कॉलेज की व्यवस्था करो। इन्होंने अपने अलायंस पार्टनर उन छात्रों को जेल भगा दिया, 17 में जेल भगाया। सेठा गौरीगंज में प्रमाण है, आ जाओ गौरीगंज, दूध का दूध पानी का पानी यही कर दूंगी। गौरीगंज सेठा रोड पर जमीन हब्जाली, भूसियावा मार्ग पर नरसिंहभानपुर पर मुंशीगंज में जमीन हथियाली। ये उनका संस्कार है। जमीन कौन कौन हड़पता है, ये कांग्रेस की गाथा स्पष्ट है। जहां ये है वहां पर आज मैं अभिनंदन देती हूँ रेल मंत्री का कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी 10,000 कोचेस तब बनी जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीड़ा हो रही है जी। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि आज जो किसानों का दम भरते हैं, बालियान साहब शायद यहाँ नहीं है, मैं अमेठी के किसानों की ओर से विशेष बालियान साहब आपको नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करती हूँ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेठी में खाद की रैक उतरी जब मोदी आए। इन्होंने न खाद दी, गौरीगंज में किसानों पर लाठीचार्ज करते थे, राजनाथ जी इसके साक्षी हैं। इन्होंने 80% लोगों के पास अमेठी में, जहां 5 दशक इन्होंने राज किया, 80% लोगों को शौचालय नहीं दिया, 60% लोगों के घर में बिजली नहीं दी। और ये आज लोकतंत्र की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा की बात करते हैं। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अमेठी का पहला सैनिक स्कूल मोदी जी ने दिया, 7.5 लाख लोगों को मुफ्त अनाज मोदी जी दे रहे हैं। अमेठी का आज पहला मेडिकल कॉलेज, जिसके नाम से इस खानदान ने जमीन हड़प ली थी, वो नरेंद्र मोदी ने दिलवाई। आज मैं इतना कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय, जो अभी है नहीं, जो 50 साल की उम्र के बाद देश देखने निकले थे, वो देश के किस कोने में वर्तमान में है मैं नहीं जानती,
लेकिन इतना देखिए जरूर एक सेकंड एक मिनट और देखिए रोम के आपने एक फिलोसोफर आपने का ये मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। नेशन कैन तो सर्वाइव मंत्रिमंडल उस संबंध में बोलेगा, उनको बोलने का अधिकार है। प्लीज आप बैठ जाइए। मणिपुर पर चर्चा आपने नहीं मांगी है, वो एक विषय है, उस पर चर्चा हो रही है, उसका उत्तर भी आएगा, परंतु नो प्लीज सिट डाउन। But what, sir, of the enemy who speaks slyly? What of that enemy? आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे। आज उनसे कहना चाहती हूं कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे। 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूं और भारत मां का जयकारा लगाते हुए जो भारत मां की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूं, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा। श्री मिथुन रेड्डी जी, sir, please now sit down. No, nothing. No. Midun Reddy ji, please. Sir, we have a tradition of respecting. Sir, the house is not in order. Please. No. Please, listen. No, nothing. बैठिए. आप please, no, please cooperate. जी. बैठिए. No. नथिंग, कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आप प्लीज बैठ जाइए। आप यू आर वेरी सीनियर मेंबर, प्लीज बैठिए। नो प्लीज बैठिए जी। सर, टू मच ऑफ नॉइज सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर सर। बैठिए, बैठ तो जाइए। अच्छा एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं? This motion debate on day 2, Smriti Irani with her fiery attack after Rahul Gandhi spoke in the parliament. In fact, Smriti Irani condemning Rahul Gandhi over the flying kiss, accusing him of giving a flying kiss. Of course, Smriti, while listing out the number of crimes that have happened in Congress-ruled states, says also that Rahul Gandhi has basically given a flying kiss, and that just shows his culture. While at a time when there is a serious conversation happening, she says misogynistic Rahul Gandhi gives a flying kiss. That's Smriti Irani. In fact, she has spoken extensively about Manipur and also pointed fingers at the Congress government for allying with partners who targeted Hindus in Kashmir. Extensively, her conversation dominated on Hindu genocide in Kashmir. In fact, at this point, we see Rahul Gandhi, who has left the parliament. He's already headed to Rajasthan, as claimed. He says he wanted to visit Rajasthan by noon, so right after he gave his speech, he walked out. Smriti Irani continued to make her fiery speech in response to Rahul Gandhi. And here she claims that Rahul Gandhi gave a flying kiss. And now Smriti Irani takes objection to it. And you have multiple leaders within the BJP now filing an objection to that gesture. That's, in fact, Shobha Karanlaje, we believe, has also filed a complaint against Rahul Gandhi for that flying kiss that he gave. And while the Manipur debate went on with Rahul Gandhi opening up the debate in the Lok Sabha, you had Smriti Irani who took after that. And while leaving, Rahul Gandhi, we believe, blew a flying kiss. The BJP now, of course, condemning this, calling Rahul Gandhi misogynistic and
We see that Shobha Karanlaje, who hails from Karnataka, has filed a complaint for this quote-unquote indecent act. A union minister now files a complaint on Rahul Gandhi giving a flying kiss. In fact, Shobha says indecent act by Rahul Gandhi in the parliament. This is not done. She's filed a formal complaint taking this up. While Rahul Gandhi, in his fiery speech, spoke about the Prime Minister not visiting Manipur, says that the Modi government has murdered India in Manipur. These were his words. And while he spoke extensively, giving examples, quoting examples of victims, female victims, many of the women who were abused, their children who were killed, they were raped. As he was listing out those examples and ended his speech, Smriti Irani took on and he walked out of the parliament and just when blew a flying kiss. The BJP says this is an indecent act, and taking objection to this, you have Shobha Karanlaje now, who's filed a formal complaint with this regard. Here you have Rahul Gandhi, who's already left to Rajasthan. But Smriti Irani, while speaking extensively, condemned Rahul Gandhi's words, saying that India is killed in Manipur, that the BJP has killed India in Manipur. And while she went on with her fiery speech, Rahul Gandhi walked out, blew a flying kiss. This the BJP calls an absolute indecent gesture. Shobha Karanlaje now files a complaint with the Speaker against this inappropriate behavior of Rahul Gandhi in the House. In fact, he's accused of blowing a flying kiss while walking out. I'm cutting across to Paulami Saha, who's right there in the parliament. Paulami, did you witness Rahul Gandhi blowing that flying kiss? And this is right at a time when he's talking extensively about Manipur, about the suffering of women in Manipur. When Smriti Irani began to react or respond to that debate, he walks out of the parliament and we believe he blew a flying kiss. But at who? Well, this was in fact towards the Treasury benches, Nabila. It was a momentary thing that happened. It seems like he dropped his papers as he was leaving because he didn't plan to sit for Smriti Irani's address. So as soon as he sat down, she stood up and started addressing the House, and he knew probably that she's going to take pot shots at him. So he immediately got up from his seat. He was to leave, immediately dropped papers in a hurry. He bent down to pick up those papers. There was a bit of heckling that happened from the Treasury benches, and in a very casual gesture, as he picked up those papers, he blew a flying kiss to the Treasury benches as he left. But this obviously has created quite the sensation in Parliament since, because as you heard in Smriti Irani's speech as well, she of course raised an objection while speaking, clearly stating that that was completely inappropriate, misogynist and completely obscene in a house which seats female members of Parliament as well. And that's exactly why BJP members of Parliament have in fact reached, women members of Parliament have reached the Speaker's chamber right now to file an official complaint with the Speaker against Rahul Gandhi for what they say is his inappropriate behavior at the moment. Those are the words of Smriti Irani, very clearly saying only a misogynistic man can give a flying kiss while leaving the Lok Sabha, where female MPs are being seated. Smriti Irani says, hitting back at Rahul Gandhi for his so-called indecent gesture. I'm cutting across to Shiv Arur, also joining us from the newsroom. Shiv, Rahul Gandhi, we know, his behavior and his character itself is largely casual for a member of Parliament. He dropped some papers, Paulami tells us, he bent to pick it up, and that's when he blew a flying kiss very casually to the bench and walked out. Smriti Irani says this is disrespect to women who are seated there, women MPs who are seated there listening to women being troubled in Manipur. Nabila, the spotlight is going to be on Rahul, and I think the Congress, would have expected that the BJP was simply waiting in the wings for something to latch on to, because at the end of the day, this is a no trust vote. The BJP would have been simply looking for an opportunity to go off on a tangent, perhaps, and attack Rahul Gandhi for some specific action. You're right, Rahul Gandhi has a casual manner. The hug and wink episode in 2018 is perhaps the most famous one. That also backfired badly.
this time we don't really know what happened apart from what eyewitnesses, including Polami Saha, are actually telling us. What we don't know is, whether the cameras captured anything, whether it was disrespectful. Seems quite unlikely, knowing, Rahul Gandhi's mannerisms. But given the emotive nature of the debate at hand, since it is about women, women's safety, etc., I think the BJP was waiting for even a half chance of something like this to happen so they can go the whole hog. And you've seen how immediate the action has been. Shobha Karandlaje immediately files a complaint. All of the BJP women MPs have reached the Speaker's chamber. They've escalated it very quickly, which tells you two things. A, they were waiting, very, very actively for something like this to happen. And B, they were fully prepared that Rahul Gandhi, at some point of time, either through his words or his actions, would give them some fodder to latch on to, and take this to completely another level. Remember that Smriti Irani dedicated most of her speech to women's safety as well, but was talking about Kashmir, the 1984 Sikh genocide, etc. But for the BJP to take this particular gesture, alleged gesture, we don't know what happened, we don't know because it was not captured on camera, to turn it around on Rahul Gandhi on the issue of women's safety, misogyny, etc., seems to be a strategy. We'll have to see how it plays out. But it's something that the BJP has been speaking of extensively, that Rahul Gandhi isn't a serious politician. And it appears, like you rightly said, they've got something to latch on to. While Rahul Gandhi is listing out the atrocities on women in Manipur, BJP is listing out atrocities on women in various other Congress-ruled states. Here is Rahul Gandhi, who walks out of the parliament with a gesture that he may think is cool, but clearly the BJP hasn't taken this well. A formal complaint that's been filed now by Minister Shobha Karandlaje. Let me cut across also, Shiv, stay with us. Preeti Chaudhary joins us right outside the parliament. Preeti, Rahul Gandhi walks out, heads to Rajasthan, but in a very casual manner, post his fiery speech, blows a flying kiss. That's precisely what the BJP has taken him on. Well, you're right there. The BJP has taken him on. Smriti Irani raised that objection in her speech when she followed it up after Rahul Gandhi had spoken, where she said that Rahul Gandhi, while he was leaving, blew a flying kiss to the Treasury benches, and in which was sitting some women, and it's an affront to women, is what Smriti Irani had said. At the back of it, Shobha Karandlaje, Hema Malini, Lockett. I don't want to say anything, but there was little commotion going on. Did you see him blow that flying kiss towards, you found it inappropriate? That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. She was part of the women's delegation that visited the Speaker. Complainants, you made a complaint with the Speaker as well about Rahul Gandhi's behavior. Do you want to say something? I don't want to say anything, but there was little commotion going on. Did you see him blow that flying kiss inappropriate? That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. She was part of the women's delegation that visited the Speaker. One of the complainants, you made a complaint with the Speaker's behavior. Do you want to say something? I don't want to say anything, but there was little commotion going on. Did you see him blow that flying kiss towards, you found it inappropriate? That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. She was part of the women's delegation that visited the Speaker. One of the complainants, you made a complaint with the Speaker as well about Rahul Gandhi's behavior. Do you want to say something? I don't want to say anything, but there was little commotion going on. Did you see him blow that? बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा. कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं. जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती. तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं. और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप अपना फुटेज निकालिए, और जब ये बात निकल कर सामने आएगी
तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी, और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पूरा जोर विरोध करते हैं। So that was, of course, Darshana Jardosha, Union Minister, and Shobha Karandlaje, Union Minister, who led the delegation of women BJP MPs who have filed a complaint with the Speaker demanding strict action against Rahul Gandhi for what they claim was his indecent and inappropriate behavior in the Lok Sabha after he made his speech today. The Congress is also now addressing a press briefing. They've got their women members of parliament as well. Jyoti Mani is being led by other women MPs as well, who are coming in right now to address along with Gaurav Gogoi. So female members of parliament from the Congress party now slated to address the media. Jyoti Mani, of course, is one of those who's leading this delegation of women MPs from the Congress party who are scheduled to now speak after the BJP delegation has just spoken. Pallavi, who had a chat with Shobha Karandlaje. Shobha Karandlaje is the Minister of State for Agriculture. She has now taken this up formally, filed a formal complaint against Rahul Gandhi for this quote-unquote indecent behavior. Pallavi joins us for more on that. Pallavi, if you could narrate to us once again, we know you followed Rahul Gandhi while he was exiting. Did you spot him give that flying kiss to the bench? What exactly happened? Please take us through the sequence. All right, stay with us. I'm cutting across to Ravi Shankar Prasad of the BJP. माता की हत्या कर दी। राहुल गांधी, आप चाइना से दोस्ती की बात करें, फंडिंग लें, भारत माता अजेय है और अमर है, लेकिन आपको भारत माता की साख कौन बताएगा? अब चलिए, राहुल गांधी से और अपेक्षा क्या करती हैं? राहुल गांधी जितना बोलते हैं, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व को उतना ही हल्का करते हैं। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, चाहिए बोल दिया। All right, that's Ravi Shankar Prasad. Of course, even as Rahul Gandhi made some pertinent points, it appears that his entire talk now gets diluted with that one act of his, that flying kiss that he gave directed towards the bench while he was walking out. Pallavi joins us for more on that. Pallavi, take us through the sequence of events. Has cameras captured it? We know Shobha Karandlaje has taken up a formal complaint on this. Paraded in a public and gang rape. There are thousands of children languishing in the... By giving plain kiss to us, Smriti Irani ji, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट किया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं कि नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती।
तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकल कर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पूरा जोर विरोध करते हैं। All right, you have BJP netas who claim after Rahul Gandhi completed his speech, he gave a flying kiss and walked out. This is absolute disrespect to women, especially at a time when we're speaking about Manipur. We're seeing the parliament discussing Manipur. It was indeed the opposition, the India bloc, led by the Congress, certainly, that called for a no-confidence motion on the Manipur issue, wanting a debate. And right after Rahul Gandhi gave that much-awaited speech, because I say much-awaited for the reason that Rahul Gandhi left everyone guessing whether or not he's going to make that speech today. Finally, he did. And once he got done with it, he walked out of the parliament quite quickly without listening to Smriti Irani of the BJP in response, but not before giving a flying kiss while leaving. Smriti Irani spoke on this. Listen in. एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। मैं बदलूंगा। धन्यवाद। Even mentioned that on the floor of the House while responding to Rahul Gandhi's speech on Manipur. She took up the issue of Rahul Gandhi blowing a flying kiss while leaving today. This image comes from a little earlier when Rahul Gandhi in the parliament had winked, and that had become a viral episode. Lots of versions on that came across. And Rahul Gandhi has been struggling to shrug off that image of not being a serious politician. In the parliament, you're discussing issues of importance. You're representing your electorate, the people of the country. And while serious issues like Manipur, violence against women, rape, in fact, Rahul Gandhi was the one who listed out examples of rape on women in Manipur. He completes his speech and walks out, not before giving a flying kiss towards the bench. Must have done it in a very casual way, not imagining the kind of repercussions that could come with it. The BJP has been quick to file a complaint. Preeti Chaudhary is right outside the parliament bringing us more on that. Preeti, Rahul Gandhi has been trying so hard to shrug off this playboy, casual politician image. But it appears that this has come back to haunt him. Today too, while walking out, he gives a flying kiss, not realizing that this has been the point to latch on for the BJP. Well, you know, the fact is, Nabila, it's going to be a point that the BJP will play on. It's an allegation yet. Let's wait for the Congress to respond. Let's wait for Rahul Gandhi also to respond, because these are allegations that have been made by the Treasury benches on what exactly happened. There is no documented evidence of it right now. Did it happen? Did it not happen? Happened in what capacity? Remains to be seen. Let's once again, because there will also be an attempt by the BJP, what the Congress says is to derail what the conversation should be, and which is in Parliament on the no confidence mooted against the government. Rahul Gandhi on the floor of the Parliament, his speech, of course, can be interpreted in many ways by political analysts, but at some level, right at the end, can be seen as a highly political speech, possibly lacking in substance, but politically strong. He made few
points where Manipur was concerned, where he actually went ahead and said that what the government has done is killed India, or is the murder of India in the state of Manipur, who he called Ma, or Bharat Mata ki hatya hui hai Manipur mein. This is going to be a possible headline for tomorrow. And right after that, before that, he also followed it up, Nabila, where he compared possibly the government or the Modi government to the functioning of Ravan, and went to elucidate that, and I'll quote it in Hindi, Hanuman ne nahi Lanka Ravan ke ahankar ne jalai thi. So there have been certain strong points on this speech, but yes, till a limit, not much substance. The Congress, we've been speaking to them, our sources, they said that they've left it in terms of, the finer points of the Manipur debate. The likes of Gaurav Gogoi have already put that forth. And this was supposed to be Rahul Gandhi's response. It was an emotive speech. He seemed very angry. The last 10 minutes of it. The Congress, on the other hand, especially on the issue of the women MPs lodging a complaint with the Speaker on what they say was derogatory. Smriti Irani used the word misogynist as well, that a person like Rahul Gandhi blowing a flying kiss after his speech and leaving the Parliament. Smriti Irani did follow it up. Now, Smriti Irani is the same person who historically defeated Rahul Gandhi in 2019. She was expected to go after the Gandhi, to go after Rahul Gandhi. But when it came down to Manipur, Smriti Irani really did not have much to offer in terms of a defense. Her defense was talking about what went down in the 90s in Kashmir and other instances, something which the Supreme Court has also come upon and said you can't really indulge in whataboutery. So yes, there is a complaint that has been lodged against Rahul Gandhi by women MPs of the Bharatiya Janata Party. Sure but enough, that really shouldn't be the story till the time we know exactly what has gone down. But we know that that's exactly what's going to play out, because as we saw, Rahul Gandhi at least seemingly looked angry while making that speech, but he got out giving a flying kiss. So that really, again, speaks volume of how serious he was of making that point. He walks out with smiles and a flying kiss. Again, dilutes that very issue that he was trying to make on Manipur in the House. Now, I'm cutting across to the BJP netas who've taken this up formally with a complaint against Rahul Gandhi's indecent act. We're cutting across to Shobha Karandlaje, the lady herself, the Minister of State, who hails from Karnataka, who's raised this with the Speaker. But Rahul Gandhi, by giving plain kiss to us, Smriti Irani ji, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं कि नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप आपका फुटेज निकालिए और जब ये बात निकल कर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि
कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी, और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जिसका man being so visible in Parliament as what was done by Sri Rahul Gandhi. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? पता चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र। मणिपुर में महिला के इशू को ही उठाया गया। Just on the controversy, the gesture of the parliamentarian. Before you, ma'am, just on that, you raised an objection. Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as. Yeah, you had Smriti Irani, who came out right after her speech to speak to the media, saying exactly the same. Never seen a man behaving in such an indecent fashion inside the parliament. And there are women MPs who are seated in the parliament, and he blows a flying kiss. Rahul Gandhi has been pulled up by BJP senior ministers, women, who have now taken this up with the speaker for that flying kiss that he gave allegedly towards the bench while walking out right after Smriti Irani began to speak. And it appears that clearly Smriti Irani saw Rahul Gandhi giving that flying kiss, and she even made that mention while she was giving that fiery response. And that's the complaint letter that you see on the left-hand side with Shobha Karandlaje and multiple female MPs, we believe, who have put out their signatures condemning this indecent act, as they call it, of Rahul Gandhi, giving a flying kiss before he leaves the parliament. A copy of that complaint of BJP women to speakers on the flying kiss by Rahul Gandhi is right here in front of you on your screens. And those are the multiple signatures of the BJP MPs who take objection to what Rahul Gandhi has done. Now, this may have come as a very casual way of saying goodbye or whatever it is. One can't really justify it. It has to be Rahul Gandhi who has to come out and speak up for himself. But here the BJP has found a perfect opportunity to latch on to what Rahul Gandhi has done. While he speaks and lists out episodes of violence against women in Manipur, Rahul Gandhi finishes that speech, walks out, giving a flying kiss, and now he's been pulled up for that. 21 BJP MPs have pulled him up with the speaker, calling this an absolute... सामने प्लेन किस दे रहे हैं? ये क्या बिहेवियर है? क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। इतिहास में ऐसी घटना हम लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं देखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया, और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है, और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला
और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात कभी नहीं आती। तो इसका हम सख्त पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम लोगों ने स्पीकर को उनका हमारी ओर से सभी महिला सांसद की ओर से ये एक पत्र दिया है कि आप अपना फुटेज निकालिए और जब ये बात निकलकर सामने आएगी तब आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि कैसे बिहेवियर होता है। पहले भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तब आंख मारना उनका जो एक बिहेवियर था वो सबने पूरी दुनिया ने देखा है। आज तो हद कर दी और आज ऐसे अभद्र व्यवहार पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। One MPs of the BJP who have now signed a letter and submitted it to the Speaker condemning Rahul Gandhi's indecent act, as they quote it. In fact, Rahul Gandhi, while leaving the parliament, we believe, blew a flying kiss after his fiery speech. So Smriti Irani was speaking right at that time. She was actually in conversation or delivering that speech right at that time when Rahul Gandhi was walking out. She spotted it and even made a comment while she was speaking. She says, I condemn, in fact, she says, I take objection to Rahul Gandhi. Thousands of children languishing in the camps of Manipur. Forget about that she's a woman and child development minister. As a woman, as a mother, we all have a responsibility to talk about all the crime against women. But unfortunately today, Smriti Irani ji is not even ready to utter a word on Manipur. She spoke about issues in 1984, 1974 and all, but she was not ready to talk about Bilkis Pano. She was not ready to talk about Katwa. She's not ready to talk about Khatras. She's not ready to talk about Unova. She's not ready to talk about the wrestlers still fighting for their rights. There is Mr. Brijbhushan still sitting in the parliament. BJP is shielding him. Whatever the crime against women we have listed, it's all actually rapists. Guldeep Singh Sengar, like many rapists, are from BJP. They are BJP MPs, BJP MLAs, BJP Karyakartas. But BJP is shamelessly shielding BJP members who involved in the heinous crime against women. We are not saying crime happening, sexual violence happening in the opposition ruling party state. BJP state is the only problem. Wherever the All right, I'm cutting across to Aprajita Sarangi from the BJP joining us on the phone line. Aprajita, what we hear of Rahul Gandhi's behavior, 21 women BJP MPs have raised this with the speaker, saying he blew a flying kiss and they call this act as indecent. Could you elaborate for us what happened? You're taking the focus away from what Rahul Gandhi said. This is precisely the point that you want the speaker to now look into. See, we were all along with other MPs, and when Rahul Gandhi had spoken, he did not have the courtesy, he did not have the decency to listen. Aprajita, can you hear me? All right, we seem to have lost her connection. The BJP MP Aprajita says, again, she is possibly one of them who signed that letter. 21 BJP MPs now who've taken this up with the speaker, calling this an absolute and indecent act. And misogynistic, that's precisely the word that's been used on Rahul Gandhi. This is exactly what Smriti Irani said herself, and she spotted Rahul Gandhi giving that flying kiss while he was walking out, while she was delivering the speech, and she says, I object to it. The man who was given the chance to speak before me displayed indecency before leaving. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats, female members of parliament. Such undignified conduct has never been seen in the parliament before. Now, Paulami Saha, who's right in the parliament, tracking those developments for us. Paulami, please tell us, give us a sequence of events, really. Rahul Gandhi looked seemingly angry, gave that very fiery speech, listed out examples of crime against women in Manipur, and then walks out in a way where he seems all light, blowing a flying kiss. And clearly here, unfortunately for him, that the entire point he tried to make on the floor of the House has been taken away. His flying kiss has become the centre focus. Trust BJP for that.
Well, it's again a replay of 2018. You know, the hug and the wink took away from, of course, the speech that Rahul Gandhi had made. Today, of course, he made a very fiery speech. Like I said, he pointed fingers directly at the BJP, directly at the Prime Minister, making accusations that they had in fact betrayed Bharat Mata, they had betrayed Manipur, they had betrayed India, they had set Manipur on fire. That was the kind of language that Rahul Gandhi used, which obviously, created a furor and uproar inside the house as well. Now, this occurrence, of course, unfortunately, which has taken the sheen away a little bit, or the spotlight away from the speech that Rahul Gandhi made and the points that he made, happened right after. Just as he decided to leave from the house, because Smriti Irani rose immediately in her seat. She was slated to be the first BJP speaker for the day. It was decided that after Rahul Gandhi, it would be Smriti Irani who would take him head on, because she, of course, has defeated him in the past in the Lok Sabha elections of 2019. So she, of course, rose. Rahul Gandhi apparently flashed the victory sign. That is what the BJP is claiming. There was a moment where he was shuffling with his papers as they fell. There was some amount of heckling that was happening. All of this, remember, Nabila, happened momentarily. It's a replay of 2018. We almost had to bend over the press gallery to see what just happened when he walked away from the opposition benches to the treasury benches and hugged Prime Minister Narendra Modi, who was seated at that point of time. Again, we bent over just to see suddenly, and then there was a moment where he flashed a flying kiss and walked out of the house immediately, where I caught him as he left from the house as well, trying to ask him questions. Now, this moment has somehow taken away the spotlight, at least momentarily for the moment right now, because the BJP has complained to the Speaker. Women members of Parliament of the BJP have signed a letter and given it to the Speaker, demanding stringent action against Rahul Gandhi, what they claim was his inappropriate, indecent, and what Smriti Irani says, misogynistic behavior. Yeah, Palmi, stay with us. We have Preeti also joining us right from outside the Parliament. Preeti, we could really decipher this gesture of Rahul Gandhi or this act in many different ways. One of which, is this part of his Mohabbat Ki Dukaan campaign, blowing a flying kiss? This is what Rahul Gandhi has been doing for the 5 months of his Bharat Jodo Yatra. Well, it also needs to be deciphered somewhere, Nabila, is it also an attempt? All right, stay with us, Preeti. Darshana, Union Minister, joins us on the phone line. Miss Darshana, can you hear me? Hello. Yes, Miss Darshana, could you hear me? Please tell us what is exactly in your letter. ये लेटर में आपने क्या लिखा है? आप ऑब्जेक्शन आपने ऑब्जेक्ट किया है राहुल गांधी का फ्लाइंग किस को? ये जो व्यवहार है पार्लियामेंट के अंदर, जो उनको पार्लियामेंट को हम लोकसभा को हमारा मंदिर मानते हैं, जिसकी इसी पूजा अर्चना के साथ में नए पार्लियामेंट में भी जाने वाले हैं, तो ऐसे पार्लियामेंट में इतने सालों में कभी ऐसा अभद्र व्यवहार हमने नहीं देखा जो मंदिर में खड़े होके किया जाता है। और स्पीकर के सामने जब अपनी जगह से बोलना होता है, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी थी, बहुत बड़ा तीर मार लिया था। ऐसा करके वो आगे आके सब उनके साथी जो थे उनको सराह रहे थे, जैसे बहुत बड़ा भारत माता के प्रति उन्होंने बोल दिया। लेकिन भारत माता का संस्कार ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या जैसे किया, इतनी स्मृति ईरानी बोलने खड़ी हुई थी और इतनी महिला सांसद हम बैठे थे, हम लोग पहले 3rd रो में थे, मैं, शोभा जी, हम अन्नपूर्णा जी, हम सब बैठे थे, और उसी समय उसने हवा में लहराते हुए फ्लाइंग किस कर ली। अपनी रैली में जैसे निकलते हैं करते हैं, उसका ऐसा ही जेस्चर यहाँ नहीं चलेगा। ये पार्लियामेंट के है। अर्चना जी, लेकिन ये फ्लाइंग किस के क्या ये आपके तरफ था? जो महिला एमपी जो बैठे हुए थे, क्या आपकी तरफ था वो, क्या ये किसी और के तरफ था? रही थी जब स्मृति जी बोल रही थी, वहाँ पीछे 15 सांसद बैठी थी, सभी महिला सांसद थी। अब किसके प्रति थी नजर से इतने दूर से कैसे पता चलता है, लेकिन सभी महिलाओं का तो अपमान था। एक तरफ वो माता की बात करते हैं तो इतनी सारी महिला होती है, वो ऐसा जेस्चर देखती है, अच्छा लगता है क्या? वो तो फुटेज निकालने के लिए बोला है, आप ही जज कर लेना। जैसे पहली बार जादू की जप्पी लगाई थी, वहाँ आंख मारी थी, तो ये सब दिखता है। तो हमने तो अभी ओम बिरला जी को वही पत्र दिया है कि आप उसके फुटेज निकलवाओ, फिर तय करो कि किसके प्रति उन्होंने ये किया है, और वो जो एक्शन होना है वो तय करेंगे बाद में। पहले देखो तो सही
फुटेज से देखो कि उन्होंने क्या जेस्चर किया है। और वो जो स्पीकर के सामने कई बार आते हैं, जैसे पेपर फाड़ते हैं, उनके स्टेज के प्रति उनकी तो अमनिया नहीं रखते, आवाज करते रहते हैं, बैनर्स लेके आते हैं, पोस्टर्स लेके आते हैं। आज भी वो जो ड्यूरिंग द अविश्वास दरखास्त उन्होंने कुछ पेपर निकालकर कुछ बोलना था, ना तो नियमों के बारे में कुछ पता है, ना तो ये सभागृह की गरिमा है। हम लोग इतने सीनियर मेंबर्स हैं, मैं शोभा तो तुरंत हिल गए, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया था और वो तो अपना भाषण देके सीधा निकल गए। उनको तो किसी का सुनना नहीं है ना, सिर्फ सुनाना होता है। उन्होंने जितनी तैयारी की है, बहुत बड़ा तीर मार लिया है, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला और बोलने के बाद में सीधा खड़े होकर निकल गए। इसलिए उनके साथ में जो खड़े उनके जो आसपास जो सांसद थे वो उसके पीछे पीछे आ गए, उनकी तारीफ कर रहे थे। वो तारीफ की जो घमंडीपना था उसमें उन्होंने ये जेस्चर कर लिया, हवा में लहराता हुआ फ्लाइंग किस। आप दिखा देना जब उसका फुटेज आ जाए तो। दर्शना जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। I'm going to cut across to Preeti, who is joining us from outside the Parliament. Preeti, the Darshana, the BJP MP, says that there were multiple female MPs who were seated there, and this was absolute disrespect to all of them. And this flying kiss is really not taken as they've not taken this lightly. And rightly, Smriti Irani calls Rahul Gandhi as misogynistic. Almost trivializing, disrespecting the presence of women, and clearly there's no concept of consent here either. There was nobody making a joke or having any kind of chat with Rahul Gandhi for him to have done something like that. Today's rolling coverage on the Parliament showdown, day 2 of the no confidence motion debate. Stay with us, slipping into a short break, right back. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से छतों पे से गोली तक चली है, पीछे वाला शीशा टूट लिया। 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United. It's always fun to see one of your favorite celebrities become a showstopper for these couturiers, and a lot of Bollywood made its way to the Couture Week this year in Delhi. Right from Ranbir Kapoor to Bhumi Pednekar, Ananya Pandey, Kiara Advani, Vani Kapoor, you name it, and they grace the runway. Here is all the celebrity action. The 16th edition of India Couture Week, organized by FTCI, saw Bollywood celebrities turn showstoppers. Right from Ranbir Kapoor to Kiara Advani, one saw a plethora of celebrities spruce up the runway. I feel like a golden girl. I feel very glamorous, but I also feel very comfortable, and I always have a great time working with Rimzim. And it's always there's lots of chaotic energy at Fashion Week, but somehow I managed to keep my calm, I think. It's a beautiful, beautiful embroidered jacket, and they decided to go without the shirt with this really interesting tie. They have a nice little emblem on it, and I think it's elegant and cool and suave and new all at once. It feels like it's just growing on my body, the textile, the fabric. It's so sexy. I love the way it hugs my curves. It just makes me feel strong, like I can conquer anything. It's about imagination coming to life. Literally about imagination coming to life. And for that, I mean, just look at this. We can literally sit here and stare at it. While the focus is never on the celebrities, but the celebration of art and craft in India, it never really hurts to see celebrities glam up the runway.
Indian influencers spruced up the front rows. Bahar Dhawan to Sukhneet Wadhwa, there were plenty of them adding glamour. So, I mean, I was like literally like, oh my God, what a moment for us. Such great designs, the intricate work, absolutely stunning collection. In New Delhi with Riya Modi, Lifestyle Bureau, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. All right, here's some big news coming in. Massive row over Rahul Gandhi's speech in the parliament. The Congress alleges Rahul's airtime was cut short. The Congress says Rahul spoke for 37 minutes. On air, only 14 minutes. Congress says the parliament cameras didn't focus on Rahul Gandhi. The Congress asks, why is Modi afraid of Rahul? Less than 40% screen time given to Rahul Gandhi. These are the allegations. In fact, even yesterday when the no-confidence debate began with Gaurav Gogoi opening the debate, there were accusations by the Congress party that the text beneath on the Sunset TV did not have the no-confidence motion debate written on it. And this is a deliberate attempt to cover up on the issue of Manipur. This is what the Congress has been saying today. Yet again, they claim Rahul Gandhi's screen time was cut short. He spoke for 37 minutes, but barely 15 or 14 minutes was shown on air. Paulami Saha joins us more. Paulami, tell us, is that true, first of all? Was Rahul Gandhi's speech cut short to barely 14 minutes on Sunset TV?
Well, this is, of course, going to be a matter of investigation. You and I all saw that speech, and indeed, that was what we were watching on Sansad TV as well, because as soon as he seemingly ended it inside the House, he stepped out of Parliament, which is where, of course, I was there, and I got him on camera as well. Of course, we tried to ask him questions about the speech. He didn't, because he was rushing to Rajasthan for his pre-scheduled program. So whether Sansad TV cut his speech down or not, that is a matter of investigation. But we saw the entire commotion as well for all of the moments when his speech was interrupted, or when the opposition benches objected to the treasury benches objecting to something that Rahul Gandhi had said from the start, when he, of course, named a mega conglomerate as well. Everything was on Sansad TV, because we were watching it on the television screens as well. So it is a matter of investigation, Nabila, whether indeed it was cut to some extent, or subsequently what they uploaded in terms of the speech. Is it just a gist of the speech that Mr. Rahul Gandhi made? All right, stay with us, Pallavi. I'm going to, in fact, cut across to some parts of Rahul Gandhi's speech, a very fiery one, that he raised questions of Prime Minister Modi not visiting Manipur, etc. Let's have a listen. भारत माँ की हत्या की बात की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूँ अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, या आज सदन में देश को पता चले। Joining me right now is Union Minister Ms. Shobha Karanaji. Ma'am, you went to the Speaker along with a delegation of women BJP MPs and you complained about Rahul Gandhi's inappropriate behavior. What happened inside the House, ma'am? After speaking, after his speech, Rahul Gandhi's speech, Smriti Irani ji was stood up. She was the next speaker. And Rahul Gandhi came a little forward and shown the victory signal, and also he behaved like he is given plain kiss to all of us, like he behaved like that. It is totally indecent, inappropriate, and also insult to the women. Inside the parliament giving plain kiss is totally objectionable, and also we complained, Speaker, take stringent action and also take the all CC camera footages and take action. What sort of action are you expecting against Rahul Gandhi? This is like insult to us, insult to the women of India. Inside the Parliament House, ये देश का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, मंदिर का अंदर ऐसे बिहेवियर करना एक ऐसा नेता है, कैसा मेंबर है, मेंबर के ऊपर कार्यवाही करना ही करना and take action. It is shameful from BJP women who are saying like that. It's not aimed at any woman in the parliament. There are plenty of members who are from BJP sitting in the treasury benches. See, our heart is clean. Our heart is filled with love. Our heart is filled with compassion. But their heart is filled with, unfortunately, hatred. They look at everything differently. Just because their heart is filled with hatred and ego, Rahulji's speech is pretty much about that. He sent a love to them. Nothing more than that. If anybody making anything out of this kind of very nice and beautiful gesture, it's in their heart. Ugliness is in their heart, not with Rahul ji or the Congress. भारत माता की और भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में वो जानते नहीं हैं। जो ये मंदिर है हमारा लोकसभा मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए, नमन करके भारत माता का नमन करके पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश किया, उसी के अंदर जब वो बोल रहे थे तो बीच में भी वो आंख मार रहे थे। उनका जो बिहेवियर है, जो स्पीकर के सामने कभी पत्र फेंके जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके प्रति चले जाते हैं, उनके नेता को बचाव करने के लिए बहुत बार देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली
पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जहां इतनी महिला सांसद मंत्रियां बैठी थी वहां उनका व्यवहार, अभद्र व्यवहार जो हम सहन पार्लियामेंट के अंदर नहीं करेंगे। स्पीकर से आपने कुछ? हम लोगों ने स्पीकर को बोला है कि आप जो फुटेज है वो निकाल कर हमें बता दीजिए। All right, as we hear, 21 MPs of the BJP have signed a letter to the Speaker objecting to this indecent act, as they call it, of Rahul Gandhi blowing a flying kiss. Now, Paulami Saha joins us for more. Paulami, you know, at a point like this, it's such a catch-22 situation for the Congress members at large. The Congress MPs, I'm sure, have they? We've hardly heard any of them come out and justify for something like this. It's very hard to justify it in the first place. Well, obviously you did see Jyoti Mani over there speak. They were, of course, addressing a press conference on Smriti Irani and how she hardly spoke about But not a word Manipur on the flying kiss at all. And then, of course, the controversy which is erupted. We did ask her that. That was, in fact, the question that was asked. And she said that this is just, our hearts are clean. This was just a gesture of love. And, you know, they are filled with hatred. So they see hate in everything. They get angry about everything. And this was just a beautiful gesture. It was a gesture of love. There's nothing to be, read too much into it. So that is, of course, the defense that at least Jyoti Mani, who's the first one to have spoken on this because she was addressing a press conference on another issue, has said. But we are yet to hear from more parliamentarians from the Congress party as to how they defend this. But trust that the line of defense will be on the Muhabbat Ki Dukaan lines, saying that Rahul Gandhi made a simple gesture. It was not targeted at just women MPs or anything of that sort. It was towards the treasury benches, and that was because there was heckling happening from the other side. He basically, when he was met with heckling and hatred from one side, what he did was showered love on them. In return, yeah, but that's possibly the best defense that the Congress could give at this point. Rahul Gandhi is fresh out of his 5-month-long Bharat Jodo Yatra, and through the Bharat Jodo Yatra, he was spotted giving flying kisses to the crowds who had gathered to walk with him, to see him, whatnot. So it seems like he's brought the same vibe to the parliament, but possibly a wrong day. You started off on a debate of women being assaulted and harassed and gang-raped in Manipur. After the end of the speech, Rahul Gandhi walks out giving a flying kiss. That's precisely what the BJP is now latched onto. This is a storm on day 2 on the no confidence motion. The debate opened up with Rahul Gandhi and Smriti Irani. Both of them clashed in the parliament. Rahul Gandhi breathed fire at Prime Minister Modi, accusing him of letting Manipur burn. He said, and I quote, "Modi has murdered India and Manipur. Modi has killed the idea of India. Modi has killed Bharat Mata and Manipur. Modi has burnt the state of Manipur." These are words of Rahul Gandhi as he really fired all guns that he could on the BJP for the situation in the state of Manipur. In fact, Rahul Gandhi likened Modi to Ravan, stating that Ravan relied on 2 people. Likewise, Modi too listens to 2 people, Amit Shah and Adani. He escalated the attack and asserted that it wasn't Hanuman who burnt Lanka, but Ravan's own arrogance that did. Retaliating against Rahul Gandhi was Union Minister Smriti Irani, who raked up the Kashmiri Pandits killing, the 1984 Sikh genocide, which was under Congress rule. She tore into Rahul Gandhi for speaking of the death of Mother India, which she claims was the first time ever that any Neta spoke of it and their party cadre clapped on it. Now, all eyes are currently on Home Minister Amit Shah, who's set to speak in the Parliament at 4 p.m. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में
तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है? यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे ये, हम नहीं। भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में न धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके
सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। All right, I'm cutting across to Paulami Saha. Paulami, we see a point-by-point rebuttal by Smriti Irani of what Rahul Gandhi has said, but no extensive talk from Smriti on Manipur. Of course, it was a retort on Congress rules, under the Congress rule government, what happened in 1984, the Sikh genocide, be it the killings of Kashmiri Pandits. This was raised, but a very minimal talk from Smriti Irani's side on the Manipur issue at all. Well, Manipur, in fact, has, found some fleeting references only as far as all the speeches that have been made in this no confidence motion since yesterday, even from the opposition side. They've raised issues like inflation, like also, the violence in Nu was also raised by the TMC. There are other issues. Manipur was, of course, focused upon by Gaurav Gogoi, who initiated this motion against the government. Then, of course, by Rahul Gandhi. And expect that the Home Minister will reply to those questions on Manipur, those ones that have been raised by Rahul Gandhi. Because remember that the demand from the opposition has constantly been that the government discusses Manipur on the floor of the House and the Prime Minister make a statement on the floor of the House, which eventually then led to this no confidence motion being brought to the House by the Congress-led opposition. In this case now, the government has always stated we're open to discussing Manipur and the law and order situation over there, but the Home Minister will reply. So expect that when Amit Shah speaks after 4 p.m. this evening, anytime after 4 p.m. this evening, it's likely that he will in fact prevail on the subject of Manipur. Smriti Irani was going to focus more on the subject of dynasty, on the subject of the Quit India movement, which has been given a spin by the Bharatiya Janata Party today when they say corruption quit India, dynasty quit India, appeasement quit India. So those were some of the issues that Smriti Irani spoke about. She spoke about NewsClick as well. These are the issues that she's focused on, but we're expecting that the Home Minister will dwell on the Manipur issue. Right, that's at 4 p.m. Amit Shah to speak, but unfortunately, Paulami, despite this debate intending to be on Manipur, the takeaway from this entire last 1 hour and a half is Rahul Gandhi's flying kiss that BJP has taken offense. Inappropriate behavior. What happened inside the house, ma'am? After speaking, his speech, Rahul Gandhi's speech, Smriti Irani ji was stood up. She was the next speaker, and Rahul Gandhi came a little forward and shown the victory signal, and also he behaved like he is given plain kiss to all of us, like he behaved like that. It is totally indecent, inappropriate, and also insult to the women. Inside the parliament giving plain kiss is totally objectionable, and also we complained Speaker take stringent action and also take the all CC camera footages and take action. What sort of action are you expecting against Rahul Gandhi? This is like insult to us, insult to the women of India.
inside the Parliament House. ये देश का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है. मंदिर का अंदर ऐसे बिहेवियर करना ये कैसा नेता है, कैसा मेंबर है. मेंबर के ऊपर कार्यवाही करना ही करना and take action. Okay, so that is what the BJP has complained to the Speaker, Paul Misa, in Delhi for India. All right, Shobha Karanlaje from Karnataka, Union Minister, Minister of State for Agriculture, says that this is the first time they've seen an indecent act by a parliamentarian. Rahul Gandhi, unfortunately, after that fiery speech, now has to justify the flying kiss that he made in the parliament. I'm going to slip into a short break. India Today has been constantly on the parliament debate on the no confidence motion. Amit Shah to speak at 4 p.m. We will be tracking every angle and development. Do stay tuned. You saw the clothes, you saw the celebrities, you saw the jewelry. Time now for you to see footwear fashion and how to keep it dramatic this season. Here's a look. When it comes to footwear, a lot of drama is now making way. For instance, Freddie Mercury makes a comeback with Theatre XYZ heels. Harrison, Dark Horse, and this is the Theatre XYZ one. My favorite pick from their drama collection. It's got the boss-like appeal to it as well. Even the Harrison Cloud9 from the collection is now gender fluid and mainstream. Not just that, boots for all weather are here and they look chic. I'm a sucker for color this monsoon, and the monsoon footwear these days are coming in different colors and different patterns. I'm just loving every bit of it. Right from bubblegum smelling sandals to jelly shoes in all shapes and sizes and colors, monsoon shoes are sure having a moment. And if you have the courage to wear something different, try out these jelly ones from Melissa that are available in every color for different moods. And if you are the classy, safe type, your footwear can still have a lot of drama. These picks from OCD, especially the tap dancing Rebeccas or the dramatic Julies, come in with elegance in its own dramatic twist. It's a beautiful artisanal work of craftsmanship made by artisans of India. And just look at the kind of drama it is adding to my foot. While this season is all about adding drama, remember, wearing a story on your feet is all the 2023 footwear fashion is all about. In New Delhi, Chaiti Narula for India Today. Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 33 and minimum 26 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 24 degrees. Chennai, maximum 33 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 23 degrees. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at
sales@aajtak.com. are watching India Today. Hello, very good afternoon. You're watching India Today TV. I'm Sneha Murdani. A quick check of what's making news this afternoon. After much suspense, Rahul Gandhi speaks in Parliament, declares Bharat Mata has been murdered in Manipur. Smriti Irani fires back with dynast and corrupt attack. मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. Controversy erupts over Rahul Gandhi's flying kiss in the House. BJP women MPs complained to the Speaker, accusing Gandhi of indecent behaviour and disrespecting the House. A man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. All eyes now on Amit Shah's speech, Home Minister to make an intervention on Manipur post 4 p.m. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar removed as guest from Advocates event over pending cases against him. BJP complaint says D.K.'s can't share stage with High Court and Supreme Court judges. Chandrayaan-3 reaches even closer to the moon's surface after a successful maneuver. Next operation scheduled on the 14th of August. We're going straight to the proceedings from Lok Sabha, where DMK MP Karna Modi is in fact speaking. Let's take a listen. Have been mentioning Draupadi in this house. आप बैठ जाइए। प्रवक्ता का चेहरा दिखाते नहीं आप जब भी इंडिया लाए आप अपनी बात रखिए। तो कैमरा यहाँ पे नहीं, कैमरा आप पे आता है। ऐसा क्यों है? नहीं ऐसा नहीं है। आप करीम मुझे जी आप अपनी बात रखिए। The other thing will not go into the record. Only Karim Moses' speech will be going in record. Sir, the people have been mentioning Draupadi from Mahabharata in this house and how she was humiliated and stripped. So these women also must have prayed to some god to come and help them. God nor the government came to help these two women. And anybody who has read the Mahabharata properly knows that it is not
the perpetrators of the crime who were punished, but the silent spectators who stood there like trees watching her being humiliated were also punished. They will be punished like they will be punished when they were silent in Hathras, Katwa, Unnao, Bilkis Banu, and when the wrestlers were protesting. The country, the nation, India, the mothers of India will punish them. So there are hundreds of relief camps. There are hundreds of relief camps, but there is no food, no water. It is overcrowded with no proper sanitation. The roofs are leaking and children have to live there. They cry out of fear and hunger. Is this what you call relief camps in this country? You don't even want to reach out to people who've lost everything, who had to walk for days to save their lives. You can't give them food, you can't give them protection, you can't ensure that the roofs don't leak. At Bishnupur, a woman said that people are saying my son has been killed, but I haven't seen his body. I refuse to believe that he has been killed. His best friend has told her that the son was killed, but she refuses to believe that he was killed because she lives in hope. She says, I hope that someday he'll come back alive to me. This is not just one mother who's saying this. There are brothers, fathers, families who wait, hoping that their loved ones are alive somewhere. Even if they're injured, they are there somewhere. A Methi girl in one of the camps asked me, you have come to see us, but why hasn't the Chief Minister or the Prime Minister bothered to come and visit us? We have lost our homes, families, livelihood. I will never go back to my home. I will never feel safe there. The government has let me down. Why hasn't anybody come here to wipe my tears? But instead of listening to her pain and comforting her, the BJP fake news team manufactures a narrative saying that she told the India team that I have faith in the Prime Minister. Why have you come here? Sir, the truth is, whether it is the Kukis, Nagas or Methi, we only saw despair and despondency in their eyes. I request the Prime Minister, this government, to reach out to these people and say that we care and justice will be done. Can't you do that much for people who've been hurt, who are bleeding? Sir, we went there to say India stands with you. We would like to know whether the government stands with them. The Chief Minister of Manipur has been blaming the Kukis and the Naga people for the drugs there and the drug cultivation. But a former SP, Ms. Brinda, blames the Chief Minister, the Chief Minister's office, and the Manipur government for it. There have been many stories in the newspapers earlier that the pesticides and fertilizers which are being sent to the state are diverted for poppy cultivation and not for food production. Shouldn't we find out the truth? Should not there be a proper inquiry into what has been really happening? You brought the Sengol to the new parliament with big pomp and show. You said it is a Chola tradition. You don't know Tamil Nadu history properly. Have you heard about the Pandian Sengol? All right, viewers, you just heard Kani Mori from the DMK speaking on the floor of the House. It's day 2 of the no confidence vote. A lot went down today, lots of speculation on the morning on whether Rahul Gandhi will speak. He did speak at 12 noon, and following him was Smriti Irani. Well, it's been a battle of old foes. Smriti Irani following Rahul Gandhi. 2019, the big battle where Ms. Irani defeated Rahul Gandhi today played out in Parliament. A bit of a controversy after that as well, but Rahul Gandhi's speech, many would suggest, split into 2 parts. One, classic Rahul Gandhi,
where he spoke about his idea of India and what he learnt on the Bharat Jodo Yatra, the second part of his speech. Punchier, more powerful, many would also suggest lacking substance but politically rich in terms of rhetoric, where he made strong commentary, where he spoke about Manipur, of his visit to Manipur. He gave examples when he was in Manipur and then used analogies of the Mahabharata as well, comparing that to the Prime Minister Modi, comparing the Prime Minister Modi to Ravan, suggesting that it wasn't Hanuman due to which Lanka was burnt. It was the ahankar or the arrogance of Ravan himself. On the other hand, used terminology which didn't sit very well with the Bharatiya Janata Party or the Treasury benches, where he said Modi has murdered the idea of India, or rather India was murdered in Manipur. Modi has killed Bharat Mata in Manipur, burning the state to cinders. Not just this, Rahul also then escalated the attack, asserting that it wasn't Hanuman who burnt Lanka, but it was the arrogance of Ravan himself. Also suggesting that as Ravan used to listen to two people, Meghnad and Kumbhkaran, then the Prime Minister Modi only listens to two people, and that is Adani as well as Amit Shah. Retaliating against Rahul Gandhi was Union Minister Smriti Irani, raking up Kashmiri Pandits' killings in the 90s, 1984 Sikh genocide under Congress. She tore into Rahul for speaking of the death of Mother India. She said that it was the insult of Mother India by the hands of the Congress. All eyes now, of course, on Amit Shah, who's all set to speak in Parliament at about 4 p.m. is what we are given to understand. But a bit of a controversy also took place at the back of it, where you had the Treasury benches, the women MPs there lodging a complaint with the Speaker, suggesting that when Rahul Gandhi finished his speech, while he was exiting the Parliament, he blew a flying kiss to the Treasury benches, and the women MPs have taken offence. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है? You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा
हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये, हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पर्दे जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था, मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। आज जो भग गए हैं सदन से, उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में न धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलियू सलियू गलियू का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला, नहीं लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? अडानी। दो लोगों की, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी। तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। क्या बात है? राहुल गांधी
पानी पी रहे हैं भाई। सर ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही गंभीर बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक हजारों लोगों को नोटिस में दिए हुए हैं। इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं आज नॉर्थ ईस्ट का सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से चला हुआ है। Congress is responsible for all the violence in Northeast. During Modiji's time, not a single militant organizations were formed. Rather, more than 8,000 militants surrendered with arms. So, Congress party is responsible for all the formation of militant organization as well as killing of thousands of people during last 60 years. So, Congress is responsible for that. Rahul Gandhi should tender apology. All right, so that's gone down till now in Parliament. The other big ticket speakers coming up in just about 40 minutes from now is going to be Home Minister Amit Shah. Trust him to solely focus on Manipur. But let's just for once look at the face-off, possibly. It wasn't really a one-on-one of sorts, but followed each other, which is Rahul Gandhi spoke in Parliament. Right after that, within seconds, Smriti Irani got up taking on Rahul Gandhi. Rahul Gandhi focused his speech primarily to Manipur in the beginning, spoke a little bit about his experience of the Bharat Jodo Yatra, spoke for not long, very pointed with a big political punch in the end, where he said that it was this government that has murdered India in Manipur. More so also linked Prime Minister Modi to Ravan, saying it was Ravan's ahankar that burnt down Lanka and not Hanuman. On the other account, Smriti Irani invoked the Kashmiri Pandits. She invoked the genocide of Sikh genocide in the early 80s, blaming the Congress, but spoke little about what has gone down in Manipur. Trust the Home Minister Amit Shah to respond to that later at about 4 p.m. Let me cut across right now to my colleague Polumi Saha, who's joining us. Polumi, interesting at that till early morning we had Rahul Gandhi was to speak, then he wasn't to speak, and then he was to speak again. And he finally did speak within seconds. Understandably, Smriti Irani, that's a feud which goes a long way back, bloodied, where it comes down to the Battle of Amethi, running now, where Smriti Irani, seen as a traditional Rahul Gandhi beta, took on the charge right after Rahul Gandhi. But having said that, Smriti Irani, touched on issues of the 90s, the Kashmiri Pandit issue, the genocide, what possibly have been the failings of the UPA government in the past, but really didn't speak about the issue of Manipur. Will we see that being addressed at 4 p.m. by Mr. Amit Shah? Yeah. That's right, Preeti. We're expecting that the Home Minister will speak about Manipur. Remember that the opposition's demand so far in this entire monsoon session has been that there should be a discussion on the prevailing law and order situation in Manipur since ethnic clashes broke out in the state from May 3rd. And then, of course, they demanded that the Prime Minister make a statement on the floor of the House on the subject as well. The government has been willing to have a discussion but unwilling to have the Prime Minister speak on the issue. They've always said that the Home Minister, who's apprised of the situation, who monitors law and order, will be the person to reply to any sort of questions that are raised during an ongoing discussion or debate. So it's likely that the Home Minister will in fact reply to some of those pointed questions that Rahul Gandhi made during the fiery speech that he made earlier this afternoon in the Lok Sabha, speaking specifically on the issue of Manipur. Manipur otherwise, hasn't been heard much in the long discussion that has been ongoing since 12 noon yesterday. Of course, Kiren Rijiju spoke about it because Gaurav Gogoi initiated it, both from the northeast, both touched upon the subject, but Kiren Rijiju, of course, also made it about the larger northeast region and the picture about the northeast region. But much of it is being saved for Amit Shah's speech, and expect him to touch upon the subject.
Just stay on with us. Before we go into a quick break, I want to quickly pull in Rahul Srivastava into this conversation, who's diligently been making notes of all the speeches that have gone by in the second day of the Parliament. Rahul, what did you make of somebody who's seen many speeches, especially of Rahul Gandhi in Parliament? He really isn't at his best where Parliament oratory is concerned. Having said that, would you think it was a political speech high on political tempo? Maybe not content, but in terms of rhetoric, strong. If you look at the speech, it had a bit of a literary touch to it. Initially, when he spoke, he seemed to be speaking from the heart. That how, that long Bharat Jodo Yatra transformed him. And the kind of interaction he had certain very emotive touches to them, how a farmer came to him with a bit of cotton in his hand and said that this is all he has left with it. To highlight the plight of the farmers and how corporates are doing much better, it was an interesting... but that's classic Rahul Gandhi. He's done it usually in the past. Yeah, but it had some terminology, that usage of the language seemed somebody had given in some kind of a literary advice to it. It had a writer's touch to it. The second part was on Manipur. The Manipur and very strong, potent charge at the government, which will be almost as big as the Chaukidar Chor Hai. The 2018 one and this one have this similarity that it has provided the Congress party and the opposition a template to work at. You will find a lot of it in posters and hoardings and at rallies. It will be repeated and echoed and amplified over the coming days. The line that Bharat Mata ki hatya kari, qatl kiya, murder kiya in all languages, Urdu, Hindi and English. And then says, aap desh drohi ho. All right, I'm going to come in, Rahul. The reason I'm doing so is just interrupting Rahul there. Let's cut across to Mr. Kharge speaking in the Rajya Sabha. रोज क्या है बोले तो उधर से हमारे ऊपर हमला होता है, तो आप कृपया करके कल तो इसको परमिशन दीजिए, कल ये एजेंडा में रखिए 267 आपके उदार हृदय से इसको स्वीकार कीजिए, हम जरूर आपको नई चीजें बताएंगे और चर्चा करेंगे। मैं ये विनंती करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, सरकार ने सदन शुरू होने के पहले दिन जो आपने लीडर्स की मीटिंग बुलाई थी उस दिन, और जब सदन शुरू हुआ उसकी पहली सिटिंग में हमने सरकार ने एग्री किया। ये गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सब ने एक आवाज में संदेश देना चाहिए देश को। ये सरकार ने पहले दिन ही अनुमति, आपने जब निर्णय लिया कि 176 में इसको लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों मोशंस थे और वास्तव में कोई 11 बजे शुरू हो या 2 बजे, हमने तो कहा था उसको शुरू किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो विषय को मोड़ दिया जाता है बार बार कि भाई ये रूल में ही होगा क्योंकि हमने तय कर लिया ये रूल में होगा, मैं समझता हूँ ये सदन की भी और माननीय आसन का भी अपमान है कि अगर आसन ने अपने विवेक से तय किया है कि ये डिस्कस होना चाहिए, जैसे ही आपने तय किया, सरकार ने एग्री किया कि इस पे हम तैयार हैं, होम मिनिस्टर ने अपनी कन्वीनियंस भी दी, लिस्ट भी किया गया हाउस में, तो हमने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि इस पे सार्थक चर्चा हो, सूक्ष्म अच्छी तरीके से सब लोग चर्चा करें, सब अपनी अपनी बात रखें और एक अच्छी चर्चा से देश को भी संदेश जाता, बजाय कि लोग इसमें राजनीति करें या इसमें कुछ एक्शन से दिखाने की कोशिश करें कि एक ज्यादा तीव्र है, दूसरा कम तीव्र है, कोई इसके ऊपर ऐसा व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। खासतौर पे मल्लम लगाने की जरूरत है। मणिपुर का विषय पहले से गंभीरता से चले आ रहे दशकों का विषय, पहले भी इसमें गंभीर समस्याएं आई हैं, उनके समय भी बहुत सारी उस समय भी बहुत वायलेंट इंसिडेंट्स, बहुत खराब इंसिडेंट्स हुए हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। उस समय भी चर्चा में किसने रिप्लाई किया, क्या किया, सब रिकॉर्ड पे है। तो इससे मेरा पुनः आपसे आग्रह है कि आपने जो निर्णय लिया, अभी भूपेंद्र जी ने रूल सुना के कहा
कि एक बार किसी विषय के ऊपर मोशन ऑलरेडी एडमिटेड होता है तो अलग रूल में फिर वही मोशन नहीं लाया जाता है। मैं समझता हूँ सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मिसयूज सर मिसयूज भी तो नहीं होना चाहिए ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सभी का है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमारा भी है उनका भी है। हमारा भी प्रिविलेज है कि हम सदन में बिल्स जो लाते हैं उसमें चर्चा हो पास हो। मेंबर्स का प्रिविलेज है क्वेश्चन आर हो। तो इन सबको मद्देनजर रखते आई थिंक ये तय हुआ था। आपने ऑलरेडी लिस्ट किया था। मणिपुर पे चर्चा से हमारी तरफ से तो कभी हम भागे नहीं है। मैं समझता हूँ ये रूल के आड़ में विपक्ष ने बार-बार इस चर्चा को रोकने का The purpose here is that I have taken a decision considering all facets. Do you feel that only there are two sides in this house? So can I? Even yesterday, sir, you were eliciting the views of the members only from these two sides. We were putting One second. And even when you call now, you should have called all the floor leaders. Let's, 1 second. No, please. No. Take your seat. I got your point. One second. Honorable members. One second. I always call the floor leaders, but if I interact, but if I interact only with LOP, I think no one should be hurt. Very frankly. Sometimes if you are taking a policy decision, we are hurt. I quite appreciate. Sir, you can believe in my modest wisdom that if there is an issue on which I am required to get an input from everyone, I would. Here I got in touch with LOP on a very specific issue because he had been raising it, as others have also been doing, and leader of the opposition carries a different kind of position. Therefore, I called him alone. I did not call any other floor leader. Number one. Number two, right now, one second. Sir, I'm in the center. I'm in the center. So, but right now, leader of the opposition has taken one stand. Leader of the House has taken another stand. I'm not on that. What is the way forward? One second. No, sir. I have. It's the duty of the government to have a way forward. But unfortunately, here what is happening? They are bulldozing us. This is what. Are you sure? Whenever we had experience, what is the leader of the House job, sir? To maintain peace in the House. To act like an agent for making peace in the House. Now what is happening? Leader of House himself is making problems, sir. Honorable, how can it be? Honorable members. One second. Honorable Minister. Including all the party of UPA, then UPA or so-called Abhi they have changed. UPA sir, UPA के सभी मिलके 176 का नोटिस दिया गया है. They have given the notice under 176. We have accepted this. And also I would like to put it on record. The ethnic violence have taken place many times previously also. For the first time, the Home Minister was there for 3 days and MOS Home was there for 23 days. And this is the sir, what they talk. They say that we are not allowed to speak. Even Parliamentary Affairs Ministry is not allowed to speak. What is this? Sir, I am telling that day one when you called the floor leaders meeting, and in the opposition when there was a all-party floor leaders meeting of the opposition parties and all parties, then also we said that there will be discussion on the first day itself on Manipur. Why they are insisting on 267? When 176 they have given notice, and on 176 the Home Ministry will reply
and it is the collective responsibility. And who has given the reply previously? Who has given the reply previously? Let them explain it. So they want that. They don't want discussion on Manipur, because entire thing in their regime, whatever has happened, that will be revealed. We are very, very sensitive about the Manipur, sir. Northeast में जो कुछ भी काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, एक किसी के 7 साल में नहीं हुआ है। हम हर बार काम हुआ है, हर महीने एक कैबिनेट मंत्री नॉर्थ ईस्ट को जाते हैं। कभी गया था सर? अभी ऐसे जो बात करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। अगर सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो हम अभी भी तैयार हैं। हम तुरंत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक चर्चा से भागना चाहते हैं। Mr. Tiruchi Shiva, sit down. Mr. Tiruchi Shiva. Reiterating the same, sir. We have also already. Why should not we find a solution to it? While we sit to 267, wait to 176, there is a way out. Why don't they rely upon that? Only one that means we are not prepared. We are always insisting on 276, 267. And also the Prime Minister should be here. But they say only Home Minister. You should find a way out. Otherwise, what is the meaning of it? Sir, discuss it amongst yourselves. Find a way out. I will continue with the business. 1 second. Before I take legislative business, I am listening to the Honorable LOP. Then I move to legislative business. Honorable Chairman, हमारा इंटेंशन यही था कि डिटेल डिस्कशन होगा, ये सब बाहर आएगा। और ये बीच में तो होम मिनिस्टर 3 बार गए, 3 बार को जाकर क्या करे? इसीलिए हमको बात करने नहीं दे रहे, और प्राइम मिनिस्टर आने के लिए तैयार नहीं, गवर्नमेंट हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर ह्यूमिलेशन कर रहे हैं। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करते हैं। अब खत्म हो गया। नहीं यार, बर्ड बहुत है। All right, pandemonium on the floor of the Rajya Sabha that you can see. A lot going on in Lok Sabha, where the motion for the no confidence being moved. You are hearing speaker after speaker, but a lot going on in Rajya Sabha as well. Srimati Sulata Dev, sir, you were making good contributions. Sir, and you were making excuse me, sir, really important inputs also. सर मेरा आपसे दरखास्त है सर, मैं पहले से बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्या बोले मुझे अभी भी याद नहीं है। You may start from the beginning. Okay. Your time will start now. Thank you so much, sir. Honorable Chairman, sir, ये the Constitution Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023 पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया गया, मैं इसका आभारी हूँ। मैं मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से ये बिल को समर्थन करती हूँ। आज विश्व आदिवासी दिवस है। मैं ये सदन के जरिए सारे आदिवासियों को अभिनंदन जनाती हूँ मेरे तरफ से। ये जो बिल आ रहा है ये छत्तीसगढ़ में मेहरा माहर ये समुदाय के लिए आ रहा है। ये बिल पास होगा तो इसमें छत्तीसगढ़ का कम से कम 2 लाख अनुसूचित जाति इसमें जुड़े जाएंगे। With visuals coming in from Rajya Sabha, going into a quick break to stay with us. 4 p.m. Amit Shah, Home Minister, speaking on the floor of the Lok Sabha on the no confidence motion against the motion. You are watching India Today.
breakthrough FDA-approved technology now enables you to do 11,200 pelvic contractions in a span of just 28 minutes. Something that a human body just cannot otherwise achieve. Enter Emcella, and the world of wellness and fitness offers hope to women with weak pelvic floor muscles, either due to aging, childbirth, menopause, or even men who face sexual issues. I tried 6 sessions of Emcella, which is the only FDA-approved machine. It's popularly called as Kegel Throne. From 6 sessions before to today, I'm here to assess what my pelvic floor looks like and how well it is strengthened. Any men or women who are looking for pelvic floor strengthening at any age above the age of 18, this is an ideal device. Emcella strengthens the pelvic floor, treats urinary incontinence, and improves intimate wellness. How important it is for them to maintain their Kegel floor? What happens if they don't look after it? Often the gynecologist says that you should do Kegel exercises. Basically, Kegel is nothing but a pelvic floor muscle exercise, and we need to do a lot of these exercises to get the strength of our pelvic floor back, because see, the pelvic floor is like a hammer, and the bladder as well as the uterus as well as the uterus is sitting on it. Emcella helps in sexual health in both men and women. Okay, it actually improves the pleasure during the sexual activity. It improves the erection. It improves the tightness of the vagina. It improves the orgasm. So all in all, it improves the enjoyment during the act. This works on the breakthrough high-fem technology and treats urinary incontinence and intimate discomfort. One session of Emcella can cost you anywhere between 10 to 20,000 rupees per session, depending on where you're getting it done. You need 6 sessions in total, 2 sessions a week for 3 weeks. After that, you can get maintenance sessions done once in a few months. Any contraindications for pregnant women, or is it better for pregnant women or pre-pregnancy? If I'm planning a pregnancy, is it better for me to strengthen the pelvic floor area artificially like this? So I would not recommend it during pregnancy. And again, some people who have internal implants in their vaginal region or in their lower abdomen or the lower in and around the pelvic region, they cannot get it done. Otherwise, anybody can get it done. The showdown over news portal NewsClick has escalated after claiming that the Congress had a China link. The BJP is now alleging that left leader Prakash Karat is involved in the scandal. Emails accessed by India Today reporters show the website NewsClick was asked to defend China on COVID and push Beijing's propaganda during the border clashes. Munish Pandey with these details. India Today unravels Congress-China link. A day after the government lashed out at the Congress and news website NewsClick, email exchanges have now emerged showing how Chinese propagandists were in direct touch with media in India. This is billionaire Neville Roy Singham, who's been accused of Chinese propaganda, emailing NewsClick director Prabir Purkhayas and CPM leaders like Prakash Karat with a Praise China toolkit. Sources tell India Today these email exchanges occurred during significant periods, including the early days of the COVID outbreak, during farmer protests in India, and the persisting border tensions between India and China.
The way these emails were structured, it clearly reveals a clear inclination towards promoting Chinese propaganda. Not just that, in stunning revelation, emails also talk about collaborations of the Indian communists with the Chinese. Sources say Prakash Karat expressed his satisfaction with the Chinese peace, despite knowing anti-China sentiments. यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट या रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? प्रकाश कारत साहब, उनका पूरा का पूरा मेल मैं ऑन रिकॉर्ड आपको लाना चाहता हूं कि जो वो नेवेली राय सिंघम था उसके साथ उनके हजारों मेल हैं, और जब आप कहेंगे मैं ऑन रिकॉर्ड उसको पेश कर दूंगा सर. The government has now sharpened its attack on the Congress. कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, न्यूज़ क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ. तो किसका हाथ कहाँ कहाँ मिला है सबको समझ आता है. कल जो है सर न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ. The Congress meanwhile has strongly objected to the comment made by the BJP leaders, calling them defamatory and demanding that the allegations made by Nishikant Dubey in Parliament must be expunged. With more and more evidence emerging of the China news click nexus to peddle Xi propaganda, the political fight is also heating up. With Munish Pandey in Delhi, Bureau Report, India Today. You are watching India Today. All right, day two of the no confidence motion, and not devoid of controversies as well. If Rahul Gandhi finally spoke in the beginning, then challenged by Smriti Irani right after that, it led to a wee bit of a controversy. The reason why? Well, the Treasury benches where the women MPs were concerned have now lodged a complaint with the Speaker suggesting that Rahul Gandhi blew a flying kiss to them. Amidst ongoing the sparring over the no trust war, Rahul's alleged flying kiss has stoked fresh controversy. Union Minister Smriti Irani also accused Rahul Gandhi during her speech of giving a flying kiss when he was leaving the Parliament. Calling the gesture indecent, Smriti Irani launched an attack on the Congress MP, accusing him of showing misogynistic behaviour. She also said that this is the first time that Parliament was witness to such an incident. Not just that, other BJP women parliamentarians have raised objections to Rahul Gandhi's flying kiss. Union Minister Shobha Karanjale has even complained to the Lok Sabha Speaker. Congress, meanwhile, has defended the act, claiming Rahul was only replying to the BJP members who were mocking him when he bent down to pick up the papers he had dropped. एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया. ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले. Joining me right now is Union Minister Ms. Shobha Karanjale. Ma'am, you went to the Speaker along with a delegation of women BJP MPs and you complained about Rahul Gandhi's inappropriate behavior. What happened inside the House, ma'am? After speaking, after his speech, Rahul Gandhi's speech,
Smriti Irani ji was stood up. She was the next speaker. And Rahul Gandhi came a little forward and shown the victory signal. And also, he behaved like he is given plain kiss to all of us. Like, he behaved like that. It is totally indecent, inappropriate, and also insult to the women. Inside the parliament giving plain kiss is totally objectionable, and also we complained, Speaker, take stringent action and also take the all CC camera footages and take action. What sort of action are you expecting against Rahul Gandhi? This is insult to us, insult to the women of India. Inside the Parliament House, ये देश का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, मंदिर का अंदर ऐसे बिहेवियर करना एक ऐसा नेता है, कैसा मेंबर है, मेंबर के ऊपर कार्यवाही करना ही करना एंड टेक एक्शन। भारत माता की और भारत छोड़ो की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में वो जानते नहीं हैं। जो ये मंदिर है हमारा लोकसभा मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए, नमन करके भारत माता का नमन करके पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश किया, उसी के अंदर जब वो बोल रहे थे तो बीच में भी वो आंख मार रहे थे। उनका जो बिहेवियर है, जो स्पीकर के सामने कभी पत्र फेंके जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके प्रति चले जाते हैं, उनके नेता को बचाव करने के लिए बहुत बार देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जहां इतनी महिला सांसद मंत्रियां बैठी थी, वहां उनका व्यवहार, अभद्र व्यवहार जो हम सहन पार्लियामेंट के अंदर नहीं करेंगे। स्पीकर से आपने कुछ? हम लोगों ने स्पीकर को बोला है कि आप जो फुटेज है वो निकाल कर हमें बता दीजिए। Rahul Gandhi does not know how to behave inside Parliament. Last time he was winking inside Parliament, and now he blows a flying kiss towards women parliamentarians on a day when they said they wanted to have a discussion on women's issues, on a day when they said that the discussion should have seriousness. That Rahul Gandhi behaves in this manner. It is shameful from BJP women who are saying like that. It's not aimed at any woman in the parliament. There are a lot of plenty of members who are from BJP sitting in the treasury benches. See, our heart is clean. Our heart is filled with love. Our heart is filled with compassion. But their heart is filled with, unfortunately, hatred. They look at everything differently. Just because their heart is filled with hatred and ego, Rahulji's speech is pretty much about that. He sent a love to them. Nothing more than that. If anybody making anything out of this kind of very nice and beautiful gesture, it's in their heart. Ugliness is in their heart, not with Rahulji or the Congress. These reactions, we slip into a quick commercial break. To stay with us, continuous coverage, day 2, no confidence motion in Parliament. You are watching India Today. UNESCO has recommended Venice to be added under World Heritage in Danger list ahead of its 45th meet that is to be held in September. Climate change and over-tourism are some major issues for which Venice has been recommended under the danger list. Take a look. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has recommended that one of the most popular and fragile tourist destinations of Italy, Venice, be added to its list of World Heritage in Danger, a designation that is given when a vulnerable heritage site is in need of support. The recommendation to put Venice on the World Heritage in Danger list was made by UNESCO and its advisory body experts ahead of the 45th session of the agency's World Heritage Committee meet, which will be held in Riyadh, Saudi Arabia in September this year. Mass tourism, development projects and climate change are some major reasons behind UNESCO's recommendation to put Venice under the danger list.
According to the organization, these issues are causing deterioration and damage to the building structures and to the urban areas, degrading the cultural and social identity of the property and threatening the integrity to its cultural, environmental, landscape attributes and values. UNESCO has asked the Italian government to ensure that utmost attention is given to Venice and its long-standing problems should be addressed that have been causing damage to the city. Over-tourism in Venice has been a serious issue. Venice is one of the places that is currently designated as a World Heritage Site because of its outstanding universal value, cultural and natural offerings. With Neha Kumari, Bureau Report, India Today. Chinese exports have witnessed their biggest drop in 3 years. Exports in July plunged by more than 14% on year, their third straight month of a drop. The fall is much higher than expected and is leading to fears that the second largest economy in the world may be in deeper trouble than anticipated. Importantly, the world is now wondering what impact could this have on the already dented global economy. For a country considered the epicenter of COVID-19, the pandemic is the watershed moment, turning the tide on China's powerhouse economy. With the Xi Jinping government closing of the country for almost 3 years to battle COVID, the after effects of the pandemic are manifesting themselves now. In the latest disappointment, China's imports and exports fell much faster than expected in July. While imports dropped 12.4% in July, year-on-year, exports contracted 14.5%, steeper than an expected 12.5% decline and the previous month's 12.4% fall. Not only has this threatened growth prospects in the world's second largest economy and heightened pressure for the Chinese government to provide fresh stimulus, it is also leading to fears that the entire world could be headed towards an economic slowdown. The figure is just the latest in a series of economic negativities from Beijing. Investment in China has stagnated the past few months after a flurry of activity in late winter. The housing sector, which accounts for a quarter of the Chinese economy, has stalled and even shrinking in some areas. Fewer and fewer new housing projects are being started. Prices are falling with June inflation falling 20 basis points on month. More than 1 in 5 young people are unemployed. All this led to a GDP growth rate of 6.3% in April to June, which is lower than what analysts expected. Poor imports and exports are the latest sign that third quarter growth could slow further, with construction, manufacturing and services activities, foreign direct investment and industrial profits all weakening.
Meanwhile, the pain is being felt by Chinese youth, with unemployment hitting the highest levels in the post-pandemic times. According to reports, joblessness in the 16 to 24 age group rose to 21.3% in June. The situation could get worse with a record 11.6 million university graduates entering the job market later this year. What is also working against China, as Morgan Stanley recently said in its report, are the increasing multipolar world's pressures on the country. This contrasts sharply to the investment bankers' assessment of India, which it says is emerging as an authoritative voice in global geopolitics. Bureau Report, Business Today Television. Watching India Today. Hello there, you're watching India Today TV. I'm Sneha Mordani. Let's get started with the top stories this Wednesday evening first. After much suspense, Rahul Gandhi speaks in Parliament, declares Bharat Mata has been murdered in Manipur. Smriti Irani fires back with dynasty and corruption attack. मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. Controversy erupts over Rahul Gandhi's flying kiss in the House. BJP women MPs complained to the Speaker, accused Rahul Gandhi of indecent behavior and disrespecting the House. It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. All eyes now on Amit Shah's speech, Home Minister to make an intervention on Manipur post 4 p.m. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar removed as guest from advocates' event over pending cases against him. BJP complaint says DKS can't share stage with High Court and Supreme Court judges. Chandrayaan 3 reaches even closer to the moon's surface after a successful maneuver. Next operation scheduled on the 14th of August. A top story, stormy no trust debate in Lok Sabha epic. Rahul Gandhi versus Smriti Irani clash in Sansad. Rahul Gandhi breathed fire at the Prime Minister, accusing the Prime Minister of letting Manipur burn. He said, and I quote, Modi has murdered India and Manipur. Modi has killed the idea of India. He's killed Bharat Mata and Manipur. Modi has burnt the state of Manipur. Not just this, Rahul Gandhi also likened Modi to Ravan, saying, the way Ravan relied on 2 people, the same way Modi also listens to just 2 people. One is Amit Shah and the other is Gautam Adani. Retaliating against Rahul was Minister Smriti Irani, who raked up Kashmiri Pandits killing, 1984 Sikh genocide under the Congress. She tore into Rahul Gandhi for speaking of the death of Mother India, which she claimed was the first time ever any Neta has done. All eyes now are on Home Minister Amit Shah, who is all set to speak any time now. It's expected after 4 p.m. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप
देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई। बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे ये, हम नहीं। भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, परतें जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। मौन मुद्रा का उल्लेख हुआ था। मौन थे ये लोग कई चीजों पर और आज भी हैं। मैं समुंदर के तट से कश्मीर की बर्फीली पहाड़ी तक चला। नहीं, लद्दाख को मैंने नहीं छोड़ा। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यात्रा जारी है और जरूर लद्दाख आएंगे, घबराइए मत। यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, जब ये उन वादियों में गए तो जैसे कश्मीरी कहते हैं, शीन जंग कर रहे थे, बर्फ के गोलों के साथ अपने के किसी परिजन के साथ खेल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 हटाई। Union Minister Kiren Rijiju interrupted Rahul Gandhi to slam him, accusing his party for not taking care of Manipur. He claimed that skyrocketing militancy in this region is only because of the Grand Old Party and the policies made by them. पानी पी रहे हैं भाई। सर, ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में, बहुत ही गंभीर बात किया है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक तक हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में
किए हुए हैं। इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं प्रॉब्लम आज नॉर्थ ईस्ट का सारा मिलिटेंट ग्रुप है, सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से जमा हुआ है। Congress is responsible for all the violence in Northeast. During Modi's time, not a single militant organizations were formed. Rather, more than 8,000 militants surrendered with arms. So, Congress party is responsible for all the formation of militant organization as well as killing of thousands of people during last 60 years. So, Congress is responsible for that. Rahul Gandhi should tender apology. Well, here's a look at some other highlights from day 2 of the no confidence debate in Parliament. Bharat, how are you, Manipur? How are you, Bharat? Not well. Not well at all. There is darkness everywhere. The first speaker and all the other speakers of the treasury benches have proven that they are not bothered about what is happening in Manipur. They have not spoken about Manipur. They were here just अपने सत्ता को ढिंढोरा पीट रहे थे, लेकिन मणिपुर में जो हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, एको ने उसको बारे में कुछ भी नहीं हमें बताया. The double engine government, as they call it, has failed completely to save the people from the manslaughter, the mayhem, the lawlessness that has seen nearly complete destruction of our country, our states. Our delegation had met the Honorable Governor in Manipur, and I quote her, wherein she said, till that day, that is 19th of July, 57 to 58,000 people had lost their homes. They were living in relief camps. Babies were being born in relief camps. Mothers were undergoing labor pain in relief camps. There wasn't no doctor. There wasn't any medication. There wasn't any sanitary napkin. There wasn't any food. There wasn't any drinking water. There wasn't any baby food. So that was Manipur in the relief camps, and the treasury benches didn't have the guts to talk about it here since the no confidence motion started. 5,000 to 6,000 houses have been burned there, sir. And women have been tortured, molested, gang raped. One unfortunate gang rape had seen the entire nation come out once. I don't want to mention. But this beheading, we have seen videos in which girls have been caught by their hairs and their throats slit. All girls should know this. मणिपुर पे चर्चा से हमारी तरफ से तो कभी हम भागे नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये रूल के आड़ में विपक्ष ने बार-बार इस चर्चा को रोकने का काम। They have given the notice under 176. We have accepted this, and also I would like to put it on record. The ethnic violence have taken place many times previously also. For the first time, the Home Minister was there for 3 days. And MOS home was there for 23 days. And there was a all-party floor leaders meeting of the opposition parties and all parties. Then also we said that there will be discussion on the first day itself on Manipur. Why they are insisting on 267? They don't want discussion on Manipur because entire thing in their regime, whatever has happened, that will be revealed. We are very, very sensitive about the Manipur, sir. बिना आइडिया के इंडिया वालों आपको चीन और पाकिस्तान और विदेशी गैंग ने पीएम बनाने की गारंटी दी है। मुझे नहीं कुछ कहना। तो मोदी को 140 करोड़ भारतीय पीएम बनाने की गारंटी दी है। ये राष्ट्र धर्म युद्ध है। भारत यानी इंडिया, और जीतेगा इंडिया, हारेगा घमंडिया, हारेगा घमंडिया। क्या हो रहा है बंगाल में? क्या हो रहा है बंगाल में? मणिपुर की चर्चा कर रहे थे। हम सब लोग हाथ हैं। मणिपुर की घटना के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के हर लोगों ने संवेदना व्यक्त की है सर।
कोई अप्रूव नहीं कर रहा है, उसको करने वाला भी नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। मगर ये मणिपुर को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर के घाव को भरने का मन नहीं है, घाव को उधेड़ने का काम करने रहा है। मणिपुर में जो आग लग रहा है, आग लगा है, उसके धुआं को, उसके आग से राजनीतिक रूप से उसको सेकना चाहते हैं। महोदय, and that was put into order, and they completely gave a wrong information which I want to be corrected about. Secondly, we are part of India, yes. She spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. 1947, when the Kabalis came and the Pakistani army came, Maharaja's army was very small. They could not defend the state. They walked in. Who defended at that time the people, the minority? Everyone, the Hindu, Muslim, Sikh, all Christians stood together and said, we will fight them. We had no weapons, but only had the will that they cannot take us. And I must inform the minister, the Akali Dal leader here. We are proud of your people. The Patiala regiment was the first that came to defend us. And I remember as a child, I was behind my father when I went to the airport. And I saw these 6-footers with a ring around their head. And I hid behind my father. I said, who are they? He said, they are the Punjab regiment that has come to defend us. And to them I pay my homage, to their bravery. Many died in my land, hardly any returned back. Today, we stand proud to be part of this nation. But this nation has a responsibility, not only to Hindus, but to Muslims, Christians, and Sikhs, and everybody that lives in India. Yes, yes. Prime Minister does not represent only one color. Yes. He represents India. He represents 1.4 billion people of India. Let's not ignore that. You make mistakes, we make mistakes, yes. Who says we are perfect? We make mistakes. Do you remember? I was Chief Minister. And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahab was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandarbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. They use them. And don't forget, I was Chief Minister, sitting in the assembly, please. And they came to attack the assembly. 5 minutes before I had left the assembly because I had to meet the governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the assembly and said, where is Farooq? They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not part of India. Don't say we are Pakistanis. Don't say we are traitors. इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन यह कहना कि यह सरकार 9 वर्षों में कश्मीरी पंडित हिंदुओं के लिए
कुछ नहीं किया गया So don't वहाँ say anything. कश्मीरी पंडितों की जमीन you की say- वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। चलिए what is saying? Chairman is saying, ये बोला जाए। आपको पता है ये मिनिस्टर साहब सुनिए मिनिस्टर साहब सुनिए कुछ आदत कीजिए सुनने की आदत कीजिए। आप ये जानते हैं कि किस तरह हमारे मिनिस्टरों को बमों से उड़ाया गया? मैंने उनका जो गोश्त था दरख्तों से उठाया है, कभी सुना आपने? कभी उसके बाद पता लगा आपको? क्या 5 मिनट के बाद पता है आपको? इसलिए कि हम लोग इस वतन के साथ रह सके, मगर जो आपका प्रभाव है, जो आपका तरीका है, वो इस मुल्क को खतरे में डाल रहा है। वो trying to create a tragedy for this nation. Remember, you are creating tragedies. Love people. It is not the force that will win you. It is not the power of the gun that will keep you. It is the love of the people that will keep us together. Create that love. Create that affection. Have some tears in your eyes. Not mere shouting. Enough of shouting has been done. Listen. Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. But on condition. Don't forget. And that agreement that was signed, only 3 things you held: defense, communication, and foreign affairs. Final decision has to be done of the state by a plebiscite. That's a history. Don't forget the history. And that plebiscite was never held. If plebiscite was not held, and was not 370 a permanent issue? But you abrogated it. Thank God it's in the Supreme Court today. I don't want to say much about it. But create love, not hate. Don't hate us by telling us tourism. What tourism is going in Kashmir? What development is taking in Kashmir? It is not tourism and development. It is love that you have to give. You have to understand. Mohabbat सीखो, मोहब्बत. नफरत मत सीखो. बहुत नफरत हो गई. अब नफरत को छोड़ दो और मोहब्बत की बात करो. और सुनिए मेरी बात. Please have the courage to listen. I did not speak when you people were speaking. I did not raise my voice. So listen. And listen good. Listen good. You had G20 meeting. And you said to the whole world, what a great tourism meeting you held. Do you know that you could not take the members of G20 to Gulmarg? You could not take them to Dachigam? And you say there is peace? That there is no terrorism there? Look at yesterday in Kulgam. Look at Rajouri. Our neighbor is still playing. Let's not forget that. And that's why I say to you, remember, I say to this government and I say to the people of India, याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा. सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए. 10 मिनट वो आए, करना में आए, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, और कहने लगे कि सुनिए कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते. अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे. अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी. ये आपके लीडर की बात है. सुनिए, आप उसको माने या ना माने, अगर आप में दम है
मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते। करो करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं, और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए, जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। हमने गोलियां खाई, हमने जिस्म अपने दिए, किसके लिए? कि हिंदुस्तान वहाँ जिंदा रहे। ये भूलिए मत, कभी भूलिए मत। और जहाँ तक मणिपुर का है, वहाँ पे आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ भी हमें मोहब्बत से काम करना पड़ेगा और उन लोगों के दिलों को जीत के उस मुल्क को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब। आई होप दीज पीपल विल रियलाइज लव इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है, क्या हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है। आज पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है इस विषय पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपनी सरकार पर। जी बोला जाए, दे दीजिए टाइम उनको। Mosmi Singh is getting us more details tracking that big story. Mosmi, this was to be a debate, in fact, on the fact that the opposition doesn't have faith on the government. But at the end of the day, it's ended up being a one-on-one. 10 साल के बाद जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो शर्त थी। So let us not talk of plebiscite that it was not held. The शर्त जब पूरी नहीं हुई तो नहीं हो सकता। प्रिया पटेल जी बोलिए। सर सवाल ये नहीं है, आपका आपका बैठिए, बैठ जाइए, लड़िए मत, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब बोलिएगा उस समय सब नोट करके बोलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे हमारे विपक्षी खेमे, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों द्वारा इस लोकसभा में पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदया, ये अविश्वास प्रस्ताव कितना आधारहीन और निरर्थक है, ये केवल इस तरफ के नहीं बल्कि उस तरफ के लोग भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। और स्वयं हमारे विपक्ष के साथियों की, हमारे इंडिया अलायंस के साथियों की स्वीकारोक्ति है कि सरकार the details of the day 2 of no confidence motion debate in Parliament. It continues to be a top focus. A quick commercial break now. पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। You are watching India Today. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Kamal only on India Today. It's always fun to see one of your favorite celebrities become a showstopper for these couturiers, and a lot of Bollywood made its way to the Couture Week this year in Delhi. Right from Ranbir Kapoor to Bhumi Pednekar, Ananya Pandey, Kiara Advani, Vani Kapoor, you name it, and they graced the runway. Here is all the celebrity action. The 16th edition of India Couture Week, organized by FTCI, saw Bollywood celebrities turn showstoppers. Right from Ranbir Kapoor to Kiara Advani, one saw a plethora of celebrities spruce up the runway.
feel like a golden girl. I feel very glamorous, but I also feel very comfortable, and I always have a great time working with Rimzim. And it's always there's lots of chaotic energy at Fashion Week, but somehow I managed to keep my calm, I think. It's a beautiful, beautiful embroidered jacket, and they decided to go without the shirt with this really interesting tie. And they have a nice little emblem on it, and I think it's elegant and cool and suave and new all at once. It feels like it's just growing on my body, the textile, the fabric. It's so sexy. I love the way it hugs my curves. It just makes me feel strong, like I can conquer anything. It's about imagination coming to life. Literally about imagination coming to life. And for that, I mean, just look at this. We can literally sit here and stare at it. While the focus is never on the celebrities, but the celebration of art and craft in India, it never really hurts to see celebrities glam up the runway. Indian influencers spruced up the front rows. Bahar Dhawan to Sukhneet Vadhva, there were plenty of them adding glamour. So, I mean, I was like literally like, oh my God, what a moment for us. Such great designs, the intricate work, absolutely stunning collection. In New Delhi with Riya Modi, Lifestyle Bureau, India Today. Days after a war of words broke out between the YSRCP and Pawan Kalyan camp over the funding of the movie Bro, the actor's brother and superstar Chiranjeevi has added fodder to the fire, asking Chief Minister Jagan Reddy's party to focus on governance. ఇప్పుడు చెబితే బాగుంటుంది. సినిమా పరిశ్రమలో కూడా చాలామంది పోకోడి వాళ్ళు మాకు సలహాలు చెబుతున్నారు కదా ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలని. వాళ్ళకు కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు కదా.
are watching India Today. Welcome back. It's full-blown war between Team India and the NDA. Now, on the 81st anniversary of the Quit India movement, comes Prime Minister's scathing attack at the opposition bloc, the India bloc. Recalling the movement by Mahatma Gandhi and launching a new war cry, Prime Minister Modi asserted that whole of India wants and is asking the opposition alliance to quit India. In a jibe, he said, and I quote, corruption, quit India, dynasty, quit India, appeasement, quit India. His salvo comes at a time when the opposition has been showcasing a strong, united front against the NDA. Smriti Irani too raised quit India attack inside Parliament while firing salvos at Rahul Gandhi. Hitting back at the Prime Minister-led centre, India Alliance released a video with the tagline, Jeetega Bharat. They staged a protest in Parliament and yet again questioned Modi's silence on Manipur, asking why is he not attending Parliament session in spite of having full majority in the House. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British, quit India. Corruption, quit India. Dynasty, quit India. Merit now finds place in India. महात्मा गांधी का क्विट इंडिया में ये लोग ब्रिटिशर्स का साथ, गोरों का साथ ये लोग ताली बजा के घूम रहे थे, चेयर लीडर्स बन रहे थे. अभी ये लोगों का ये इस क्विट इंडिया का बारे में ओनरशिप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं. ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. मोदी जी क्विट इंडिया में आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए मोदी जी माफी मांगना चाहिए. Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. क्विट इंडिया जब आंदोलन हुई थी तो ये तरुण पार्टी जो आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, इनके सारे पूर्वजों जो जितने थे वो ब्रिटिश शक्ति को, ब्रिटिश हुकूमत को तरफदारी कर रहे थे. और हमारे जो आज़ादी के आंदोलन में एक चुवाने भी उनको भाग नहीं किए, एक चुवाने की उनका देन नहीं है. वो सारे ब्रिटिश हुकूमत को तरफदारी करते थे उस समय. सारे बयान करूंगा, अगर चाहे सदन के अंदर मैं खुलेआम उनको न्योता देते हैं कि चलो सदन के अंदर चर्चा हो इस पे. आज हम कह रहे हैं करप्शन इंडिया छोड़ो. आज हम कह रहे हैं अपीजमेंट इंडिया छोड़ो. आज हम कह रहे हैं नेपोटिज्म, परिवारवाद इंडिया छोड़ो. और इसकी बहुत जरूरत है. नेपोटिज्म ने, करप्शन ने और अपीजमेंट ने, तुष्टीकरण ने ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है. What is the relation between Quit India and BJP? BJP इनका लोग आज़ादी के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं हो गया. They are against the freedom movement. BJP is totally against the freedom movement. Then what is the point of they are saying something on Quit India Day? 1947 में देश आजाद हुआ. उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए जो कुछ चाहिए था वो व्यवस्था बनी, पर उसमें बहुत जल्दी ही घुन लग गया. और वो घुन था भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का और तुष्टीकरण का. इस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, परिवारवाद के कारण और भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्र का में जो सामाजिक न्याय होना चाहिए था और जो विकास होना चाहिए था, उससे भारत की जनता, आजाद भारत की जनता वंचित रही. क्विट इंडिया से भारतीय जनता पार्टी का संबंध क्या है? क्विट इंडिया से संघ परिवार का संबंध क्या है? ये एक बार इतिहास अगर हमें बता देगा तो ये क्विट इंडिया का नारा दीजिए. क्विट इंडिया को विरोध करने वाले ये लोग हैं, उनके जो पूर्वज थे रिकॉर्ड पे है, क्विट इंडिया को विरोध करने वाले लोग थे. ब्रिटिशों की जी हुजूरी कर रहे थे ये लोग. क्विट इंडिया का एक सेलिब्रेशन है. क्विट इंडिया में आज जो देश से जो हमारे हिरासत में आए बहुत जो बुरी चीज़ है, करप्शन हो या ये सबको क्विट इंडिया का एक हमारे एमपीज ने एक क्विट इंडिया का रिमेम्बरिंग करते हुए एक कार्यक्रम किया. इतना ही. All the BJP members told him to sit and listen. But Rahul Gandhi, by giving plain kiss to us, Smriti Irani ji, all women members,
he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. ये क्विट इंडिया का बारे में बात करने के लिए आरएसएस और जनसंघ, हिंदू महासभा और बीजेपी, ये तीनों का एक ही नाम है और इनका कोई अधिकार नहीं है। ये पहले माफी मांगना चाहिए। ये लोग क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं किए। महात्मा गांधी का क्विट इंडिया में ये लोग ब्रिटिशर्स का साथ, गोरों का साथ ये लोग ताली बजा के घूम रहे थे, चेयर लीडर्स बन रहे थे। अभी ये लोगों का ये क्विट इंडिया का बारे में ओनरशिप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मोदी जी क्विट इंडिया में आरएसएस पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए मोदी जी माफी मांगना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा की पार्टी गांधी जी के पास आ रही है तो इससे बड़ी विसंगति नहीं हो सकती। खैर, गांधी जी बहुत महान है। वहाँ एक भजन हम लोग बजवा रहे हैं, सबको सन्मति दे भगवान। प्रधानमंत्री जी को भी दे, गृह मंत्री जी को भी दे, पूरी भाजपा को दे। हमारी उनसे शत्रुता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या हो रहा है? इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब घमंडिया, अपने सांसदों से बोल रहे हैं घमंडिया। अब ये भाई हिंदी शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं है। पूरे देश भर में यह आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिसके बाद हमें आजादी मिली। उस वक्त आरएसएस ने ऑफिशियली भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और अंग्रेजों का समर्थन किया था। उस वक्त अंग्रेज सत्ता पे बैठे थे, आज काले अंग्रेज सत्ता पर बैठे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, जो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण आज की डेट में जो कोई पार्टी कर रही है, वो कह रही है तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Well, amid ongoing sparring over the no trust vote, Rahul Gandhi's alleged flying kiss has stoked a fresh controversy. Now, Minister Smriti Irani has accused Gandhi of giving a flying kiss when he was leaving the house after his speech. She's called the gesture indecent, launched a scathing attack at the Congress MP, accusing him of showing a misogynistic behavior. She also said that this is the first time that Parliament was actually witnessing such an indecent gesture. Not just that, other BJP women parliamentarians have raised objection to Gandhi's flying kiss, and Minister Shobha Karlanje has even complained to the Lok Sabha Speaker. Congress, meanwhile, has defended the act by claiming that Rahul Gandhi was only replying to the BJP members who were mocking him when he bent down to pick the papers. एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। Joining me right now is Union Minister Ms. Shobha Karlanje. Ma'am, you went to the Speaker along with a delegation of women BJP MPs and you complained about Rahul Gandhi's inappropriate behavior. What happened inside the House, ma'am? After speaking, after his speech, Rahul Gandhi's speech, Smriti Irani ji was stood up. She was the next speaker and Rahul Gandhi came a little forward and shown the victory signal, and also he behaved like he is given plain kiss to all of us, like he behaved like that. It is totally indecent, inappropriate, and also insult to the women. Inside the parliament giving plain kiss is totally objectionable, and also we complained, Speaker, take stringent action and also take the all CC camera footages and take action. What sort of action are you expecting against Rahul Gandhi? This is like insult to us, insult to the women of India. Inside the Parliament House, ये देश का मंदिर है, डेमोक्रेसी का मंदिर है, मंदिर का अंदर ऐसे बिहेवियर करना, एक ऐसा नेता है, कैसा मेंबर है, मेंबर के ऊपर कार्यवाही करना ही करना
and take action. भारत माता की और भारत छोड़ो की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति के बारे में वो जानते नहीं हैं। जो ये मंदिर है हमारा लोकसभा मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार आए, नमन करके भारत माता का नमन करके पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश किया, उसी के अंदर जब वो बोल रहे थे तो बीच में भी वो आंख मार रहे थे। उनका जो बिहेवियर है, जो स्पीकर के सामने कभी पत्र फेंके जाते हैं, फाड़े जाते हैं, उनके प्रति चले जाते हैं, उनके नेता को बचाव करने के लिए बहुत बार देखा, लेकिन ये जेस्चर पहली बार देखा। जाते जाते उन्होंने हवा में किस पैरा के फ्लाइंग किस करके जो उन्होंने वेव किया, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। जहां इतनी महिला सांसद मंत्रियां बैठी थी, वहां उनका व्यवहार, अभद्र व्यवहार जो हम सहन पार्लियामेंट के अंदर नहीं करेंगे। स्पीकर से आपने कुछ? हम लोगों ने स्पीकर को बोला है कि आप जो फुटेज है वो निकाल कर हमें बता दीजिए। Rahul Gandhi does not know how to behave inside Parliament. Last time he was winking inside Parliament, and now he blows a flying kiss towards women parliamentarians on a day when they said they wanted to have a discussion on women's issues, on a day when they said that the discussion should have seriousness. That Rahul Gandhi behaves in this manner. It's just shameful from BJP women who are saying like that. It's not aimed at any woman in the parliament. There are a lot of plenty of members who are from BJP sitting in the treasury benches. See, our heart is clean. Our heart is filled with love. Our heart is filled with compassion. But their heart is filled with, unfortunately, hatred. They look at everything differently. Just because their heart is filled with hatred and ego, Rahulji's speech is pretty much about that. He sent a love to them. Nothing more than that. If anybody making anything out of this kind of very nice and beautiful gesture, it's in their heart. Ugliness is in their heart, not with Rahul ji or the Congress. रानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। हमने देखा एज अ जेस्चर ऑफ व्हेन ही वाज लीविंग, उन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन किया और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या ये कहकर सिर्फ महिलाओं को दे रहा हूँ, ये क्या बात हुई? उनको किस बात का दुख हो रहा है? इट वाज जस्ट अ जेन्युइन जेस्चर उन्होंने किया है। जैसे कहा मोहब्बत की दुकान है, आप लोग को नफरत से आदत हो गई है, मोहब्बत एक्सेप्ट नहीं कर पा। In Madhya Pradesh, the Congress seems to have embraced the strategy of using soft Hindutva ahead of the assembly elections. Former Chief Minister Kamal Nath has called India a Hindu Rashtra. He said that 82% are Hindus in India, and a country where there is such a huge percentage of Hindus, there's no point to debate over Hindu Rashtra. This after the stealth-style government Dhirendra Shastri, Bageshwar Baba raising the demand for India to be a Hindu Rashtra. Nath has lately quoted Shastri. Earlier this month, he endorsed a 3-day event of Hanuman Katha by Shastri in his home turf of Chindwara in Madhya Pradesh as well. Differing views within the Congress have emerged over Kamal Nath's Hindutva push. Leaders within the party are slamming Kamal Nath for quoting Dhirendra Shastri and has said senior leaders should refrain from such political stunts in the name of religion. Meanwhile, the AIMIM, the chief, Asauddin Owaisi, has hit out at Kamal Nath, said that India will never become a Hindu Rashtra, and added that veteran Congress netas are now trafficking hatred in their Mohabbat ki dukaan. Calling it a Chunavi Bhakti, MP Chief Minister, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan also took a jibe at Kamal Nath, calling it a confused attempt to seek votes. बनाने की क्या बात है? 82% तो हिंदू हैं, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहां कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं, तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। मेरी तो मान्यता व्यक्तिगत है कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपने अपने धर्म का निष्ठा के अनुसार पूजा पाठ करे, कथा कराए, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता। जो करते हैं वो मैं उसकी इस मत से सहमत नहीं। I practice the thing that religion and politics is different. Religion is a personal matter for any individual, and we should not use religious
events on religious parts into the politics. That is my way of looking at politics, because I had grown myself in Tamil Nadu. Our politics is like that. कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है. जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए अब मजबूर है. वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की. अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है. अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं. बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं. It's time for a quick commercial break here. News for the hearing impaired on the other side. You are watching India Today. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है. उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की. इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की. मारा आपने मणिपुर के लोगों को, मारकर भारत की हत्या की है. आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो. आपने देश की हत्या मणिपुर में की. कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की. अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है. यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया. यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकॉम्पिटेंस. यू आर नॉट इंडिया. Weather forecast now. Delhi, maximum 39 and minimum 28 degrees. Mumbai, maximum 29 and minimum 27 degrees. Kolkata, maximum 33 and minimum 26 degrees. Bangalore, maximum 30 and minimum 24 degrees. Chennai, maximum 33 and minimum 28 degrees. Hyderabad, maximum 30 and minimum 23 degrees. Stormy no trust debate in Lok Sabha. Rahul Gandhi breathed fire at Prime Minister Modi, accusing him of letting Manipur burn. Modi has murdered India and Manipur. Not just this, he also likened Modi to Ravan. Retaliating against Gandhi was Mantri Smriti Irani, who raked up Kashmiri Pandits' killing, the Sikh genocide under the Congress party. Amid ongoing sparring over the no trust vote, Rahul Gandhi's alleged flying case has stoked a fresh controversy. Minister Smriti Irani has accused Gandhi of giving a flying kiss when he was leaving the Parliament building after his speech. Shobha Karlanje has even complained to the Lok Sabha Speaker. Congress, meanwhile, has defended the act by claiming that Gandhi was only replying to the BJP members who were mocking him when he bent down to pick the papers. It's a full-blown war between Team India and the NDA. On 81st anniversary of the Quit India movement comes Prime Minister's scathing attack at the opposition bloc, India. Modi asserted that whole of India wants opposition alliance to quit India.
Hitting back at the Prime Minister-led centre, India Alliance released a video with the tagline "Jeetega Bharat." They staged a protest in Parliament and yet again questioned Modi's silence on Manipur. It's day 7 of the Gyanvapi survey. The court-ordered survey of Gyanvapi, excluding the Wazoo Khana. ASI team carried out the work of measurement, mapping and photography of the Gyanvapi complex. The Hindu side has claimed they found remains of Hindu idols in Gyanvapi, and primary stage of survey is over. You are watching India Today. Days after a war of words broke out between the YSRCP and Pawan Kalyan camp over the funding of the movie Bro, the actor's brother and superstar Chiranjeevi has added fodder to the fire, asking Chief Minister Jagan Reddy's party to focus on governance. చెబితే బాగుంటుంది. సినిమా పరిశ్రమలో కూడా చాలామంది పోకోడికి వెళ్ళి మాకు సలహాలు చెబుతున్నారు కదా ప్రభుత్వం ఎలా ఉండాలని. వాళ్ళకు కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు కదా. మనకెందురా బాబు ఇవన్నీ మన ఇండస్ట్రీలో డ్యాన్సులు ఫైట్లు వీటి గురించి యాక్షన్ గురించి మనం చూసుకుందామని వాళ్ళకు కూడా సలహా ఇస్తే ఇద్దరికి ఇస్తే బాగుంటుంది కదా. విశ్వప్రసాద్ టీజే గారు ఈ రకంగా బ్లాక్ మనీని వైట్ మనీగా చేసి సినిమాల ద్వారా తీసుకొచ్చి పవన్ కళ్యాణ్కి ప్యాకేజీల రూపంలో ఇచ్చేటటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. దీని మీద కూడా The YSRCP Minister Ambati Rambabu's comments set off a political storm in Andhra Pradesh with his twin attack on the Janasena chief and the TDP. Seeing red over Chandrababu Naidu's name being dragged into the row, TDP has demanded answers from the YSRCP on the basis of these allegations. Stop making these baseless allegations and stop making such funny comments on movies. Answer our questions, answer about the corruption that is happening in your department in the state of Andhra Pradesh. YSRCP has been levelling corruption allegations repeatedly against Naidu and Kalyan, both of whom have been extremely vocal about their friendship, with images repeatedly showing their closeness. This latest attack is sure to heat up the political tussle between CM Jagan and Pawan Kalyan, who have been resorted to personal, below-the-belt comments to target one another. Bureau Report, India Today. In politics, everyone has an opinion, but I have the data. Whose stock is rising? Whose graph is falling? Track India's political stock exchange. Unmatched, unmissable data analytics. The only show on News TV when numbers do the talking. India's most credible poll tracker. The Political Stock Exchange with Rahul Gandhi, only on India Today.
Home Minister Amit Shah is all set to speak in the Lok Sabha on the discussion on the motion of no confidence. In just a couple of minutes from now, it will be Home Minister Amit Shah's second big speech this week in Parliament. His speech on the Delhi Services Bill has already become a huge talking point. It led to a big political eruption, and that exchange in Lok Sabha has also gone viral on social media. Now Amit Shah speaks in the Lok Sabha as part of the no confidence motion. The Home Minister is expected to focus his speech almost entirely. We'll have to wait and see, but is expected to be almost entirely on the issue of Manipur itself. Remember, it's already been a very big day as far as the no confidence motion debate is concerned. It started today with Rahul Gandhi, then there was Smriti Irani, and now Amit Shah will be the third high-profile speaker in the Lok Sabha. So we're waiting on that. In just a few minutes, as scheduled, Amit Shah, the Home Minister, is likely to speak. Let's take you first straight to the headlines before that. Rahul Gandhi takes on the Modi government in Parliament, says Bharat Mata murdered in Manipur. Union Minister Smriti Irani fires back with dynast and corruption attack. हमारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो। You are not India because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. Meanwhile, in a viral sidelight from Parliament, Rahul Gandhi's alleged flying kiss in the House triggers a big controversy. BJP women MPs accuse Rahul of indecent behavior. Congress defense says Rahul only replied to the BJP MPs mocking him. All the BJP members, it is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha faces privilege motion over alleged forged signatures for the proposed select committee on the Delhi Services Bill. 6 MPs say their names were added by him without their consent. Kerala Assembly unanimously adopts resolution to rename the state from Kerala to Keralam. Chief Minister Pinarayi Vijayan now urges the centre to rename God's own country to Keralam in all languages. Chandrayaan 3 reaches even closer to the moon's surface after a successful maneuver. The next operation is scheduled for the 14th of August with a moon landing on the 23rd. All eyes on Lok Sabha with Home Minister Amit Shah all set to speak on the discussion on the motion of no confidence very shortly. We're standing by. Cameras are live. The Home Minister is in the Lok Sabha at this point of time. Let's go across live and see the build-up. निक्कर पार्टी वो निक्कर पार्टी है, ये दोनों मिलके तेलंगाना को लूटने में लग गए। इसीलिए आज के तारीख में ये दोनों के खिलाफ हम ये अविश्वास तीर्मान ये सभा में लगाए। तेलंगाना को जो आश्वासन दिए वो आश्वासन पूरे नहीं किए। इसीलिए आप क्यों हो रहे हो? तो वही खुद ही कह रहे हैं ना, हम एक हो गए तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो बैठो। चलिए, हो गया आपका। प्लीज कंक्लूड। ओ प्लीज कंक्लूड। स्पीकर सर, अमित शाह गार की నేను एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ. डॉक्टर केशवराव बलिराम हेगडेवर, he belongs to Telangana, Kandakurti, Nizamabad district, Telangana state, who has started RSS in 1925. ये तेलंगाना से जो सर वो नागपुर के नहीं है, निजामाबाद कंदकुर्ती तेलंगाना के है, मगर तेलंगाना के ऊपर आप गुस्सा मत दिखा सकते क्योंकि 1984 में माननीय गृह मंत्री जी, अब बैठ जाओ भाई,
हो गया, माइक बंद हो गया। अध्यक्ष जी ने मुझे खड़ा किया भाई। प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाइए। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगोई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है। ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं है। और जनता में भी विश्वास है मान्यवर। जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं। मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है। कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार
भारतीय जनता पार्टी को चुना गया 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। मान्यवर, आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। मान्यवर, लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले। मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी, और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखाई ही पड़ता है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। मान्यवर, अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मित 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा।
दो अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ, जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था, जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब ले गए। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपए की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है। 1999 में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे, क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है। हम भी कर सकते थे, मगर हमने नहीं किया। मानिए हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी। देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। मान्यवर सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। मान्यवर उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे। वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना, मगर मान्यवर आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था। हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ? बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है। एन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस विश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से
मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं। एक और करोड़ों रुपया खर्च कर बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता, देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी, ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर, अभी बात निकली गरीब कल्याण की। हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर, गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी झस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर, इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर, इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झूंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, 5वें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी। मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुआनी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर, मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़, मतलब 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर, ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना? 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था। मान्यवर, इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली
यूपीए सरकार, और एक बार सम्मान के साथ इसके घर में सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ भेजे। मान्यवर, आज मैं और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है। इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है, तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया। भैया तुम ऋण ही मत, आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर, इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे, करीब 60 करोड़ लोग जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मान्यवर, मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं। 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर, जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उठाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर, अब तक जनधन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो। बैठो, बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना, अरे बैठो ना। मान्यवर कह रहे डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीबी हटाओ किसने कहा। आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है। आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर, 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया
देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्यवर कोरोना आया। मान्यवर कोरोना आया। मोदी जी ने शुरुआत की पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षा पक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं। इसलिए हम मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी। दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठे मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया। मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी। पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का था। मान्यवर, इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। कोविड में 54 लाख लोगों की मौत हुई थी। 54 लाख। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाएगा। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर, 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। भाई, अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को, देश की जनता को नहीं है। क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है
जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और 2 बार राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार। एक गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र कर कर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए। ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का और मान्यवर मुझे भरोसा है, मान्यवर मुझे तो भरोसा है, मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 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 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, पर मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं रखा है, क्या खड़े हो कर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो ना, आप चर्चा शुरू करते हो ना, बोलने देते हैं आपको। अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ।
मान्यवर, आने वाले दिनों में, मान्यवर, आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो। ये सात के सात क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर, इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक 2 गुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है। लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि। और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PJ की सीटों में 100% वृद्धि कर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया। मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे। आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है। ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा दादा, इस चुनाव के काउंटिंग में पता चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा,
यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली। आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाए, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे। सीडीएस का मसला, ये भी आपका सोच था, इंप्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था। मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको कर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया। ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है मान्यवर। 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करता है। सब भागते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि 1 पेंशन 1 रैंक के अंदर देने का काम। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से यमन से निकाला और 2 लाख उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो, इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने की। मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे, कितना छोड़कर गए थे भाई? 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर
22-23 में 323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं। 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। और ये एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं मान्यवर, आपके माध्यम से जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको मैं एमएसपी के बारे में जरूर पूछना चाहता हूं कि भैया आपने एमएसपी की कितनी खरीदी की थी और एमएसपी में के रेट में कितनी बढ़ोतरी की थी। जरा हिसाब किताब लेकर जनता के सामने जाइए। मगर नहीं जाएंगे, बैठे बैठे बोले रह गएंगे एमएसपी का क्या हुआ। मैं बताता हूं सत्य क्या है। और मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को और 14 करोड़ किसानों को कहना चाहता हूं कि आपके घर में सबसे ज्यादा एमएसपी और एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान खरीदने का काम कोई एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, धान की खरीदी पहले ध्यान से सुनना, सभी सभासदों को मेरा विनती है, ध्यान से सुनिए। धान की खरीदी 475 लाख मैट्रिक टन मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम साल में की। मैं फिर से आंकड़ा बोलता हूं, 475 लाख मैट्रिक टन। नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम खरीदी 896 लाख मैट्रिक टन, 88% की वृद्धि। मान्यवर, और लाभार्थी किसान पहले 76 लाख थे, अब 1,31,00,000 लाभार्थी किसान। मान्यवर, गेहूं की खरीदी एमएसपी पर खरीदी, इसके अंदर मनमोहन सिंह जी और इनकी यूपीए की सरकार 251 लाख मैट्रिक टन छोड़कर गए थे, 251 लाख मैट्रिक टन। अब नरेंद्र मोदी जी ने 251 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 433 लाख मैट्रिक टन पहुंचाने। और पहले गेहूं 20 लाख किसानों का खरीदा जाता था, अब गेहूं 43 लाख 43 लाख किसानों का खरीदा जाता है। मान्यवर, मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे। हमारा मखौल उड़ाते थे, अभी भी उड़ाते हैं, शायद 5 साल बाद भी उड़ाएंगे। समझ नहीं पड़ी है। मान्यवर, हम कहते थे कि हम किसानों का आय दोगुना करेंगे, हमारा मजाक उड़ाया जाता। अब मैं बताता हूं मान्यवर, मोदी जी ने निर्णय कर दिया कि किसान की आय से, मतलब खर्च से, लागत से 50% कम से कम एमएसपी रखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक किसान हिस्से निर्णय है। मान्यवर, धान की एमएसपी जो 1310 थी, मैं फिर से एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार, जिनको हम पर अविश्वास है, वो यूपीए सरकार धान के एमएसपी 1310 छोड़कर गई। कम खरीदते थे मगर रेट 1310 था, हमने ज्यादा खरीदा और उसके दाम को भी 1310 से बढ़ाकर 2040 कर दिया। मान्यवर, गेहूं 2013-14 में 1400 रुपया एमएसपी छोड़कर गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए, और आज 2013-14 में 1400 से बढ़कर 2125 रुपया एमएसपी का मिला। हमने गेहूं ज्यादा भी खरीदा और गेहूं का दाम भी ज्यादा दिया। मान्यवर, ये ना ही किसान हितैषी है, ना एक गरीब हितैषी है, ना एक पिछड़ा हितैषी है। उनको अपने परिवारों के अलावे किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मोदी जी ने आज कहा है, 9 तारीख को आज कहा है, 9 अगस्त को, परिवारवाद ट्वीट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भाई, अभी भी सत्यता स्वीकारो, नहीं तो जो होए उसके भी आधे हो जाओ। मान्यवर, मैं देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति इस देश की जनता का आपके माध्यम से, महान सदन के माध्यम से जाता हूं। मान्यवर, पीएफआई कई सालों से देश को तोड़ने की, देश की जनसांख्यिकी बदलने की
और देश के अंदर आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी। एक ही दिन में सितंबर 22 में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर PFI पर बैन लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। मान्यवर, देश भर में PFI को हमने बैन किया। दुनिया भर में भागे हुए गुनहगारों को आज वापिस लिया जाता है। NIA के 9 घनघोर आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों को दुनिया भर से चून उठाकर हम वापिस लाए और 6 राज्यों की पुलिस को भी उनको वापिस लाए। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसावाले की हत्या का आरोपी था, उसको भी वापिस लाए और तंवर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाया जाएगा। मान्यवर, विदेश में भारतीय दूतावासों पर लंदन, ओटावा, सैन फ्रांसिस्को पर जो हमले हुए वो तीनों मामलों को हमने NIA को सौंपा है। और मान्यवर, लगभग मैं UAPA को कठोर करने का निर्णय बिल लेकर आया था यहाँ पर, और उस सदन में दिग्विजय सिंह कहते थे इसका दुरुपयोग होगा। मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ, विपक्ष को भी बताना चाहता हूँ, UAPA का उपयोग टेररिस्ट कृत्य करने वाले इनके खिलाफ होता है। हम किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी मैं नहीं समझ सकता था आपको क्यों डर लग रहा है, परंतु जिन्होंने टेररिस्ट कृत्य नहीं किया उसको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग 54 व्यक्तियों को हमने UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया, इंटरनेशनल मान्यता लाए हैं और एक में भी विवाद नहीं हुआ है, कोई राजनीतिक दुरुपयोग मान्यवर नहीं है। मान्यवर, अभी गोगाई जी नारकोटिक्स का बात करते थे, वो कहते थे कि नारकोटिक्स का चलन बढ़ गया है। मान्यवर, इनकी समझ में थोड़ा फर्क है, मैं बाद में दुरुस्त करता हूं इसको। मान्यवर, मोदी जी ने 2014 से गृह मंत्रालय के अधीन, पहले श्रीमान राजनाथ जी थे, अब मैं गृह मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं, नारकोटिक्स पर 0 टॉलरेंस की नीति को हमने अपनाया। एनकोड 2019 में बनाया गया, फिर इसको 4 स्तरीय किया गया। एनकोड पोर्टल डेटा इंटीग्रेशन और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल बनाए गए। मादक पदार्थ की तस्करी के विस्तृत जांच के लिए JCC, जिसमें ढेर सारे डिपार्टमेंट और सरकारें होती है, इसका गठन किया गया। डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स राज्यों में बनाई गई। राष्ट्रीय नारकोटिक कैनाइन पूल की स्थापना की गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,65,000 किलोग्राम नारकोटिक्स को जलाया गया और अब वो टोटल आज़ादी के अमृत महोत्सव के 1 वर्ष में 10 लाख किलो पहुंच गया है। अब मैं जो गोगाई जी कहते थे इसका जवाब दिया। मान्यवर, आंकड़े किसी की शर्म नहीं रखते, आंकड़े बेशर्म होते हैं और आंकड़े हमारे कामों से खड़े होते हैं। आंकड़ों को बाद में बदला भी नहीं जा सकता। अब 2006 से एक सरकार थी यहाँ, UPA की सरकार थी, जिसको हम पर थोड़ा अविश्वास है। 2006 से 13 का समय उनका ही था। उसमें क्या हुआ है, जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी। मैं फिर से सदन का और सदन के माध्यम से देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब्त की गई ड्रग 1,52,000 किलो थी और 2014 से 22 तक 1,52,000 करोड़ से बढ़कर 3,73,000 किलोग्राम ड्रग्स हमने जब्त किया। गोगाई जी, 181% वृद्धि हुई और कीमत, गांजा पकड़ लेना, भांग पकड़ लेना एक बात है, जो महंगे और शरीर को ज़्यादा नुकसान करने वाले और पैसे की दृष्टि से नुकसान करने वाले जो नारकोटिक्स के पदार्थ हैं, वो कीमत से मान्यवर 2006 से 13 में 768 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई। मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा,
768 करोड़, जिससे यूपीए सरकार संतुष्ट थी। उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में भी लिखा था। और 14 से 22 तक एकदम वो ही कालखंड 768 करोड़ और 14 से 22 में 18,000 करोड़ रुपए की ड्रग को नरेंद्र मोदी सरकार, और ये हम पर सवाल उठा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको भरोसा नहीं है, मगर देश की जनता को विश्वास है। कुल मामले 1257 दर्ज किए थे, अब 3700। अब इन्होंने कल यहां ज्ञान बांटा कि पहले 1257 थे, अब देखिए बढ़ गए 37 हो गए। भाई नारकोटिक्स के खिलाफ केस अच्छे हैं या बुरे माने जाएंगे? हम पकड़ते हैं, आप पकड़ते ही नहीं थे, चलने देते थे। हमने पकड़ना शुरू किया, इसलिए 1257 से बढ़कर 3700 केस हो गए, और गिरफ्तारियां आपने 1363 की थी, हमने 5400 गिरफ्तारियां करी है। मान्यवर, टोल फ्री नंबर भी करा। माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो गृह मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक सभा की कार्रवाई बढ़ा दी जाए। मान्यवर, मान्यवर, 3 करोड़ युवा और 2 करोड़ महिलाओं को नशा मुक्त अभियान में अलग अलग विभागों के, समाज कल्याण विभाग, महिला और बाल कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सब ने इकट्ठा होकर साथ में जुड़ा है, और लगभग 9.5 करोड़ लोग तक नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ और टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करने की पहुंच बढ़ी है। मान्यवर, ये हमारे प्रयासों को दर्शाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भले आपको विश्वास हो, देश की जनता को विश्वास है। मान्यवर, इस देश की आंतरिक सलामती की दृष्टि से 3 बड़े हॉटस्पॉट माने जाते थे। एक कश्मीर, एक वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र, और तीसरा नॉर्थ ईस्ट। और सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, ये चलता रहा। आज मैं स्पष्ट रूप से सदन में कहना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्या वोट बैंक की राजनीति और समस्या से आंख मूंदना था। कश्मीर की समस्या सरकारों का ढूलमूल रवैया था। कश्मीर के अंदर 2014 से हमारी नीतियों में परिवर्तन आया। मैं फिर से एक बार कहना आऊंगा, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, 14 से 19 तक राजनाथ सिंह जी ने, और उसके बाद मैं गृह मंत्री बना हूं, मोदी जी के नेतृत्व में सातत्यपूर्ण तरीके से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए हमने काम किया। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। मान्यवर, मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री मेरे निवेदन का विरोध नहीं करेंगे। अधीर जी को टाइम नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दो, तो ये बीच में ना बोलेंगे, ये बीच में खड़े हो जाते हैं। हमारे टाइम में से आधा घंटा दे दीजिए साहब, वो बोलने दीजिए उनको। ये बीच में इसलिए खड़े होते हैं, इनकी पार्टी ने उनको टाइम ही नहीं दिया इसे। मान्यवर, नहीं, कश्मीर तो सारी संसदीय समितियां गई है ना, कश्मीर देखा है ना सबने। माननीय गृह मंत्री जी, याजिर बाबू 10 मिनट दे देंगे, हमारा 10 मिनट दे देंगे, बैठो अभी। चलिए बेटे, आप क्यों खड़े हो, बेटे? हाँ, मान्यवर, कश्मीर के अंदर परिवर्तन लाने वाला युगांतकारी निर्णय इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को
इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त कर। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, इन्होंने, मैं अभी भी एक इनके ही प्रेरित एनजीओ की एक मीटिंग अभी हुई, रिपोर्ट मैंने देखी। क्या रिपोर्ट कहते हैं? हुर्रियत से चर्चा करो, जमीयत से चर्चा करो, पाकिस्तान से चर्चा करो। हम ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा करेंगे। अगर मान्यवर, अगर हम चर्चा करेंगे तो घाटी के युवाओं से चर्चा करेंगे, वो हमारे अपने हैं, हम उनके साथ चर्चा करेंगे। मान्यवर, हुर्रियत पर हमने पाबंदी कर दी, जमायते इस्लामी पर कश्मीर में पाबंदी कर दी, आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। मान्यवर, लखनपुर टोल टैक्स जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को सूल की तरह हृदय में चुभता था, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जहां अरेस्ट किया था, वो लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त कर दिया। मान्यवर, राज्य की अर्थव्यवस्था को एकीकृत किया, 2 दरबार की परंपरा समाप्त कर दी गई और 200 करोड़ रुपए को बचाने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, वहां दलितों को रिजर्वेशन नहीं था, आदिवासियों को नहीं था, पिछड़े को नहीं था, ये सारा रिजर्वेशन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, वहां पर महिला आयोग नहीं था, बाल आयोग नहीं था, वहां पर दलित आयोग भी नहीं था, ये सारे आयोग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। वहां सफाई कर्मचारी मान्यवर 7-7 पीढ़ी से मुगलों को जमाने से रहते थे, मगर उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। पाकिस्तान से शरण में आए हुए, पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए हिंदू, उनको डोमिसाइल, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग, डोमिसाइल नहीं मिलता था। ये सबको डोमिसाइल देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यवर, ये कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में मानते हैं। कश्मीर पर शासन किसने किया? किसने किया? 3 परिवारों ने किया, महबूबा मुफ्ती, फारूक साहब और गांधी परिवार। ये 3 परिवारों ने कुल शासन किया। वहां का पंचायत चुनाव नहीं करा है। नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर-दिसंबर 2018 में, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, 9 चरणों में पंचायती चुनाव को समाप्त। 4483 सरपंच निर्वाचित हुए और 35,000 पंच चुने गए। आज 40,000 लोग डेमोक्रेसी की सांस भर रहे हैं, जमहूरियत का फायदा उठा रहे हैं। स्टोन पेंटिंग का मैं आप सबको कहता हूं, पथराव की घटना टीवी पर दिखाई पड़ती है भैया? कहीं नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि पथराव बंद हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर पुलिस, प्लीज, मान्यवर, जम्मू कश्मीर पुलिस 90 के दशक के पहली बार आज एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। और सुन लीजिए, अधीर रंजन जी अविश्वास लेकर आ गए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। 1 करोड़ 80 लाख। मान्यवर, अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। मान्यवर, 33 साल के बाद थिएटर चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद नाइट शो चालू हुआ है, नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ है। 33 साल के बाद शिकाराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मोहर्रम बंद था,
पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मुहर्रम चालू है। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए और आज रोजगारी बढ़ रही है। 20,000 लोगों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। मूलभूत ढांचे का विकास हो रहा है। 5,000 मेगावाट, 3,000 मेगावाट, 624 मेगावाट और 540 मेगावाट की जल विद्युत की योजनाएं वहां शुरू कर दी गई है। इसके साथ 850 मेगावाट और 1000 मेगावाट इसकी भी 2 जल विद्युत योजनाएं शुरू हुई है। सिंचाई योजना, शाहपुर कंडी बांध योजना जो 50 साल पहले शुरू हुई थी, मोदी जी के शासन में चालू हुई थी, मोदी जी के शासन में पूरी होगी। 62 करोड़ की मुख्य रवि नहर 90% काम पूरा कर दिया गया है। और झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना संगठन द्वारा 250 मिलियन $US विश्व बैंक से लाकर गरीबों को पुनर्वसन का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है, उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रगति पर है। और सुरक्षा का मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इसलिए तुलनात्मक रखता हूं कि अविश्वास का जो प्रस्ताव है इससे देश की जनता में भ्रांति न खड़ी हो। मान्यवर, ये बहुत जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं 9 साल के 2 टुकड़े लेकर आया हूं। कौन से 9 साल के टुकड़े हैं? एक परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर चुनी गई यूपीए की सरकार के 9 साल है, और एक देशभक्ति और समर्पण के आधार पर चुनी गई नरेंद्र मोदी सरकार। 9 साल की दोनों के तुलनात्मक में आतंकवाद की कुल घटनाओं में मान्यवर 68% की कटौती हो चुकी है। मान्यवर, कुल मौतें सिक्योरिटी और नागरिक की दोनों मिलाकर 72% की कमी हुई है। और नागरिकों की मौतों, सिर्फ नागरिकों की मौतों में 82% की कमी हुई है। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्स की मौतों में 56% कमी हुई है। और स्टोन पेल्टिंग करने की किसी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। मान्यवर, इसी सदन में कहते थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार। और इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, जनता को तो विश्वास। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए। 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 हुई, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। हिंसाग्रस्त जिले 96 थे, 96। इसके बाद में 22 नए बने, तो एक दृष्टि से 96 + 22 हुए, कितने होते हैं? 96 और 20 मतलब 118 हुए। अब 118 से घटकर 45 जिले बच गए हैं। नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद सिमट कर रह गया है। और हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन 465 थे, 80 नए बनने के बाद 465 + 80 लगभग 550 हुए। और उसमें से अब 176 बचे हैं, 62% की कमी हुई। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर हमने नकेल कसी। 2014 से सातत्यपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर नरेंद्र मोदी चले। मान्यवर, राजनाथ जी गृह मंत्री थे तभी एक योजना बन गई, विकास की योजना पहले बनी, और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र के विकास गृह मंत्रालय के तहत आती। हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाना, रोड पहुंचाना, स्कूल पहुंचाना, सस्ते अनाज की दुकान पहुंचाना, दवाइयों की दुकान पहुंचाना, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम पहुंचाना, ये काम होते गए। अंत में हमने पहले विकास पहुंचा और फिर 195 नए सुरक्षा वैक्यूम भरने के लिए सीएपीएफ के कैंप खोलने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एनआईए और ईडी को जोड़ा गया, इनके फाइनेंस की कमर तोड़ी गई,
एनआईए में एक अलग वर्टिकल वामपंथी उग्रवाद और उसके केसों की जांच के लिए बनाया गया, एक बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया, सारे वामपंथी उग्रवादी एफआईआर का कंप्यूटराइजेशन कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका एनालिसिस किया जा रहा है और छत्तीसगढ़िया बटालियन, बस्तरिया बटालियन भी बनाई गई। मान्यवर, आज मैं कह सकता हूं इस सदन के अंदर जिम्मेदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद आया तब वो स्वप्न देखते थे काठमांडू से तिरुपति का, आज 3 जिलों में सिमट कर रह गए। मान्यवर, उनका दायरा क्या था? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। आज क्या बच गया है? झारखंड मुक्त, बिहार मुक्त, उड़ीसा मुक्त, एमपी मुक्त, महाराष्ट्र मुक्त, आंध्र मुक्त, तेलंगाना मुक्त, केवल और केवल छत्तीसगढ़ के 3 जिले बचे हैं। मान्यवर, ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद को, मान्यवर, वामपंथी उग्रवाद पर जबरदस्त नकेल कसने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को विश्वास। मान्यवर, अब मैं पूर्वोत्तर की बात करना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट भी तीसरा हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, हिंसक घटनाएं सेम कालखंड की मैं लेकर आया हूं, फिर से इन लोगों को ऐसा न हो, इसलिए हिंसक घटनाएं 10,000 होती थी, इसकी जगह 3,238 हुई, 68% की कमी। हताहत सुरक्षा बल 397, अब 128, 68% की कमी। मृत्यु नागरिक 2,298, अब 420, 82% की कमी। हर हेड में हिंसा नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम हुई। और इसके पहले मान्यवर किसकी सरकार थी? 10 साल तक नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य और यहां पर ये यूपीए की सरकार थी मान्यवर, मगर कुछ नहीं होता था। निवेदन करना, पॉलिटिक्स करना और अंदर अंदर झगड़ा लगाना, यही काम था। नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मन के साथ भारत के साथ जोड़ने का काम किया। हमारे कई डेवलपमेंट के पंडित कहते हैं मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को मैं बताता हूं भैया, ये भी बताता हूं। मान्यवर, कई विकास के पंडित कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी कम करने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। आज मैं कहता हूं, ऐसे भी प्रधानमंत्री है, मोदी जी को 9 साल हुए हैं, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसक हमारे मन में। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया था, आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। बोलो मणिपुर में बताता हूं, मैं फिर बोलूंगा मणिपुर। मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ नहीं किया, ना विकास किया है ना कुछ किया है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी नैसेक स्थापना कर गए थे, इसरो जैसी एक संस्था बनाई, पदेन मैं इसका अध्यक्ष होता हूं। मोदी जी ने नैसेक को एक्टिवेट करा, पूरा नॉर्थ ईस्ट का स्टडी किया है। ब्रह्मपुत्र के पूर्व को बड़े बड़े मैदानों में तालाब बनाकर इसके अंदर डाइवर्ट कर सिंचाई भी होगी, बाढ़ का रास्ता भी होगा और पर्यटन भी होगा। ये बाढ़ मुक्त नॉर्थ ईस्ट आने वाले वर्षों में, और हम बनाकर रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को बाढ़ मुक्त, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है। जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि भले आपको विश्वास हो मगर जनता को तो। मान्यवर, मैं जब ये कहता हूं तब हमने नॉर्थ ईस्ट में शांति ऐसे भावनाओं से नहीं करी है, ये कागजी शांति नहीं है।
इसके पीछे रणनीति है, इसके पीछे कड़ी मेहनत है और इसके पीछे लगन भी लगी है। मान्यवर, 2014 में अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हमने समाधान करा, लगभग 674 लोग समाधान हुआ। अब ये अचीक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल की हिंसा में 224 लोग मारे गए थे। NLFT के साथ 2019 में समाधान हुआ, 88 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 144 लोग मारे गए थे। बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ समाधान हुआ 2020 में, NLFT के साथ 19 में हुआ, 2020 में बोडोलैंड के साथ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ हुआ। 1630 लोग सरेंडर किए, 4300 लोग बोडोलैंड की हिंसा में मारे गए थे। मान्यवर, 4362 लोग, और इन्होंने हथियार डाले। कार्बी समूह 197 लोग मारे गए थे, 1000 उग्रवादियों ने समर्थन किया। असम आदिवासी सशस्त्र समूह 1182 लोगों ने सरेंडर किया, 329 लोग मारे गए थे। और दिमासा नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई, आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई है, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर के अंदर हमने हिंसक घटनाओं में 68%, सुरक्षा बलों की हत्याओं में 68% और हताहत नागरिक में 82% कमी करी है। ये सारा मैंने जो कहा वो समझौते किए हैं। आसाम के अंदर 70% से अधिक अपसफा का क्षेत्र मुक्त, मणिपुर के अंदर 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन हटाए गए, अरुणाचल में केवल एक जिला और 3 पुलिस स्टेशन बच गए, नागालैंड में 8 जिलों के 18 पुलिस स्टेशन हटाए गए और त्रिपुरा और मेघालय में पूर्णतः अपसपा हटा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहता हूँ कि जो बचा कुचा काम बाकी है वो भी हम ही पूरा करेंगे, क्योंकि आपका अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता हमें चुनने वाली है, क्योंकि जनता को, आपको भले अविश्वास हो, जनता को मान्यवर, अब मैं मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। भाई थोड़ी देर, मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूँ। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूँगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज़्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहाँ हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूं, ओके प्लीज, ये गलती आपकी है। अरे यार, आपके टाइम में बोलना पड़ेगा, मेरे चाहते हैं सारे इल्जाम। प्लीज, गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमारे ऊपर दोबारा इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति।
मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बढ़ाइए। प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूँ मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ। होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, ये यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा। आपके मन में ये भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूँ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आज़ाद हुए तब से नहीं है, फेंसिंग नहीं है। तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आया। अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज़ आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में
2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की, हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा, क्योंकि वहाँ जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है। मान्यवर घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या, हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर हुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर ये जो वहाँ पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से आ जाए उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर। और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है, मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित कर, जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों में स्पर्धा का भाव होता है। और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रैली के अंदर एक क्लैश हो गया माने, और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गा, ये क्यों नहीं गा, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे हैं मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नारकोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी
उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया। मान्यवर, अब दो सवाल हैं कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया। मैं उस पर बाद में जाता हूँ। इतनी ही शांति से बताऊँगा, कोई जरा भी मन में मैं कि कोई किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता। भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी मंदिर, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले। भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट ने। और मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूँ इतिहास, सब मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की? किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला। ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे 1 से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए। मुझे बोलने नहीं देते हैं। ये किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगोई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कह दो बताओ तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबोबी सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं। वहां लोग मानते वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा थी। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य
नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख रहे। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है, डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर बैठ जाओ यार। कृपया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पर न जाऊं। मान्यवर यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे। 1 साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचा है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं दिया, अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मतई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मतई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया है। मान्यवर मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़माने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। श्री राहुल गांधी जी यहाँ से वहाँ मुलाकात करने, मैं बड़ा स्वागत करता हूँ। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए, एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था,
भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहाँ की हो या यहाँ की, और जनता नहीं जानती है? जनता ये सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स कर रहे। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की एफआईआर 1106 एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम। मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। उस वक्त मान्यवर, मैं शांति के लिए किए गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं। मान्यवर, पुलिस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चल रही? मान्यवर, मैं वहां 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहां रहे। एमओएस होम मिनिस्टर पहली बार नहीं, कोई गया ही पहली बार, मैं ही गया हूं। अब तक कोई नहीं गया है। इतने सारे दंगे मैंने जो बताए, नस्ली इंसाफ, कोई नहीं गया है। एमओएस 23 दिन रहा है, 3 दिन में रहा। मान्यवर, हमने ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात है, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी
चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है। इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो भी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है। सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है। 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। गृह सचिव हर दूसरे दिन करते हैं और डीआई भी हर रोज करते हैं। मान्यवर, इतनी क्लोज वॉच के साथ वहाँ शांति बनाने का प्रयास चल रहा है। मैंने आगे कहा कि पुरानी सरकारों में किसी में 9 महीना हुआ, किसी में 1.5 साल हुआ। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ मान्यवर, कम से कम समय में ये हिंसा को शांत करने का काम हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आज ये सदन जब तब सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर भाई ये बहुत यार बाद में पूछो ना, बाद में पूछो, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर, आपने कह रहे थे कि 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर हो सकता है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि बैठो भाई, अपने बात में सब ऐसे नहीं होती चर्चा। आपको मौका में देंगे, पूरा मौका देंगे आपको, माननीय गृह मंत्री। मान्यवर, सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बाड़ बनाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी बाड़ का सर्वे हमने और गति से चालू किया है। बायोमेट्रिक्स लेने की गति भी हमने बढ़ा दी है। और मैं इस सदन के माध्यम से मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये विषय ऐसा है जिसमें किसी की जान गई है, किसी का सम्मान गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वो व्यक्ति हमसे कितना भी दूर रहता हो, मगर भारत का है और इसके प्रति हम सब के मन में, पूरे सदन के मन में संवेदना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि इस शांति की अपील में मेरी बात रखने के बाद सदन के दोनों ओर के सदस्य शांति की अपील में जुड़ेंगे। मैं बाकी सबका तो भरोसा नहीं दे सकता, मगर एनडीए के सारे सदस्य तो जुड़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। मान्यवर, अब मैं थोड़ा इन लोगों ने जो पॉलिटिकल बात करी है इसका भी जवाब देना चाहता हूँ। जो अब तक चर्चा हुई इसमें पॉलिटिकल जो बातें हुई, गौरव गोगोई जी ने मणिपुर के नस्ले हिंसा, इसके ढेर सारे बात की, आंकड़े बताए।
मैं आपके माध्यम से श्री गौरव गोगोई को कहना चाहता हूं और रिकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब मैं असम में 15 फरवरी से 27 मार्च 1983 750 लोग मारे गए। आंध्र प्रदेश 6 दिसंबर 1990 से 91 हैदराबाद 143 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 13 अगस्त 1980 मुरादाबाद 2 ही दिन में 1000 लोग मारे गए मान्यवर। उत्तर प्रदेश 18 मई से जुलाई 23 1927 मेरठ 187 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश 7 से 31 दिसंबर अलीगढ़ 112 लोग मारे गए। मान्यवर गुजरात फरवरी 18 से जुलाई 31 1985 206 लोग मारे गए। झारखंड 183 लोग 67 में मारे गए। मान्यवर पश्चिम बंगाल 16 मार्च 1964 राउरकेला कलकत्ता 1000 से अधिक लोग मारे गए। बिहार जमशेदपुर 120 लोग मारे गए। मान्यवर मैं ये इसलिए बताता हूँ, मैं ऐसा सुनो ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, सुने ना, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तो शांति के अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? शांति की अपील और इसका क्या लेन देन? मैं तो राजनीतिक जवाब दे रहा हूं आपका। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा। हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका है। हमने कभी सदन को बैन में नहीं लिया है। हमने कभी 15-15 दिन तक सदन की कार्यवाही को समाप्त नहीं किया है। हमने करा है तो विपक्ष में रहते हुए भी शांति की अपील का समर्थन किया है, शांति का समर्थन। माननीय अध्यक्ष जी, अभी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि संस्थाओं को टार्निश किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन तोड़े जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी को सरकारी कामकाज से, सीएजी को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। जेएनयू पर ताला लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। यूपीएससी जैसी स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्था को, इसके अधिकारों को छीनने का काम इंदिरा गांधी जी ने कहा। भैया आपको इतिहास मालूम नहीं है? मान्यवर मुझे मालूम है, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक ये नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है। ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देखिए ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। मान्यवर मान्यवर
मान्यवर इनका जवाब सुन लीजिए। सर जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना, सत्ता किसने भोगी, सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया, शरद पवार जी ने की। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। माननीय मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी हार का करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे बाय बाय आसाम। हाँ, बोल गए। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचा। My heart goes to the northeast people, Assam people. मान्यवर 2008 में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की साथ में समझौता हस्ताक्षर किसने किया था, कौन था वहां, कौन था? और ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। मान्यवर चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है जिसमें पूरा मैच खाने की चीजों से भरा है। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी। मान्यवर अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहाँ से ली हुई चीज़ों को फॉरवर्ड भी करते हैं। सबके सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है मान्यवर। परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है, चीनी एजेंसी के पैसों से चलता है। और मान्यवर ये हमें सवाल पूछे, मान्यवर अभी भाई एक मिनट, अभी उनको अपने गठबंधन का नाम बदलना पड़ा। अच्छा नाम था यूपीए, 10 साल सत्ता में भी रह लिए थे, क्या प्रॉब्लम था भाई, नाम क्यों बदला? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता को सदन के माध्यम से जाना, इतने सारे घोटाले टोटल लगाया तो 12 लाख करोड़ के बाद मैंने टोटल छोड़ दिया। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार यूपीए के नाम पर चढ़े हैं, कैसे जाए बाजार में? अब जो कंपनी दिवालिया हो जाती है या साख खराब हो जाती है इसकी, तो वो नाम बदल दे, बोर्ड बदल दे, इन्होंने भी नाम बदल दिया। मान्यवर बोफोर्स, एक मिनट भाई, बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर फ्रंट सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास नाम बदलने के अलावे कोई रास्ता नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूं,
हमें कोई नाम बदलने की जरूरत नहीं है कि 9 साल में और अटल जी के 6 साल में हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सर झुकाना जा पड़े, सीना तान कर मैदान में जाएंगे। मान्यवर, एनडीए ने स्थिरता दी, 10 साल तक स्थिरता दी है। 30 साल से कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले चरण सिंह जी को समर्थन दिया सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास है। मान्यवर, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में देश के बच्चे में मान्यवर देशभक्ति का संस्कार सिंचित करने का काम। मान्यवर, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने देश के एक एक जन के मन में देश के प्रति सम्मान और सुनहरे भविष्य की आशा को निर्मित करने का काम। मान्यवर, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं मोदी जी ने, शताब्दी के लक्ष्य तय किए हैं और आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते ही 15 अगस्त को अमृत काल शुरू होगा। 25 वर्ष के अंदर हर क्षेत्र में भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य मिलते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपको अविश्वास है, जनता को विश्वास है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भी अगर आप जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो वहीं बैठना पड़ेगा, आपको कितना भी बुरा लगे। मान्यवर, मैं आज इस सदन के अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से देश की जनता को करबद्ध विनती करना चाहता हूं कि देश को आगे ले जाना है। भारत को ऐसे मोड़ में लाकर मोदी जी ने खड़ा किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज़ादी के अमृत वर्ष में हम सब ने शताब्दी में भारत कैसा होगा इसका संकल्प लिया है। संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के ये 25 साल है। एक 5 साल मोदी को दे दीजिए, आने वाले दिनों में भारत विश्व के सब क्षेत्रों में 1 नंबर का देश बनेगा। अंत में मान्यवर, मैं फिर से मणिपुर में दोनों जूथों को, दोनों कम्युनिटी को करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हिंसा छोड़ दीजिए, भारत सरकार के साथ चर्चा में आइए, अकेले चर्चा करते ही इसकी जगह साथ चर्चा करिए, रास्ता निकालिए और फिर से हम खुशहाल मणिपुर जल्द से जल्द बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः सुबह की घटना के लिए माननीय सदस्य को अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। टीएन प्रतापन को, सुबह टीएन प्रतापन ने जिस तरीके से सदन की गरिमा और आसन की गरिमा को कम करने का प्रयास किया है, ये सदन की गरिमा के लिए अनुकूल नहीं है। मैं किसी भी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस तरीके की घटना घटेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10। मुझे लगता है आज लंबे समय के बाद मणिपुर पर चर्चा होनी दी है। मुझे सुना है इस सदन ने मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव करना चाहिए, तो मणिपुर की दोनों जूथों को शांति रखने की अपील सदन के इस गृह से जाए, ऐसा मेरे आपसे निवेदन। मैं सभी 1 मिनट, मेरा आग्रह है अध्यक्ष के नाते और जो माननीय 1 मिनट, हाँ बताइए, पहले आप बोल लीजिए। सर, हम तो सदन में चर्चा की मांग आज से नहीं, शुरू के दिन से करते आ रहे हैं और हमारे 1 मिनट रुकिए ना, और हमारी चर्चा मांग के साथ साथ बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि देश की प्रधानमंत्री सदन में आए और चर्चा की शुरुआत करें। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हम लोग ये नहीं कभी कहे कि उनका काबिलियत पे हमें कोई शक है,
लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि जो जवाब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना है वो कोतवाल कैसे देंगे। तो इसीलिए हम बार बार प्रधानमंत्री को आने के लिए प्लीज आप इस बात से एक मिनट अधीर रंजन जी एक मिनट, मैं बोलने का मौका दूंगा आपको। एक मिनट बात सुने, मैं आपको मौका दूंगा आपको। प्लीज बैठिए प्लीज। मैं मौका दूंगा आपको प्लीज एक मिनट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मणिपुर पर चर्चा की मांग विपक्ष के द्वारा की गई थी। मणिपुर की चर्चा यहाँ पर हुई है और गृह मंत्री जी ने उसका जवाब भी दिया है। कल प्रधानमंत्री जी भी जो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है उसका उत्तर देने के लिए स्वयं सदन में उपस्थित रहेंगे। लेकिन जो एक गृह मंत्री जी ने जो आग्रह किया है कि पूरे सदन की तरफ से एक अपील होनी चाहिए ताकि मणिपुर में शांति की बहाली हो सके, तो मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिए। एक मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद मैं बोलने का एक मिनट में बोलने का मौका दूंगा मैं। प्लीज मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज मौका दूंगा। हाँ मौका दूंगा मैं। आप बैठिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं मौका दूंगा, प्लीज मैं मौका दूंगा। आप विराजे, आप प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए। एक मिनट आप बैठिए मंत्री जी प्लीज। आप एक मिनट बैठिए प्लीज। आप भी बैठिए एक मिनट। जो माननीय गृह मंत्री जी ने सदन से अपील की है, आप इस पे सहमत हैं या नहीं है? शांति की अपील पे सहमत है या नहीं है? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप प्रस्ताव रखिए, न करना है तो न करें। हमें ड्राफ्ट दिया जाए सर, हमें ड्राफ्ट दिया जाए, प्रस्ताव की ड्राफ्ट दिया जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की साक्षी रखते हुए करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को गवाह रखते हुए करना चाहते हैं। हम तो इतना नहीं करते, हमारा मांग है। सदन की तरफ से ये मांग तो हमारा प्रस्ताव रखता हूं कि संपूर्ण सदन जो कुछ भी घटना मणिपुर में घटी है उस पर शांति की अपील करती है और सभी पक्षों से, सभी गुटों से जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा उस पर सर्वसम्मति से सारा सदन सहमत है। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। All right, that's been over 2 hours. You've heard Amit Shah, the Home Minister, speak over 2 hours, that is. He's touched in on everything, be it Manipur, talked about length in that, especially answering in detail on pointers where it came down to a no confidence motion, point by point taking on the opposition. Also, directly attacking Rahul Gandhi, where he goes on to say that I have seen the relaunch of a certain individual 13 times, naming, quoting from certain speeches that Rahul Gandhi has made on the floor of the parliament. Not just that, over the course of the 2 hours, he encapsulated details on the government's successes, be it the abrogation of Article 377, be it what the government has done in Kashmir, be it in materializing schemes where the last mile connectivity is concerned, saying that it is all because of Prime Minister Modi, detailing what the government has done in Manipur, also saying very clearly that yes, what happened in Manipur was shameful. At some degree he agrees with the opposition where he said कि वहाँ पर आतंक का तांडव हुआ था, but he also said what was worse was the politics that was played at the back of it by the opposition. Over 2 hour speech. If one would
to say the entire monsoon session has belonged to the Home Minister of the country, be it key bills which he's mooted in both houses, be it the Delhi Services Bill. He's spoken both in concluding in Rajya Sabha, Lok Sabha, and today of all the speakers from the Treasury benches. Amit Shah for over 2 hours detailed the successes of the government. I want to quickly cut across right now to our consulting editor Rajdeep Sardesai, who's joining us for more. Rajdeep, one thing we can fairly say at the back of what Amit Shah has just detailed over the course of over 2 hour, 10-minute speech in Parliament, this session, be it the monsoon session, has belonged to the Home Minister somewhere. Be it the Delhi Services Bill, be it the no confidence motion, till now, he's practically been the star of it. I would tend to agree with you. He's certainly a very combative speaker, and that shows when he stands up to speak in Parliament. He comes armed with facts, and he does, in a way, never hold back his punches, whether it was on the Delhi Services Bill in the Rajya Sabha or today in the Lok Sabha on Manipur. He was a Home Minister who was giving the impression that he's fully in control of the situation. If there was one thing missing, I thought, in his speech, Preeti, it is his unwillingness to accept the failings of the government in Imphal. Law and order is a state subject. Yes, there was a High Court order that in a way exacerbated the situation in Manipur, but that cannot excuse the manner in which killings took place in Imphal and in Churachandpur. And for that, the Home Minister should have been more willing to acknowledge the mistake. So I think he was very good in terms of the hard facts that he presented. There was an element of whataboutery when he went back into time to previous ethnic clashes that have taken place in Manipur and other parts, but that is politics. But if only there was a little bit more willingness to accept mistakes, it might have helped heal festering wounds. But all in all, I would say that Amit Shah comes to Parliament as the best prepared union minister in this government. He comes armed with facts, and that's what he hits his opponents with. Well, he's spoken a variety of topics, and understandably, Rajdeep, because he's actually responding as the Home Minister, as a cabinet minister, one from the Treasury benches when it comes down to a no-confidence motion. He did speak at length where Manipur was concerned. One thing, of course, where the Treasury benches in Manipur have been questioned is whataboutery. And be it Smriti Irani, be it even Amit Shah, even though admitting, Amit Shah, that the worst has happened in Manipur and he somewhere down the line agrees with the opposition, but he also, spoke of other acts of violence under the UPA. He also spoke of the fact on the timing of the unfortunate video when it had come just a day before the monsoon session. No, all that is very well, but he also defended Biren Singh. Now, on what basis can you defend a chief minister who is seen to be openly partisan? He's saying he's trying his best, he's following his orders. There's no evidence of that on the ground, certainly not right through the critical month of May. I think that one failing of Mr. Shah in this entire 2-hour speech that he gave was his unwillingness to accept that mistakes were made in Imphal. He's absolutely right. Manipur is a complex situation. Politics should not be played over it. When the Congress was in power, whether in the 1990s or even later when Hebi Singh was the chief minister, there have been ethnic clashes in which scores of people have died. You cannot see Manipur through the lens of possibly certain other states and their internal security concerns. It is in many ways sui generis. But the truth of the matter is, you have to be willing to also accept your mistakes. And that's perhaps the one failing in this otherwise very fine, fact-driven speech that Amit Shah gave today in the Lok Sabha. And the other element is that, when you then want to say that the sense of the House should be conveyed to the people of Manipur, that we make an appeal for peace, just think about it. All of this should have been done weeks ago. And you don't suddenly require a no-confidence motion for an appeal for peace to be made to convey the sense of the House. The Prime Minister, again, was, of course, not present, nor was Rahul Gandhi. The hope is that, again, tomorrow, when the Prime Minister delivers his speech, hopefully Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, opposition leaders are there, that sense of the House then translates into an all-party meeting or an all-party delegation going to Manipur and talking to the stakeholders.
You see, this is not just political point scoring that can... Manipur is more than just political point scoring. It has to be about empathy, about reaching out to people, about bridging the divide. But all in all, on pure hard facts, Amit Shah scores well. On his unwillingness to accept the role of the government in Imphal, he scores badly. Well, his speech was substantive. While we've been focused on what Rahul Gandhi said and what he possibly didn't say, and analysing his speech, I would reckon through the course of the entire monsoon session, if there is a star in terms of just, maximum presence, substantive, solid debates, Amit Shah has actually been that person. What we will do on the other side of this quick break is analyse all the speeches that we've heard in Parliament, especially the much anticipated Rahul Gandhi speech. Was it a hit? Was it a miss? Who has won day 2 of the no confidence motion in Parliament? Joining me on the other side of this quick break, Rahul Srivastava, Moshmi, Rajdeep Sardesai continues to stay with us. A quick break to stay tuned. India today is at ground zero in Torbang, and the situation is so vulnerable. Simultaneously, there is accusation of using sophisticated weapons, but these young boys risking their lives and using these single barrel gun and double barrel gun. We love our land and our village, that's why we sacrifice our life. No one could ever imagine that in a state, in the same country, in the same district, we will ever see such situation which has become a battlefield. And I could say this is a war zone in Manipur. Grounded in journalism, on the ground reporting, only on India Today TV. Diet sodas, sugar-free tablets, artificial sweeteners. Do all of these give you a sense of assurance that you are staying away from sugar and that these are healthy alternatives? Well, it is not that simplistic as you think it is. Each of these artificial sources of sugar are unhealthy. Let us break this down for you. Diet soda is a go-to for people who love the taste of regular soda but can do without the sugar and calories. An average can of regular cola may contain a whopping 37 grams of sugar, and consuming too much sugar is linked to outcomes like obesity and poor heart health. So it makes sense that you may seek out a sugar-free alternative. But while drinking diet soda does help people reduce their sugar intake, this simple act can also expose a person to other ingredients that may be linked to some other health problems. The acidity in certain types of soda can lead to tooth erosion. Drinking excessive amounts of diet soda made with caramel coloring may result in teeth turning yellow. Some research suggests that artificially sweetened drinks are associated with a greater risk of obesity. If you opt for diet soda that contains caffeine, you may have trouble getting some much-needed shut-eye at night. Diet soda is void of calories and sugar. Certain varieties can contain phosphorus in the form of phosphoric acid. This mineral, though important, can play a positive role in bone health, but consuming copious amounts of phosphorus can negatively impact the calcium-phosphorus ratio in your body. When the sugar increases in the blood, that means when the blood glucose increases, then it leads to many comorbidities like obesity, diabetes, fatty liver, then risk of cancer, heart attack also increases. There are mood alteration leading to irritability, then there's sleep disorder, and many more things can happen. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices.
Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. The Haryana bulldozer action in Nuh has now reached the Supreme Court. Senior counsel today, Kapil Sibal, moved to the top court not just against the bulldozer action but also against the Gurugram Mahapanchayat, which called for an economic boycott of Muslims. The Mahapanchayat, which was called to oppose the police crackdown on village youths, urged people to stop renting out houses and shops to Muslims. Kapil Sibal raised the issue before Justice Chandrachud and said that this was clearly unconstitutional. Let's take a look at what's been happening on the ground in Nuh when it comes to bulldozers that seem to be taking on one community. Take a look. The bulldozers came to grinding halt in Haryana's Nuh district. The Punjab and Haryana court on Monday came down heavily on the Manohar Lal Khattar government over the demolition drive. The court, taking suo motu notice in a scathing order, said that the law and order problem in Nuh is being used as a ruse to carry out the demolition drive. The court said the issue is whether buildings belonging to a particular community are being brought down and whether ethnic cleansing is being conducted by the state. Scores of buildings were demolished before the High Court stepped in. Liaquat Ali's tile shop on the Nuh Alwar Road is one of them. Ali claims he had given shelter to a few Bajrang Dal workers who were trapped by the rioters but still was targeted. ये असल में ये जो दुकान है ये सब मुसलमानों की है, लेकिन हाँ हिंदू इनमें रहते हैं किराए पे लेकर, और दुकान ये मुसलमानों की है। अब जाहिर सी बात है भाई ये पूरी मुसलमानों की मार्केट है, दुकान है, वो किराए पे रहते थे, लेकिन एक कार्रवाई तो भाई यही है कि भाई मुसलमानों को ही गिराया जा रहा है। Residents in the area claim no notices were issued to the owners before bulldozers were unleashed. जो गरीब आदमी भी है उनके पेट पे लात मारी जा रही है। जैसे हर किसी बंदे का एक जरिया होता है कमाने का, तो किसी के भाई रोड पे दुकान है तो कैसे कैसे गुजारा कर रहा है वहाँ रह के, तो उनकी जो फोट टूट हो रही है वो गलत हो रही है बिल्कुल। यहाँ वो जो भी जैसे बुलडोजर चला रहे हैं सर, जो अवैध कब्जा है सर उसको हटाएं, उसके लिए भी नोटिस देना चाहिए। पहले वो अपने कम से कम मकान में से सामान को निकाल लें, और जो अचानक आज ही नोटिस दिए आज ही मकान फूटे तो नुकसान तो होएगा ना। तो सबको नोटिस दें, हिंदू भाई को भी मुसलमान को भी कम से कम, और जो अवैध कब्जा बस हटाएं। ये तो गलत है, अचानक से जा करके बुलडोजर चला दिया, ये तो बेतुक। From Uttar Pradesh to Madhya Pradesh to Haryana, bulldozers have become a favored mode of crackdown in BJP-ruled states. But how legal are these tools of providing so-called instant justice? The courts are yet to give a clear view on this. With Sushant Mehra and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today. Co-powered by New Hero Zoom. Go big, go Zoom. Co-powered by PolicyBazaar.com. हर family होगी insured. Jeep, there's only one.
Good evening, viewers. You're watching To The Point. I am Preeti Chaudhary. What we're going to do through the course of the next 25 minutes is break down what we heard in Parliament on day 2 of the no confidence motion. So who won round 2 of the no trust motion in Parliament today? Was it the Treasury benches or was it the opposition? The much anticipated speech by Rahul Gandhi also today, he did speak, but so did Amit Shah for over 2 hours. Which speech was substantive? Which speech was political in nature? Who won round 2? Listen in to all the excerpts and we're back with our experts. हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है? यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती। बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता मान्यवर। हम भी सहमत नहीं हैं। उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। All right, so who won round 2 of the no confidence motion debates that we saw in Parliament? Let's cut across to our editors. Joining me, Moshmi, my colleague who's been tracking Parliament developments through the course of the morning, Rahul Srivastav, National Affairs Editor, political analyst Rashid Kidwai, and political analyst Sandeep Shastri. Moshmi, I'll quickly come to you. A lot was anticipated from Rahul Gandhi's debate. It was short.